started. Thank you for your patience. Come, come, we'll go there. Come, come, come. Oh shit, there's a pool out here. दीपक भाई we are using that background. Next time I'll be very clear that you go to introduce her. So now you know who's my wife. Okay, let's call everyone. Yeah. And everybody is RJ. Vijay, can we start? Not yet. ये 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 मतलब यहाँ पे प्ले नहीं होएगा मगर YouTube पे लाइव जाएगा ना, ये ऑडियो जाएगा ना. So hello, hello, hello. Is it? Are you able to hear it? Hello, hello, hello. हॅलो हॅलो येत आहे हॅलो 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 येत आहे का आय थिंक हॅलो हॅलो येत आहे लवकर कर जे करतोयस ते इथे चालवत आहे जोशू कर झालं हॅलो 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 चल रहा है. Since Sumi is not here, Ojas को बोल सकते इस time.
we ready? It's going to go live, okay? Good afternoon, everyone, and welcome to this live coverage here from the Somaya Cricket Ground of the IDFC First Bank Mca Bkc RC Members Premier League 2022. This is season 2 of a fantastic tournament that went really amazingly well, before COVID struck us, and we thought this is about time that we get started with season 2. So I've got a list of extremely important people here with me today, and I'm going to go from my left to right and introduce everyone quickly, and then get on to the main show and introduce the chief guest as well. So we've got Mr. Rabindra Junjunwala here from the round of applause for RJ Rabindra Junjunwala from the JC Four Oaks Spartans, team owner. And we've got CK Chetan Kapoor here, who's representing Vivek Zaveri from the Hemant Tools Tornadoes team. We've got Mr. Deepak Modgil with a very, very interesting and flashy suit. Welcome, Mr. Deepak Modgil, the Spotlight Social Scorchers owner. We've got Piyush Patel. Piyush, welcome. He is the Ddpl Strikers owner. We've got Mr. Karan Sharma there, who is the owner of the Marshalls Royals championship winning team, probably. And then we've got also Ojas Mehta, who's representing Sumiran, and he's part. So he's representing Sumiran Mehta. Yeah. Oh, okay. He's representing Sumiran. He's representing Sumiran here, since Sumiran isn't there. So welcome everyone, and thank you for making this a fantastic tournament. We've got organizers, sponsors, etc. that we will get to in a moment. Vivek, would you like to join us? Vivek Zaveri. A little late, but welcome. Welcome, Vivek Zaveri. Nice to have you. Nice to have you here as well. No problem. Okay, so I'm going to get on with the main order of business. I also wanted to introduce Vijay Singh, who's been stellar in setting this up for us. Vijay, will you come here and just say hi to everyone live on camera? Vijay is extremely shy. He doesn't like to say a lot of words, but he's very much instrumental in setting this up for us. And without Vijay, we won't be having this today. So a big round of applause for Vijay. We've also got JD out here, Jitendra Diwan, who is one of the best players out here in the Mca Bkc MPL, and he's part of our members committee that's helping organize this. We've got Vatsal out there, who's hiding there with a broken arm. But Vatsal, could you come here and join us? And I hope I haven't missed anyone, but I think this is pretty much our organizing committee and our owners. So at some stage, we will call you gentlemen back on the stage, but thank you very much for making this happen today. Thank you. So now to the main order of business. We have been blessed here today and honored to have an extremely great player, Indian player who played for India. He's a king in the Ranji Trophy format. I would just like to introduce him after. I would just like to say a few words and then request him to join us as well. Sir, would you join us, Mr. Ajay Sharma? Ajay Sharma ji. It's a pleasure to have you here, sir. Thank you so much. I'm going to embarrass you a little bit by talking about all your performances. But basically, the Mca Bkc RC organizing committee, the owners, the sponsors, the captains, along with all participants, we warmly salute you, sir, for making it here today. You are one of the undisputed big daddies of the Ranji Trophy format with all your achievements. You've flown down specially from Delhi here today to be with us, so thank you very much. Thank you, Deepak ji, for making this happen. So thank you. With a batting average bordering on 80 in Ranji Trophy, Ajay ji is second only to the illustrious Vijay Merchant. Fantastic. Started with an unmatched 31 centuries and playing the finals on 6 occasions, making 4 centuries in these finals, and becoming only the 3rd player to get 1,000 runs in a Ranji season.
Overall, in first-class games, he had this monumental excess of over 10,000 glorious runs in his kitty, with a highest score of 259 unconquered, 259 not out, along with 38 centuries and 36 50s. I could use a couple of those centuries in this tournament, sir, so please bless me. And add to this a handy haul of 87 wickets, and you had a dynamo on the field. We all saw the way he fielded. So Ajay ji, thank you so much. We are honored to have you here, sir. And we are sure that our players, keeping your stats in mind, will be inspired to perform and raise the bar higher as we kickstart our second season of the tournament. So ladies and gentlemen, in our own Mumbai style, let's all take off our hats and give a warm round of applause to Shri Ajay Sharma. And before I can pass the mic on to Ajay sir to say a few words, there's a few formalities, and I would like to invite Mr. Kulraj Bedi to say a few words. He knows Mr. Ajay very well. Sir. Thank you. It's a great honor to stand with you, sir. First of all, पूरा गूगल उन्होंने पढ़ दिया आपका. अब आपकी पैंट शर्ट के बारे में मेरे को बोलना है. You are looking still very smart, very handsome. बस इतना ही कहूँगा, क्रिकेट का पूजन, क्रिकेट का मनन किया है, तभी ईश्वर ने इनको एक बेटा दान दिया जिसका नाम भी मनन लिया है. और उस समय आपने दिल्ली टीम में पैर रखा है सर, जिस समय दिल्ली के अंदर आना एक बहुत मुश्किल काम था. दिल्ली वॉज फुल ऑफ डैडीज, जैसे इन्होंने कहा, और उसमें आप आकर के ग्रैंड डैडी बन गए थे. दिस इज़ माई वर्ड्स फॉर यू सर, एंड थैंक यू वेरी मच. एंड वन थिंग आई वांट टू टेल यू ऑल योर टीम ओनर्स दैट ही इज़ अ वेरी ग्रेट क्रिकेटर, बट उनसे भी बढ़िया, उनसे भी ज़्यादा, ही इज़ अ वेरी नाइस एंड हम्बल पर्सन. सो वी ऑल लव यू सर. Please. Thank you so much, Bedi ji. That was very nice, and I think that's the amazing thing. We all hear about great sportsmen in our country and what they've achieved, but humility is something that you don't find everywhere, and we really appreciate that in a human being. So thank you so much. I would like to invite Vijay back up here to give a bouquet to Mr. Ajay ji. Thank you, Vijay. I would like to also, I'm going to put Mrs. Sanjana Sharma on the spot. I think she's out there, but may I request JD to hand a bouquet of flowers to Mrs. Sanjana Sharma. I think I've embarrassed her more than I've embarrassed you. Absolutely, absolutely. Behind every successful man, there is a strong woman. And Mrs. Sharma, I'm sorry to put you on the spot here. I know this was unplanned, but JD from the IDFC team will be presenting some flowers to Mrs. Sharma as well. Thank you so much, ma'am, for making it here today and blessing us with your presence. Thank you. Thank you. Okay. So again, I just wanted to call upon all the sponsors as well, and ask the owners, each owner, to come by and give the sponsors a little bouquet. So from the IDFC first, the main sponsors, we've got Rohan Raut and we've got JD. Both of you, could you please come up here? Rohan and JD, and maybe the IDFC team could come up. And may I request Karan Sharma, the owner of Marshalls, to come and give a bouquet to the sponsors. Thank you, IDFC First Bank. You guys have been so supportive of this the second year in a row, and we really appreciate all the support that you've provided us. Thank you. Thank you. Thank you. Karan, I'd like you to come back because you're also a sponsor. Marshalls is sponsoring us as well. And may I request Piyush Patel, to please come and give Karan a bouquet as well. Thank you, Karan. All these guys basically play against each other all the time, so there's a lot of sledging. We've got, have we got Painter Rajesh? Is Rajesh here from Painter?
Okay, JD, can you collect on behalf of Rajesh, on behalf of Painter? Bouquet, Vivek, may I have Vivek? Vivek bhai, can you come here and thank you, Vivek, and thank you Painter, thank you Rajesh. JD collecting on behalf of Rajesh Dodi. For cricket graph, do you have Amol here? Is Amol around? Okay, so RJ was to give Amol a bouquet, but since Amol isn't here, Vijay, why don't you collect it on behalf of, let's do it this way. So RJ is basically going to give this to Cricket Graph, and Vijay is collecting on his behalf. Thank you, RJ. Thank you, Vijay. Do we have someone from Somaya here? We have Mohit from Somaya. Yeah, so we have Mohit from Somaya. Piyush bhai, may I request Piyush bhai again to just give Mohit from Somaya a bouquet of flowers. Thank you for your support for the infrastructure, Mohit. Thank you very much. Thank you. And then finally from Bayside, can we have Nikhil? Nikhil out here, Bayside. And can we have Deepak bhai? Deepak bhai, can you please give Nikhil a bouquet of you? No, he has to give it to you. I don't think you're used to this. I'm really not. Thank you so much. Pleasure. And just RJ, may I request Rabindra Junjunwala on behalf of all the owners to come up here and say a few words. Thank you. Normally I charge to speak, but first and foremost, thank you very much, sir, for being here. It is such a pleasure कि आप आए and सबको आपने motivate किया. But from the owner's side, I would like to sort of say कि see, this is a members' tourney. It is by the members, for the members, and literally the way it has come together. If you look at Bayside, Kayan is a member. You see Vijay, who selflessly organized it, is a member. Apna sponsors, JD is a member. Deepak has been kind enough to reach out to Mr. Sharma to get him along. Karan is a member. Somaya is a member. So what a setting this is. So let's enjoy as much as we can. Let's make it grander, make it bigger. This time there are some additional changes, and as we take the tourney forward, there will be more new things to be added. I will only thank everyone on behalf of all the owners, all the icon players, all the team members and the members. Thank you everyone who's involved to make it possible. Thank you. Kayan? Thank you, RJ. I think the next important order of business is just that one of the things that we've done, Ajayji, is actually had an oath created for all the members. Fair play is really important in our sport. And I think from the point of view that we want all the owners to actually get involved and sign a document that we've created, a declaration of fair play. I'm going to read it out just for the benefit of everyone else, and I would like the owners to repeat it, and then I would like to call all the owners up so that y'all can repeat it together and we can hold it to our hearts and then sign this document. Yes, yes, dil pe haath. Yes, yes. Dil pe haath rakhe. Okay. I'm going to read it line by line, and would you read it after me? Yes. Okay. Okay. So, we, the team owners of the Idfc First Bank Mca Bkc RC Members Premier League. Ditto. The Idfc First Bank Mca Bkc RC Members Premier League 2022. In the name of all competitors. Promise that we shall take part in the league. Respecting and abiding by the rules that govern them. In the true spirit of sportsmanship. For the glory of sport and the honor of teams.
And we shall let Kian score a lot of runs. Shall let Kian score a lot of runs. Thank you. And we'll let Kian gift spotlight the winners cup. Definitely. So thank you very much. With this said, just to show everyone, we will be signing this document, and I'll let RJ do the honors, starting left to right. We will sign this document, and then we will frame it, and we will put it up in our club. And I think with that said, we can actually declare this open, and we can ask Ajay ji to say a few words, and a memento needs to be presented. So the memento. Yeah. Sir, would you kindly say a few words and then declare the meet open? Hi everyone. I was really excited to meet my friend Deepak and be a part of this Mca Bkc RC Premier League 2022 and get to experience the hit combination of Deepak and cricket. So, so I wish all the participants and the participating teams in this tournament all the very best, and play in a right spirit. And thank you very much. Thank you very much. Thank you, sir. Sir, we have a little memento for you, and then we would request you to come to the pitch and just light the agarbatti and break a coconut, as we always do out here. So all the owners can give it together and do a group photograph. I'll leave it with the owners and Ajay sir. Thank you, sir. Thank you. Brilliant. There's one more. There's one. They want me to delay the game. A lot of people have called me and said, "Thoda delay kar de, thoda," you know. Luckily, we're not ICC. We can do these things. Yeah. So there's just two more orders of business. Sorry, I keep delaying it. But one is there are the T-shirts, sir. If you could gift or if you can hand the T-shirts to each owner for their respective teams, and then we will do the ceremony. Yeah. Deepak Modgil first. From the Spotlight Social Scorchers, that's Deepak's jersey. Play well, Deepak. Piyush Patel from the Ddpl Strikers. Piyush has a big number behind 1, 2, 3. We've got Karan Sharma from the Marshalls Royals, future champion team, right here. Nice and colorful jersey there. We've got Rabindra Junjunwala, owner of the JC Four Oaks Spartans, with a nice blue jersey. And this is also Sumiran's jersey, actually, which Ojas is going to collect on Sumiran's behalf. Thank you, Ojas. And then we've got Hemant Tools Tornadoes, Vivek Zaveri, owner. And that's Vivek's jersey. Play well, Vivek and Hemant Tools Tornadoes. And then can we get a group snap with the owners and their jerseys along with Sir, and then move on to the pitch. Lovely photograph of all the team owners.
And Ajay ji. Thank you, sir. Thank you very much. Thank you. Let's move on to the pitch and start the games. Aim, aim, aim. They call me.
क्या करूँ मैं इसको? लगेगा नहीं। इसको तो आजायला माहिती आहे बा तो घेऊन आलाय. जा लवकर जा. आहे पुन्हा ठेवलाय. हा हा जा जा आजायला माहिती आहे. हे घेऊन जा. Piyush Bhai has called heads. And heads it is. Piyush Bhai. We are batting first. Piyush Bhai is batting first. Yes. All the best. All the best, guys. 1-4 to 4.
We welcome you to the IDFC first Mca Bkc RC MPL 2022 Season 2. And this is the first day of this wonderful tournament. The first match is about to start. The toss has happened and Ddpl strikers have won the toss. They've elected to bat first against the Tornadoes, who will be fielding first. So this is the first match, and let me introduce you all to a very senior commentator, Mr. Kulraj Bedi, who's alongside me in this commentary box, and he'll be sharing his wonderful commentary in Hindi today with all of us. शुक्रिया शालीन, बेहतरीन मंजर है, बहुत खूबसूरत नज़ारा है। और आज यहाँ पर T20 तड़ातड़ क्रिकेट जिसको हिंदी में कहते हैं हम लोग, वो मैच शुरू होने जा रहा है। बड़ी तन्मयता दिख रही है दोनों खिलाड़ियों में, दोनों टीम के खिलाड़ियों में। Absolutely, Kulraj, and this is going to be a cracker of a match. Two wonderful teams, and this is the first match of the tournament, so the energy is really high. जी हाँ, और आज हमारे बीच में हमारे हिंदुस्तान के जाने माने क्रिकेटर अजय शर्मा जी भी आए थे। उन्होंने आज की इस टूर्नामेंट का आगाज़ किया और बेहतरीन शुरुआत की शुभकामनाएं दी हैं सभी टीम ओनर्स को भी। Very rightly said, and we all are lucky to have an Indian cricketer amongst us today for this tournament and the first match. That's an honor to be in his vicinity today. And we are about to start the first match very soon. The umpires are on the ground, the players are taking their positions, and the batsmen are at the crease as well. So we are about to start the first over in a couple of minutes maybe. The batsmen, both the striker and the non-striker, are about to take their guard. And Kulraji, what do you think? How good is this tournament going to be? पहला दिन है शालीन, और विकेट के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता किस रुख लेगी, लेकिन कड़क धूप है। कड़ी धूप के अंदर फील्डिंग करना थोड़ा सा फील्डर्स के लिए भारी पड़ेगा, लेकिन सेकंड हाफ में फील्डिंग टीम को ज़रा शाम हो जाएगी और उसको विकेट का भी फ़ायदा मिलेगा और थोड़ा मौसम का भी फ़ायदा मिलेगा। तो ये दोनों चीज़ों का फ़ायदा उनके पास है। और एक बात मैं बताऊं आपको कि आज हमारे बीच में हिंदुस्तान के मशहूर क्रिकेटर अजय शर्मा जी हैं, और उन्होंने बहुत मेहनत की है दिल्ली की अंडर 19 क्रिकेट टीम के लिए। वो अंडर 19 के कोच भी रहे हैं, और इस बार जो वर्ल्ड कप हमने जीता है तो कप्तान भी दिल्ली का ही था, यश ढुल, और उनके कोच किए हुए बच्चे भी इंडियन टीम में थे। और 4 अंडर 19 के बच्चे इस समय रणजी खेल रहे हैं दिल्ली से। तो अजय शर्मा जी का बहुत बड़ा सपोर्ट रहा है अंडर 19 टीम को भी, जो विश्व विजेता बनी है। Well, thank you, Kulraji, for all this information. This is a very, very important information for all our viewers. And Yash Dole, as you said, had scored a wonderful century in the semi-finals during the Under-19 World Cup. So absolutely brilliant performance by the Under-19 boys of our country. And they've made all of us proud. It's not an easy thing to win a World Cup at any age group, any level. So hats off to our Under-19 Indian cricket team. And as you mentioned that a senior Indian cricketer has been with them, mentoring them. Kids mentored by him are playing the Ranji as well. And it's a huge honor for all of us that a cricketer of his caliber who has represented a country is associated with us in this tournament. So all in all, a very good start we've got for the tournament. And I would like to inform all of viewers about the teams. Piyush Patel is the captain for Ddpl Strikers. He's won the toss and he's elected to bat. And Chetan Kapoor is the captain from Tornadoes, has been asked to field first. So we're about to start the match. And Kulraj, what do you think? Which team do you think is a more prolific one, or maybe would be having an edge here? फर्स्ट पावर प्ले में आपको समझ में आ जाएगा मैच किस रुख में जाएगा, क्योंकि विकेट है नया, जैसा मैंने पहले भी आपसे जिक्र किया किस तरह से पावर प्ले को खेलते हैं। लोग अक्सर पावर प्ले को ये सोचते हैं कि यही 6 ओवर मिले हैं मारने के लिए, लेकिन मेरी सोच कुछ डिफरेंट है। अगर 6-7 रन के एवरेज के साथ आप विकेट बगैर खोए पावर प्ले निकालते हैं तो आपके पास अंत में विकेट भी बचते हैं और रन बनाने का स्कोप भी रहता है। Absolutely right, and we have seen a lot of IPL matches too. In an effort to score a lot of runs, many teams tend to lose a lot of wickets.
We have seen that in yesterday's match also between India and Sri Lanka, in which Sri Lanka had to chase 200, but in an effort to score a lot of runs right from the word go, they lost a lot of wickets in the first 10 overs. So very well said, and that should be the right approach. We'll have to see how the DDPL strikers approach this match though. थोड़ा सेफ मोड में फील्डिंग लगाई गई है. डीप कवर रखा है उन्होंने. Yeah, so he's starting with a deep cover. या और फाइन लेग नहीं है, शॉर्ट लेग पर, शॉर्ट फाइन लेग पर एक फील्डर 20 गज के घेरे के अंदर. Yeah, and the covers is slightly up, so probably a catching position there. अब शालीन जी यहाँ पर गेंदबाजी भी आपको ऑफ स्टंप और ऑफ स्टंप के बाहर ही रखनी पड़ेगी. अगर ऐसी फील्ड लगा करके आप लेग स्टंप को पकड़ेंगे, then it becomes a difficult for your team to defend runs. So Ojas Mehta on strike, and Sachin Deshpande is coming into bowl his first delivery of this tournament. That's a short delivery wide down the leg side, and a poor start by the bowler, and could be a boundary here. We'll have to see that. And wide signal by the umpire and a boundary. So not the kind of start that they would have wanted to. मैंने आपसे अभी जिक्र किया था कि ऑफ साइड की फील्ड लेकर अगर आप अपना फ्रेम लेग साइड के बाहर रखेंगे तो बगैर मेहनत किए रन आते रहेंगे. And yeah, and this is a dream start for the batting team. They haven't even played a ball and they've got 5 runs immediately. So that's a wonderful start for the batting team. They won't mind such runs coming. Sachin with his next delivery. Another short delivery this time. Cut hard towards the covers, the sweeper cover. Fielding it well and throwing it to the keeper. And he's off the mark, Ojas, with a single. एक बॉल में 6 रन आए हैं और अब स्ट्राइक पर हैं अभय इज ऑन द स्ट्राइक. शालिन दोनों राइट हैंड बैट्समैन हैं. Yeah, so this will be a good thing for the bowler as well. If a left hand right hand combination comes to bat, it becomes difficult for the bowlers as well. Oh, and this time he changes his length slightly, but still on the shorter side. And a quick single taken towards the covers. सारे फील्डर 20 गज के एज पर खड़े हैं. एक फील्डर को थोड़ा सा आगे रहना चाहिए सिंगल चेक करने के लिए. लेकिन मैं ओजस मेहता जो बैटिंग करने आए हैं इनके बारे में मैं ज़रूर कहूँगा था इनकी एक छवि बनी हुई है कट करने की बहुत अच्छी, क्योंकि इनके आते ही डीप कवर्स पर एक फील्डर लग जाता है. That's a good delivery, and finally he realizes the length which he has to bowl. And that's a very good comeback. Almost a yorker there in the block hole. Or just plays it straight back to him defensively. No run, and that's a dot. हवा का बहाव दाएं से बाईं तरफ जाता हुआ. Yeah, it's a windy day today. Yeah. Well observed, Kulraji. Oh, and that's a cut shot this time, but straight to the fielder again. Just a single, but his intentions are clear, as you were already mentioning. He is a prolific hitter of the cut shot. And Kulraji, your experience will help all of us here, not just to watch the match with your brilliant commentary alongside, but also the information that you provide about a lot of cricketers here. So we thank you also for this wonderful gesture. अब कवर को अंदर लेकर के उन्होंने लॉन्ग ऑन को पीछे कर दिया है. Probably the right move. He should be attacking a bit. That's a good delivery again. Targeting that block hole again and again. And this is the second time he has bowled a delivery in the block hole in the very first over. So that's a good start by the bowler. However, the first ball was not a good one. Barring that, he has been bowling really good. और अपने फील्डिंग के हिसाब से गेंदबाजी कर रहे हैं. शालीन आप भी फास्ट बॉलर रहे. यॉर्क करना पहले ओवर में थोड़ा सा मुश्किल काम रहता है. Absolutely right. And and that's a peach. That's a peach of a delivery. He had no idea about that. Not at all easy to negotiate such deliveries, especially when the ball is swinging. So he finishes the first over with a good delivery, and 8 without loss is the score after the first over. So that's a wonderful start
by both the teams, I would say. Not losing a wicket, the Ddpl strikers, and not giving a lot of runs also, the Tornadoes, especially after giving 5 runs on the first delivery. पहले ओवर की समाप्ति पर 8 रन। एक बार फिर तेज गेंदबाज को इंट्रोड्यूस किया गया है दूर वाले छोर से। Just on strike, and we'll have to see his approach in this over. And he's a left arm pacer. That's a good start, and Ojas plays it well towards the short third man. Just a single. Parv Shah has started his first over and the second of this innings. And what do you think, Kulraji? The left armour along with the right armour. लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट गेंद कर रहे हैं और इनका अंदाज थोड़ा थोड़ा जेम्स फॉल्कनर जैसा है। हौले हौले आते हैं और कोई कोई स्लोअर वन जैसी फास्ट बॉलिंग करते हैं। ये देखिएगा गेंद की गति उनके हाथ के हिसाब से कम आएगी। Absolutely right, and that's what happens when a senior commentator and such an experienced person is with us. Just observes it so minutely. And that's a single taken towards the long on. Easy pickings for Abhay this time. And they've started defensively, I would say, in terms of the fielding that they've said. They should have been more attacking. These are just the first 6 overs. They could take a couple of chances maybe, and then probably if some boundaries are scored, they can send back the fielders. But immediately opening the covers is not a good idea, in my opinion. That's a good delivery and just a dot this time. गेंद की गति को समझना पड़ेगा इनको और उस हिसाब से अपने को सेट करना पड़ेगा। ये शालीन स्लोअर वंस, अभी लोग सोचते हैं कि नकल बॉल अभी स्टार्ट हुआ, स्लोअर वन अभी स्टार्ट हुआ, लेकिन मुझे याद है वेंकटेश प्रसाद ने आमिर सोहेल को स्लोअर वन से ही बोल्ड किया था लेग कटर से। Oh, and he was a wonderful bowler. One of the best slow ones he used to have, and the leg cutter that he used to bowl. That's a wonderful example that you've quoted here, Kulraj ji. और शालीन एक तरफ से श्रीनाथ फेंकते थे 140 पर और उधर से सामने से वो आ जाते थे 120 पर, तो बैट्समैन को अपने को एडजस्ट करने में बहुत टाइम लगता था। And those were golden days of Indian cricket for sure. Although the strength of the team started to grow after that era, when Saurav Ganguly took charge as the captain of the Indian cricket team. But those years were also very important for the Indian cricket team and the Indian cricket. Because of those bowlers only, there were a lot of youngsters who started choosing pace bowler as their career. बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। Oh, and that's a wonderful delivery. ये देखिए धीमी गति की गेंद और बल्ला जल्दी चल गया। Yeah, and he's foxing the batsman with his speed. He's changing the pace brilliantly there, and that's the end of the second over. The score after 2 overs is 10 runs without any loss. So that's a good over. Just 2 runs given in that over. ऐसे गेंदबाजों को खेलने का सबसे बढ़िया तरीका है आप पहले ऑफ स्टंप पे थोड़ा सा पीछे आ जाइए, गेंद की गति देखिए और उसको उस हिसाब से खेलिए। अगर आप पहले कमिट हो जाएंगे फॉरवर्ड तो वो आपको बॉल का ना स्पीड आएगा ना कुछ आएगा। इवन यू कांट कट, यू कांट ड्राइव, क्योंकि अपिच ड्राइव होगा। Sachin Deshpande with his next over, and this time he's played towards the square leg. Could be a chance of a run out, but he's back in time. Sent back by Ojas. That was a good call by the non-striker. बहुत समझदारी का कॉल, सही कह रहे हैं आप। एंड वक्त पर मना किया। Yeah, sometimes in the heat of the moment, you tend to not see your partner. And this time the same thing happened with Abhay. He was just running for the single there, but Ojas was very vigilant. And Ojas is definitely one of the best cricketers in the league. Oh, and this time he hits it. But could be a boundary, and he's missed it. That's sloppy cricket.
Could have been stopped, but the long on, missing it. And Kulraji, I think 3 runs have been gifted here. What do you think? It should have been stopped. बिल्कुल ट्रे में लगा के 3 रन भेंट दिए गए, साथ में एक बुके चौके का भी. That was a full toss and he played it really well, but that was straight into the hands of the mid-on fielders. Could have been only a single, but the long-on fielder, I beg your pardon. And the first boundary of the bat in this innings. Sachin with his next delivery. Oh, and this time he's hit really well. This is a wonderful shot. This will be a boundary. Played uppishly, deliberately, and goes towards the boundary in the deep cover region. And he's now growing in confidence. Yes, of course. वो शॉट ने और स्पेशली वो जो गिफ्टेड रन्स हैं, जब आपके स्कोरबोर्ड पर एक चौका जड़ जाता है तो आप दूसरा जड़ने में देर नहीं लगाते हैं. और इनके लिए कवर्स को थोड़ा ऊपर बुला लेते थे, उनको मालूम था ये बात, तो उन्होंने कहा मुझे हल्के में मत लो, मैं भी मार सकता हूँ. And he did that. Absolutely, and the way he hit that shot with a lot of disdain, didn't even care about the pace and the length of the delivery. So 2 boundaries in a row. स्टेप आउट करके मारा था, बहुत बेहतरीन शॉट था. Yeah, and T20 cricket has definitely made all these batsmen fearless, for sure. Otherwise, a handful of batsmen are only fearless, especially in the early 90s and all. Shrikant was one of them. Obviously from your generation, one of those batsmen who made 100%. cricket fearless. उधर से बॉलर चलता था, इधर से श्रीकांत चलते थे और Wow. बीच में मिलते थे दोनों. Wow. Oh, and that's a good delivery. That's a good comeback. He's running quickly for a single. Could be a chance of a run out, but he misses that. If that would have been fielded on the first attempt, it could have been a chance of a run out, Kulraj ji. जी हाँ, लेकिन मैं तारीफ करूंगा बैट्समैन की कि अपने नर्व्स को डाउन रखा. 2 चौके मारने के बाद एक सिंगल लेकर के उन्होंने रन्स, अपने रन रेट को चालू रखा. अक्सर क्या होता है, मोमेंटम में आदमी आता है, 2 चौके मारने के बाद खून गर्म हो जाता है, तीसरा मारने जाता है. Absolutely, and this is sensible cricket, as you mentioned. And this Lovely time it's a shot. wonderful cut That is shot. a shot. Will be a boundary for sure. Nobody stopping it. What a shot that is. Probably the shot of the evening till now. And the third boundary of the over. So very expensive over this, Kulraj ji. जी हाँ, और ये देखिए डीप कवर पे, डीप कवर पॉइंट पे फील्डर लगा हुआ था. उन्होंने बैट को ग्लाइड किया है, कवर पॉइंट और थर्ड मैन के बीच में से चौका मारा है. ताकत नहीं लगाई, लेकिन कलात्मक चौका इसको मैं कहूँगा. Absolutely, and there was no fielder on the deep point, and what a shot that was. Playing with soft hands, but giving the right direction to the ball. And the bowler coming with his next delivery. Oh, and this time he's appealing for an LBW, but probably missing the leg. He was trying to flick it towards the fine leg, and it would not have been out for sure. So that's a good decision, and this is the end of the third over. The score after 3 overs is 24 without loss. So suddenly they have increased the run rate to 8 runs per over, Kulraj ji. 14 runs of that over. जी हाँ, दूसरे ओवर में जो रन कम आए उसकी भरपाई हो गई. इस ओवर में 8 रन के औसत से खेल रहे हैं. Yeah, and 3 boundaries in that over, so absolutely brilliant batting that by both these batsmen. Both of them freeing their arms this time. एक चीज़ और शालीन देखिए, बॉलर एलबीडब्ल्यू की अपील ये बगैर देखे करता है कि विकेट के अंदर जा रही है कि नहीं जा रही. उसने देखा पैर पे गेंद लगी तो मेरा ये जन्मजात फर्ज है कि मैं अपील करूं, और अंपायर भी देख के हंसते. व्हाट आर यू अपीलिंग फॉर यार? Yeah, that's a very funny and a very good point. But sometimes what happens, the bowlers do it just to misguide the batsman so that the single is not taken. And Parth बहुत coming with his बेहतरीन. next over, and that's a good shot, but just a single. The deep cover is in place there for this shot specifically. So coming to your point, there are a lot of times when bowlers try to misguide the players who are batting and also the umpires to an extent, just to save that single. Of course, of course. और एक प्रेशर भी बनता है अपील का. Absolutely. The batsman does have it on the back of his mind. Parth to Abhay, and oh, and that's a good delivery. Bounced. Utilizing the shoulder very effectively there. And he's a tall man. लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट, दूर वाले छोर से.
हल्के कदमों से भागते हुए, और ये गेंद सीधा खेला है उसे साइड स्क्रीन की तरफ। लॉन्ग ऑन पे फील्डर मौजूद, 1 रन मिलेगा। And as you mentioned, he's bowling like James Faulkner to an extent. Doesn't have that pace, but comes with a slower run up and then bowls the delivery. Not easy to hit such bowlers. You already mentioned that, so absolutely wonderful observation, Kulrajji. Oh, and that's a good delivery. This time he quickens the delivery. It skids through Ojas, and a batsman of Ojas's caliber also misses that. So this is some intelligent bowling. ये इन्होंने अपने हाथ को थोड़ा सा रोका और तब प्रेशर लगा के फेंका तो फॉल भी फास्ट गई। सीधा सीधा फेंकते हैं तो बॉल स्लोअर बन जाता है। They probably used the wrist this time. Yes, not shoulder. At the last moment. So the youngsters watching this match can learn a lot from these senior bowlers who are bowling in this match. Using the shoulder is a different art altogether, and using the wrist at the time of delivery is an absolutely different thing. Comes with the next delivery, and this is a good ball again. He is definitely bowling some wonderful length and not allowing the batsman to free his arms. Kulrajji, I think this is wonderful bowling. शालीन और दिक्कत हो जाए अगर विकेट कीपर थोड़ी सी बहादुरी करके विकेट के पास खड़े हो जाए जाके, तो ये जो फॉरवर्ड आकर के खेल रहे हैं ये भी इनका बंद हो जाएगा, और तब एक शॉर्ट कवर लेकर के ये इनको आराम से बजा सकते हैं। Oh, absolutely, and I'm sure the players are not listening to your tip. But this is absolutely right, and see, this is a short delivery and cut really nicely. Could be a boundary again and will be a boundary. So they will have to think about the length there. Whenever there's a short delivery, Ojas is really strong on the cut shot. And this time also he just sends it towards the boundary. And either they should have a deep point fielder or maybe a backward point to stop that boundary. They're having the cover point, which is not the right field, or maybe the right line is not right. Length is not being bowled by Parv there. And that's the end of the 4th over, and the score after 4 overs is 30 without loss. So that's a wonderful start. 7.5 runs per over, Kulrajji. यहाँ लेकिन तारीफ करनी पड़ेगी इस बॉलर की, 2 ओवर में मात्र 8 रन दिए हैं इन्होंने। And that too when that boundary was scored on the last delivery. Yes. बस इनको यही देखना है कि बैट्समैन को पीछे जाने का मौका ना दें, क्योंकि पीछे गए तो इनकी स्पीड ऐसी है बैट्समैन उनको लिबर्टी ले सकता है। और लास्ट बॉल भी देखिए उन्होंने बैकफुट पे जाके जो कट किया है, वो अगर वो थोड़ी सी और ऊपर फेंकते गेंद तो बैकफुट जाने की लिबर्टी नहीं मिलती उनको। Absolutely right, and probably the wicketkeeper should stand up to the stumps when Parv is bowling. Sachin coming into bowl his 3rd over. 3 on the trot, the captain has decided to give him. He has been good but inconsistent, especially in terms of the length that he's bowling. And he's bowled some wonderful yorkers, but then few short deliveries as well. स्पीड निकालने का चक्कर है, वो गति निकालना चाहते हैं गेंद से। And this time he hits it straight to the fielder. He's dropped it. Oh, and the bowler is not at all happy. He's disappointed, and why shouldn't he be? That was straight into the hands. Was hit really hard, but these kind of catches you'll have to take. And Kulrajji, this could be a big blow. Abhay is in terrific form. जी हाँ, ये बहुत महंगा पड़ सकता है टीम को। ऐसे कैचेस बिल्कुल स्ट्रेट हाथ में कैच आया, ना दाएं जाए ना बाएं जाए, वहीं खड़े हो रहे हैं, लेकिन वो भी ना दाएं गए ना बाएं गए, कैच को दाएं कर दिया। Oh, and this time, this is a wonderful delivery by Sachin. He's just steaming in and bowling some wonderful length deliveries, and he's getting that outswing as well. So this is wonderful pace bowling. He's come back really strongly in this over. Very unlucky to not have got a wicket on the first delivery. Was an easy catch, but the covers not able to hold on to that. अंपायर ने उनके कुछ फॉलो थ्रू पर एतराज जताया है, क्योंकि मैचेस इसी विकेट पे होने हैं, आपको विकेट को संभाल के रखना है। Absolutely, and this is a very important thing that the pace bowlers will have to keep in mind. What a shot! This is a short delivery, and just standing and delivering a boundary there towards the long off. The mid-off fielder just a spectator there, and just have a look at the power that he has in his bottom hand. It's not a short boundary at all, Kulrajji, and what a shot by Abhay. जी हाँ, वो 20 गज के जो दायरे के अंदर पावर प्ले में प्लेयर रहते हैं, उसका पूरा फायदा देखिए। आप स्टेप आउट कर रहे हैं, तीनों गेंदों में उन्होंने स्टेप आउट किया है।
और ये कनेक्ट हुई तो बिल्कुल बाउंड्री के बाहर, और वो मानेंगे नहीं, वो फिर स्टेप आउट करेंगे. Oh, and this time this could be out. Should be taken. Oh, and this time he takes it. So the first wicket down, and Abhay finally succumbs to some wonderful bowling by Sachin Deshpande, and the first wicket for the Ddpl has gone down, and Tornadoes have struck finally. The first wicket down, and a nervy catch there, Kulraji, but finally he holds on to that. The fielder at cover point, probably the point fielder there. मैंने आपसे शालीन कहा था वो मानेंगे नहीं, वो मारेंगे उसको वैसे ही जाके. And just have a look at the replay there. That was an easy catch at the cover point, and he takes it comfortably, and that was a good innings by Abhay. He starts off well, and the first wicket is down on a score of 34 in the 5th over. Abhay Sharma out for a well-made 16 of just 13 deliveries. Sachin Deshpande finally gets his first wicket and gives a breakthrough to his team. And the new batsman Piyush Patel coming to the crease. हमारे कमेंटेटर बॉक्स में हमारे हिंदुस्तान की शान अजय शर्मा जी आए हुए हैं, और मैं उनका बहुत बहुत आभारी हूं कि उन्होंने आके इस मैच को और ग्रेसफुल कर दिया है. सर, फ्यू वर्ड्स फॉर दिस टूर्नामेंट. जैसा कि मैं जहाँ आया था और मैंने बोला था कि आई वाज वेरी एक्साइटेड. मैं अपने दोस्त दीपक को मिलने आया था, और बेदी साहब आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा after COVID time, and I convey my best wishes to all the participants and the participating teams. Thank you, sir. Thank you very much, sir. Thank you so much, Ajay sir, for your kind words, and we are honored to have you in this tournament, and thanks a lot, sir. कप्तान पीयूष अब इस समय विकेट पर आए हैं, लंबे कद के हैं. So we had the ex-Indian cricketer Mr. Ajay Sharma in the commentary box, and that was an honor to have him here. And Kulraji, now we have Sachin steaming in, the captain Piyush Patel. And this could be a no ball, that's a full toss, and the umpire has signaled a no ball. And that's a wonderful start by the left-handed batsman, the captain Piyush Patel, with a boundary towards the deep mid-wicket. ये गिफ्ट है इनको फ्री हिट का. Absolutely, and that was a poor delivery to the new batsman. Kulraji, he should have applied the pressure there. He's just got a wicket. लेकिन एक बात बोलूं शालीन आपको, जो भी नया जाता है उसकी आई इन होती नहीं है, और एकदम से फुल टॉस बॉल आ जाए उसको मारना भी एक टेढ़ी खीर है. आपके चेस्ट लेवल पर फुल टॉस बॉल आ जाए बीमर स्टाइल का, बट ही प्लेड वेरी वेल. 4 रन भी बटोरे, एक नो बॉल का बटोरा 5, और साथ में फ्री हिट. Absolutely, and the first delivery, if he gets that, not easy for any batsman to negotiate. Rightly said, Kulraji, and let's see how Sachin responds to this free hit. Oh, and that's a wonderful delivery, but I think this would be a boundary as well. This was a wonderful delivery, perfect Yorker. Piyush not able to negotiate that at all, but still, unfortunate for the bowler, still a boundary scored there. इसको बोलते हैं कि क्रिकेट का लक आपको नहीं फेवर कर रहा. Absolutely, just have a look at that replay. Wonderful bowling that is. If that would have been a normal delivery, not a free hit. एक्चुअली में बैट्समैन तो यॉर्क हुआ, विकेट कीपर भी यॉर्क हो गया. Absolutely, and what a delivery. So Sachin has a lot of intelligence as a bowler. He is very talented. It's just that he'll have to work on his consistency, because the kind of deliveries that he's bowled in the block hole, not easy at all with a new ball to bowl so many deliveries in the block hole. What do you say, Kulraji? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप. देखिए ये 4 रन भी मैं ये उनकी बॉलिंग की वजह से नहीं गए. A slower one. And this is the consistency which we were talking about. Again a full toss.
Although a slower one, a good thinking, but still the execution needs to improve. स्लोअर वन फेंकने की कोशिश की थी लेकिन लय भटक गए थोड़ा सा. Probably it slipped out of his hands. And 5 overs have been bowled. 44 for 1 DDPL strikers. So that's a wonderful start in terms of run rate. They've got some really good batsmen. Oja still at the crease. And Captain Piyush, who seems to be absolutely similar to Akshar Patel. Just have a look at his stance, his walk. Akshar Patel, either you can say Akshar Patel or Stephen Fleming. Yeah, absolutely. New Zealand captain. Yeah. He was also very slim and very tall. Yeah, but if you have a look at his stance, he's absolutely a replica of Akshar Patel, it seems. Just have a look at how he plays, how he walks. Yeah. And I've seen him bowling also in a lot of tournaments. He bowls. And he's the captain of the side also. Yeah, so a lot of similarities between him and Akshar Patel. I'm sure a lot of people would be calling him Akshar Patel. Now, as well. Shaleen, will be a very good contest because left armer is bowling with his control speed. Yeah, and नहीं, bowler change हुआ मेरे ख्याल से. I think the bowler has got changed, yeah. We'll just have a look at the name of the bowler. No, it's Parv Shah only. Kulraji, it's Parv Shah. Yeah, he's the same bowler. Oh, and this time he edges it, and the batsmen have been lucky today for sure. This is a boundary, and the keeper tried his best, but मैंने आपसे कहा था ये बहुत अच्छा कॉन्टेस्ट होगा. देखिए पहली गेंद नहीं दिखाया. Yeah, absolutely, and hats off to your experience as well. Without even the first ball being bowled, the experience said it all. And the first delivery he just edges, and the keeper tries his best, but still a boundary. So a lot of luck going with the DDPL strikers today in this first innings, Kulraj ji. बिल्कुल. अब देखिए, अब वो चीज की है जो उनको पहले करनी चाहिए थी. अब स्लिप को लाए हैं, ये बहुत पहले इनको करना चाहिए था. आप जितने सेफ मोड में जाएंगे उतने रन आप ज्यादा देंगे. Absolutely, and we were talking about that defensive approach by the bowling team. And that's a good shot, but straight to the fielder. Oh, attack is the best defense, Shaleen, sometimes. Absolutely, Kulraj ji, and probably they've realized it now. That's why they've kept the slip. And they had opened the field from the first over itself, so that was probably a bit more defensive than should have been. But then, good that they've realized. Oh, and this time he's cleaned him up. And Kulraj ji, what he was saying has finally got true. He has cleaned him up, and the second wicket down, and the captain Piyush Patel being sent back to the pavilion by some wonderful left arm pace bowling by Parv Shah. And Kulraj ji, I think this wicket belongs to you as well. You are the one who has said the contest would be really No dear, wonderful. शालीन क्या है कि अगर आप क्रिकेट को क्रिकेट की तरीके से खेलेंगे तो ही आप क्रिकेट को जीत सकते हैं. बाकी लक आपका कहते हैं फेवर कर रहा है. जब आप स्लिप ही नहीं लगाएंगे तो लक क्या फेवर कर रहा है. But I think he played the wrong line as well. He should have played with a straight bat there. He could have easily stopped that ball and not have got bowled. But he tried to pull that probably and hit it towards the onside. And I think that was the wrong choice of shot. स्पीड कम है बॉलर में. ओवर द विकेट गेंद कर रहा है तो डायगनली अंदर आएगा ही आएगा बॉल आपके. आप उसको लाइन में आके खेलेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा. And let me inform all of viewers, we have Kulraj Bedi ji, who's a very senior commentator. He has been a sports person as well. He is a very, very influential personality that we have in the commentary box. He's an actor as well. So lots. You can say jack of himself. all, master of none. Well, that's not true, Kulraj ji. Whatever time I've spent with you, I can definitely say what you said was not true at all. And I would now switch back commentary in Hindi only now. जरूर आपका स्वागत है. बहुत बहुत धन्यवाद कुलराज जी आपका. और नए बल्लेबाज आए स्ट्राइक पर और पहली गेंद को जाने दिया उन्होंने. और यही अच्छी बल्लेबाजी भी. जल्दबाजी में फिर से विकेट दे देना एक के बाद एक बहुत कोई अच्छी सूझबूझ नहीं होगी.
पावर प्ले का अंतिम ओवर चल रहा है और अक्सर ये मैंने देखा अंतिम ओवर में सब लोग बोलते हैं 2 गेंदें बची हैं, जो मारना है मार लो। ऐसा नहीं है, उसके बाद भी गेंदें हैं। इट्स नॉट द लास्ट ओवर। जी हाँ, लेकिन तारीफ करनी पड़ेगी कुलराज जी इस गेंदबाज की, बहुत मुश्किल हो रही है और ये वाइड गेंद। और कभी कभी कमेंटेटर्स कर्ज भी लगता है, जैसे ही हम किसी की तारीफ करते हैं अगली ही गेंद पर कुछ ना कुछ विपरीत हो जाता है, या तो उस टीम के साथ या फिर उस खिलाड़ी के साथ। बिल्कुल सही कह और रहे ये हैं। शायद यही हुआ, आप जैसे हम तारीफ कर रहे थे आप देखिए उन्होंने वाइड डाल दी। और उससे पहले अक्षर पटेल बता रहे थे तो वो भी पटेल हो गए बिल्कुल। जी हाँ, और ये पता नहीं किस टीम के लिए सही है, लेकिन कमेंटेटर्स कर्ज तो दोनों तरफ लगता है। बिल्कुल लगता है, बिल्कुल लगता है। अगली गेंद, और ये आसानी से खेल दिया और बढ़िया रन लिया, तेजी से लिया रन एक्स्ट्रा कवर्स के क्षेत्र में। हल्के हाथ से खेला था तो बॉल फील्डर तक पहुंचने में थोड़ा वक्त लगा और वो वक्त का बखूबी फायदा उठाया और 1 रन पूरा किया। जी हाँ, और आजकल के मॉडर्न क्रिकेट में ये तो आराम से रन हो जाता है, सिर्फ आपको अपनी फिटनेस और स्टैमिना पे ध्यान रखना है और रनिंग बिटवीन द विकेट्स का तालमेल सही होना चाहिए दोनों बल्लेबाजों के बीच। और ओजस वापस स्ट्राइक पर, और यहां पर ये आउट हो गए हैं, गलत शॉट खेला इन्होंने और ये दूसरा विकेट कुलराज जी। ये आउट होने वाली गेंद तो नहीं थी, लेग स्टंप के बाहर छोड़ देते वाइड हो जाती, लेकिन उन्होंने सोचा फाइन लेग का एरिया खाली है, उसका पूरा फायदा उठाएं और जी हाँ, और ये बड़ा विकेट चाहते थे और बल्ले का बाहरी किनारा लिया और ये बहुत बड़ा ये झटका है, ये सुसाइडल विकेट इसको मैं बोलूंगा। जी हाँ, और ओजस जैसे मजे हुए खिलाड़ी अगर इस तरह से पेविलियन वापस जाएंगे तो थोड़ा सा मनोबल भी गिरता है। लेकिन तारीफ करनी पड़ेगी यहाँ पर पर्व शाह की, 2 विकेट ले लिए उन्होंने। जी हाँ, 5वें ओवर तक लग रहा था बहुत पकड़ में जो है वो बिल्कुल कमाल दिखा रहे हैं। जेम्स फॉकनर, आपने जिनको उपाधि दी है जेम्स फॉकनर की, 5वें ओवर तक बिल्कुल पकड़ में था मैच बैटिंग टीम के, लेकिन 6ठे ओवर में स्थितियां कुछ बराबर सी हो गई हैं। जी हाँ, और जो आप कह रहे थे कि आखिरी 2 गेंद हैं तो इसको मार लो, शायद उसी बात का उल्लेख जो आपने किया था, मैं उस चीज को रिलेट कर पा रहा हूँ। ये जो ओजस ने शॉट खेला, ये गेंद तो बहुत ही बाहर थी, वाइड गेंद थी, उन्हें नहीं खेलना चाहिए था ये। उससे 1 रन का इजाफा होता और आपका विकेट भी सेफ रहता। जी हाँ, और एक गेंद भी अतिरिक्त मिल जाती है उनको वापस। बेशक बेशक आपको मौका मिलता अगली गेंद पर खेलने का, लेकिन अब आप जब अपनी सीमाओं को लांघते हैं तो फिर असीमित झटके भी लगते हैं आपको। जी हाँ, तीसरा विकेट गिर चुका है, 50 रन स्कोर हो गया है, हालांकि 3 विकेट गिर चुके हैं और 6ठा ओवर पूरा हुआ। पर्व शाह के 3 ओवर एक साथ करा दिए कप्तान ने और बहुत ही बढ़िया ये निर्णय साबित हुआ। पिछले ओवर में तो 2 विकेट ले लिए उन्होंने और दोनों गेंदबाजों ने अब विकेटों के कॉलम में अपनी एंट्री कर ली है। 3 विकेट गिर चुके हैं। जी हाँ, 3 गिर गए हैं, 2 गिरे पिछले ओवर में जो पर्व शाह ने लिए और एक लिया था सचिन देशपांडे ने। जी जी, वो भी रश ब्लड का विकेट था, क्योंकि वो हर बॉल को उस तरीके से खेलना चाहते थे जो कि मुमकिन नहीं है। अब पावर प्ले की समाप्ति, गेंदबाजी में परिवर्तन होगा, स्पिन गेंदबाज इंट्रोड्यूस किया जाएगा। जी हाँ, लग तो ऐसे रहा है, नए गेंदबाज आ रहे हैं और आनंद ठक्कर, नए गेंदबाज आनंद ठक्कर आए हैं। और ये आईडीएफसी फर्स्ट एमसीए बीकेसी आरसी एमपीएल 2022 का सीजन 2 है, दूसरा सीजन। स्वागत करना चाहेंगे अपने सभी दर्शकों का जिन्होंने अभी इस मैच को देखना शुरू किया है। और आनंद ठक्कर आ रहे हैं, ऑफ स्पिन गेंदबाज, और ये देखिए क्या जबरदस्त स्लाइड दी है इन्होंने, आई लेवल के ऊपर, आंख के ऊपर से गेंद डाल रहे हैं। लग तो रहा है बहुत हल्की गेंद है, लेकिन कुलराज जी आसान नहीं होता ऐसी गेंदों को खेलना। ये इनको देखकर और इनकी स्टाइल को देखकर इरापल्ली प्रसन्ना की याद आ रही है। वो भी बहुत फ्लोट करते थे, बॉल को टॉस अप करते थे। जी हाँ, और यही फायदा होता है एक सीनियर कमेंटेटर का कमेंट्री बॉक्स में होने का। हमें इरापल्ली प्रसन्ना जी के युग की बातें भी यहाँ पर पता चलती हैं, इतनी इन्फॉर्मेशन मिलती है, इतना ज्यादा ज्ञान यहाँ पर प्राप्त होता है, उसका अलग ही मजा है। क्रिकेट के ज्ञान में जो मजा है, और ये देखिए क्या गेंदबाजी है, वाह, जैसा आप कह रहे थे वैसे ही इरापल्ली प्रसन्ना की तरह ही फ्लाइट दे रहे हैं और ऑफ स्टंप के थोड़ा सा ही बाहर और पूरी तरह चकमा खा गए। और सबसे बड़ी बात क्या है कि इस गेंद को मारने के लिए हाथों में जान बहुत जरूरी है शालीन, क्योंकि गेंदबाजी की स्पीड तो है वो 60-62 से ज्यादा नहीं होगी,
इसको बाउंड्री के बाहर फेंकने के लिए आपको 135 की स्पीड से मारना पड़ेगा। और ये देखिए इस बार फंसा दिया। जी हाँ, ये शॉट मारना नहीं चाह रहे थे, हवा में गेंद गई, हालांकि कोई क्षेत्ररक्षक नहीं था वहां पर, लेकिन एक रन ही मिल पाया। और ये एक मनोवैज्ञानिक दबाव बना रहे हैं अपनी गेंदबाजी से। एक शॉर्ट फिट विकेट चाहिए इनको। देखिए आपका कहा सुन लिया कप्तान ने वहां पर, देखिए ऐसा लगा जी, तुरंत ही एक क्षेत्ररक्षक वहां पर तैनात किया गया। आप अगर फ्लिक करने जाएंगे और अपिश फ्लिक करेंगे तो वहीं पे कैच जाएगा। जी हाँ, बहुत ही बढ़िया ये निर्णय कप्तान का, अच्छी कप्तानी। ये बढ़िया शॉट कट किया, इसे कवर्स के क्षेत्र में एक ही रन होगा, हालांकि बढ़िया गेंदबाजी। इस बार थोड़ा फ्लैटिश ट्रैजेक्टरी लेके आए, इसलिए शायद आराम से कट हो गया। इन्हें फ्लाइट ही रखनी पड़ेगी, वही इनका असली हथियार है। जी हाँ बिल्कुल। फ्लाइट के बिना वैसे भी स्पिनर ऐसा लगता है कि तलवार के बिना कोई सैनिक है। और इस बार ये वाइड गेंद, वाइड का इशारा अंपायर के द्वारा, और जहां इन्होंने फ्लाइट थोड़ी कम की है, देखिए इनकी गेंदबाजी में भी परिवर्तन आना शुरू हुआ है कुलराज जी। 3 गेंदें ठक्कर वाली थी, 2 गेंदें थक्कर वाली थी। और ये देखिए जबरदस्त गेंदबाजी, और क्या स्टंपिंग है, वाह। और ये वापस आए अपनी स्ट्रेंथ पर, यही चाहिए था। कुलराज जी मानना पड़ेगा आपके अनुभव को, जैसे आपने बोला 3 गेंदें ठक्कर वाली थी और 2 गेंदें थक कर वाली थी, वैसे ही वापस वो अपने पहले फॉर्म में आया। और इस बार आउट का इशारा अंपायर के द्वारा, चौथा विकेट गिरता हुआ। और आपको रिप्ले दिखाएंगे, क्या जबरदस्त यहाँ पर गेंदबाजी, और कीपर की भी तारीफ करनी होगी, बेशक मौका ही नहीं दिया यहाँ पर। जी हाँ, ऋषभ पंत की तरह स्टंपिंग की इन्होंने यहाँ पर, बहुत ही जबरदस्त लेवल की विकेट कीपिंग। और चौथा विकेट गिरता हुआ 54 के स्कोर पर, खासी मुश्किल में आ गई ये टीम। बेशक Idfc स्ट्राइकर्स कुलराज जी एकदम से चरमरा गई है टीम। मिहिर वर्मा अब जा रहे हैं। क्या होता है कि अब आप बॉल की पिच तक नहीं आ पाते हैं तो बॉल आपकी आंखों से ओझल हो जाती है, तो आप अपने आप को यॉर्क कर लेते हैं और अपना बैलेंस भी खो देते हैं। इनकी जो फ्लाइट है ना, उससे मुझे एक और गेंदबाज याद आ रहे हैं, हालांकि वो ऑफ स्पिनर नहीं थे। आप मुझे बताइए, बिकॉज आप इतने सीनियर हो, आपने वो जो एरा है वो ज्यादा देखा है। मुझे नरेंद्र हिरवानी की फ्लाइट याद आ रही है। जी हाँ, लेकिन नरेंद्र हिरवानी वॉज ए रिस्ट स्पिनर, लेग ब्रेक, और कभी कभी वो बहुत छोटी गेंद भी कर देते थे। बट इरापल्ली प्रसन्ना हुए या फिर और पुराने बापू नाटकर्णी, जिन्होंने मैक्सिमम मिड इन ओवर फेंकने का रिकॉर्ड बनाया था, एक स्पॉट बना देते थे पिच पर और उस पर दिन भर गेंद फेंकते रहते थे। दैट वाज द डेडिकेशन, यू कैन से। क्या बात है। और कुलराज जी, आप ऐसी ऐसी बातें हमारे साथ शेयर कर रहे हैं उस युग की, जो हमने शायद सिर्फ सुना ही है, और कितना अच्छा लग रहा है सुन के। और शालीन में और बापू नाटकर्णी जी तो इतने सीनियर खिलाड़ी हैं कि मतलब ऐसे ही उनका नाम जो है विश्व स्तर क्रिकेट पे नहीं इतना प्रसिद्ध है। और प्रसन्ना जी के बारे में बोलूं मैं, वो फ्लाइट करते थे, पीछे विकेट कीपर या तो फारूक इंजीनियर साहब थे या फिर उसके बाद किरमानी साहब आए थे, लेकिन जो शॉर्ट लेग के फील्डर थे ना, एकनाथ सोलकर, उसकी वजह से, उनकी वजह से बिशन बेदी, चंद्रशेखर एंड प्रसन्ना, तीनों को बहुत विकेट्स मिले हैं। जी हाँ बिल्कुल सही कुलराज जी, मेरे पिताजी भी उसी जमाने के हैं और वो मुझे बताते हैं कि इतना एकनाथ सोलकर तो 6-6 फीट तक आराम से डाइव मार लेते थे। बिल्कुल आप वही बात कह रहे हो। और इस बार नए बल्लेबाज ने आते ही डॉट गेंद खेली, बढ़िया गेंदबाजी, और मिहिर ने उसे डॉट खेलकर ओवर समाप्त करना ही बेहतर समझा, और ये सही शैली भी। अभी विकेट गिरा है और 7 ओवर के बाद स्कोर 54 रन 4 विकेट पर। कुलराज जी, क्या लग रहा है आपको यहाँ पर? जी, बॉलिंग चढ़ गए हैं, बिल्कुल बल पलड़ा भारी है और मेन बैट्समैन पवेलियन जा चुके हैं। अगर इस बॉलर को आपको खेलना है तो आपको अपना फुटवर्क का इस्तेमाल करना पड़ेगा। आप सोचेंगे क्रीज में खड़े खड़े खेल लें, आप रन नहीं बना पाएंगे, आप कुछ नहीं कर पाएंगे। स्टेप आउट। बिल्कुल मैं आपसे सहमत हूँ, डाउन द ट्रैक आना पड़ेगा, स्टेप आउट करना पड़ेगा, जैसे कि आप बता रहे हो। और अब नए गेंदबाज आ रहे हैं अगला ओवर डालने। नए गेंदबाज वीरल लेफ्ट आर्म फेंकेंगे मेरे ख्याल से। जी हाँ, देखना पड़ेगा, राइट आर्म है शायद। राइट आर्म है क्योंकि जिस तरह से गेंद घुमाई। जी
राइट आर्म है और कुलराज जी अब देखना है कि किस तरह की शैली अपनाते हैं बल्लेबाज। लेग ब्रेक और गेंदबाज। ये बढ़िया शुरुआत। 2 रन होने चाहिए थे, यहाँ पे प्रेशर नहीं बना पाए। पहला रन तेज दौड़ेंगे तभी दूसरा रन बन पाएगा। हाँ लेकिन शायद इतना दबाव पहले ही है कि 2 रन के लिए सोचा ही नहीं होगा। 4 विकेट क्योंकि गिर गए हैं, अभी साझेदारी चाहिए, इसलिए शायद किसी तरह का कोई खतरा मोल नहीं लेना चाह रहे हैं। हालांकि गेंदबाजी भी फील्ड के हिसाब से नहीं थी। आपने क्षेत्र रक्षण लगाया ऑफ स्टंप का और आप डाल रहे हो अगर पैड्स पे। ये बढ़िया गेंद और ये फंसे और वहीं से अभी फील्डर को हटाया और मिड विकेट पर लगाया, लेकिन 1 रन डीप कवर के क्षेत्र में। बढ़िया गेंदबाजी है। आपने बिल्कुल सही कहा शालीन, फील्ड के हिसाब से गेंदबाजी करने के लिए अगर यही गेंद पहली गेंद होती तो वहां कैच आउट हो जाते थे। और ये अच्छा बढ़िया बॉल। गेंदबाजी, बहुत ही अच्छी गेंदबाजी। और अनीस विजयकर हैं बल्लेबाज। लेग ब्रेक फेंक रहे हैं और फ्लैट लेग ब्रेक फेंक रहे हैं, फ्लाइट नहीं दे रहे हैं। जी हाँ, फ्लैटिश ट्रैजेक्टरी अपना रहे हैं। और सैराज बहुतुले की तरह एक्शन है थोड़ा सा इनका। और ये देखिए फंसे इस बार फिर से फ्लाइट के जाल में और ये खराब क्षेत्र रक्षण। 1 ही रन होना चाहिए था लेकिन वहां पर कवर पॉइंट पर मिसफील्डिंग हुई और 2 रन हो गए आराम से। लेकिन ये अच्छी गेंदबाजी कुलराज जी, इस बार फिर से फंस गए थे। बिल्कुल बिल्कुल, पिच तक आए बगैर ड्राइव करने गए, बाहरी किनारा लिया, मोटा बाहरी किनारा लिया और पॉइंट की तरफ उछल के गई। पूरे बैट में आती तो शायद कवर की तरफ जाती, लेकिन फील्डर को भी बोलना पड़ेगा, थोड़ी फील्डिंग अपनी सुधारनी चाहिए। 1 रन की जगह 2 रन ना दें आप। बहुत छोटा बॉल, बहुत खराब गेंद और उसको पॉइंट डीप कवर की तरफ खेला। 1 रन। और इसको भुना नहीं पाए, इसको भुना नहीं पाए। चौका रनिंग बिटवीन द विकेट, चौका हो सकता था। 1 ही रन हुआ, हालांकि खराब गेंद थी, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन भुना भी नहीं पाए बल्लेबाज। लेग साइड पूरा खाली है, शॉर्ट मिड विकेट के पीछे भी उछाल के मार सकते थे आप इतनी छोटी गेंद को। और ये जबरदस्त गेंदबाजी, वाह। शायद इसी गेंद की तलाश में थे ये इतनी देर से कुलराज जी। टर्न लिया, विकेट खतरनाक हो सकता है स्पिनर के लिए। और इन्हें उछाल भी मिला, अगर आपने जी हाँ ध्यान दिया हो तो उछाल भी मिला इन्हें अच्छा खासा। और ओवर की समाप्ति हो गई है। 8 ओवर के बाद स्कोर है 59 रन 4 विकेट के नुकसान पर। 8 से भी नीचे औसत आ गया है। सूरज ढलता हुआ, मौसम थोड़ा खुशगवार होता हुआ, हवा में ठंडक आती हुई, ठक्कर दाएं हाथ से ओवर द विकेट, फिर फ्लाइटेड बॉल और स्टेप आउट करके सीधा खेला है। और ये चौका होना चाहिए। बैक ड्राइव, लेकिन फील्ड किया उसको। जी नहीं, वहां पर रोक लिया क्षेत्र रक्षक ने। बहुत अच्छी फील्डिंग, बढ़िया क्षेत्र रक्षण। 1 ही रन, लेकिन बढ़िया शॉट मारा। जैसा कि हम यहाँ पर चर्चा कर रहे थे कि आगे बढ़कर स्टेप आउट करके डाउन द ट्रैक आकर खेलें। अब यहाँ पर गेंदबाजी की बहादुरी है कि अगर आप फिर से फ्लाइट करें तो। जी हाँ, अनीस विजयकर स्ट्राइक। और ये देखिए, तो बिल्कुल और ये फंस गए। क्या ये कैच हो जाएंगे? और ये खराब क्षेत्र रक्षण और बिल्कुल भी खुश नहीं गेंदबाज। और ये 2 रन भी हो गए। तो ये इंसल्ट टू इंजरी जो होता है, ये उस तरह का थोड़ा सा एक मोमेंट हो गया, क्षण हो गया। जी बिल्कुल, बहुत हलवा टाइप का बॉल था और उसको मारा और ऐसे फील्डर कैच ले रहे थे जैसे चिड़िया पकड़ रहे हो, और गेंद उनके हाथ से बिल्कुल ऐसे निकली जैसे गेटवे ऑफ इंडिया से गाड़ियां निकलती हैं। जी हाँ, खराब जजमेंट आगे आगे पहले ही। और इस बार आउट होना चाहिए, और इस बार गेंदबाज नहीं, चूक कर दी। अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं लेकिन
क्षेत्ररक्षण में यहाँ पर चूक जा रहे हैं, पहले क्षेत्ररक्षक से चूक हुए, थोड़ा इस सा बार गेंदबाज। झुकने में तकलीफ हुई, इसलिए ये कैच नहीं ले पाए। जी हाँ, और ये मिहिर दोनों बार फंस गए फ्लाइट के जाल में, और ये फ्लाइट का जाल ऐसा होता है कि अच्छे अच्छों को फंसा देता है। जैसा कि आपने और हमने चर्चा की कि आगे आकर ही खेलना पड़ेगा। बेशक, और ये बैट्समैन कर रहे हैं जो इस समय स्ट्राइक पर ये है। अनीस विजयकर स्ट्राइक पर हैं। जी, ये देखिएगा स्टेप आउट करेंगे भी। ये इनको छोटी दी गेंद, हाँ। लोअर ट्रेजेक्टरी की शॉर्ट गेंद, छोटी गेंद, और ये देखिए। बढ़िया शॉट डीप कवर के क्षेत्र में। क्या यहाँ पर चौका मिलेगा? खराब क्षेत्ररक्षण और 4 रन हो गया। पैर से रोकने की कोशिश की, और अगर झुकते हैं यहाँ पर तो 2 ही रन होते हैं, लेकिन जैसा कि आपने पिछली गेंद पर भी कहा था, झुकना जरूरी है। क्रिकेट के गेम में आपको झुकना ही पड़ेगा, और ये 2 अतिरिक्त रन दे दिए यहाँ पर। आप राजा महाराजा की सल्तनत से नहीं है, आपको झुकना ही पड़ेगा सर बॉल के लिए। और आप देखिए कवर फील्डर की भी डाइव बिल्कुल जाया गई। जी हाँ, बढ़िया शॉट था, छोटी गेंद थी, और ये इस बार हवा में खेला, और अब की हाथ सीधे- डाल दिया उन्होंने। जी हाँ, इस बार 1 ही रन। अच्छा क्षेत्ररक्षण यहाँ पर, तेज शॉट था, करारा प्रहार। अब देखिए आपको फिर फ्लाइट दिखेगी इस बॉल में, एक बार फिर से लंबी फ्लाइट दिखेगी। नहीं दिखी। इनको फ्लाइट ही देनी चाहिए अगर इनका विकेट इनको परचेज करना है तो। जी हाँ, और पहले भी 2 बार हवा में खेल चुके हैं, बेशक। फ्लाइट के जाल में फंस चुके हैं। तो आपकी बात से इनकी रणनीति फ्लाइट की होनी चाहिए। हालांकि ओवर की समाप्ति हो गई है, 9 ओवर के बाद स्कोर है 68 रन 4 विकेट के नुकसान पर। डीडीपीएल स्ट्राइकर्स एक समय बहुत ही जबरदस्त तेजी से खेल रहे थे। हालांकि पावर प्ले में 50 रन पूरे हो चुके थे, और उसके बाद 4 ओवर में मात्र 18 रन आए हैं। जी हाँ, और विकेट गिर गए हैं, सबसे बड़ी बात ये। जी हाँ, विकेट के भी टैली में देखिए आप, काफी विकेटें आ गई हैं टैली में। तेजी में एक बार फिर लेग स्पिन कमी इसलिए आई गेंदबाजी। क्योंकि विकेट गिर गया। जी हाँ, ये जबरदस्त लेग स्पिनर है, तारीफ करनी होगी इस गेंदबाज की। पिछला ओवर था, और अब आ रहे हैं विरल। बढ़िया गेंदबाजी है, देखिए बहुत ज्यादा घुमाव है इनकी गेंदों में। लगान का कचरा याद आ गया मुझे। मिडल ऑफ पर डाल करके ऑफ स्टंप के बाहर जा रही है गेंद, अच्छी लाइन है। क्या, और ये स्टुअर्ट मैकगिल की तरह करा रहे हैं। इतना घुमाव स्टुअर्ट मैकगिल कराते थे जब ऑस्ट्रेलिया के लिए खेलते थे। जी हाँ, अंडर शैडोड रहे हैं वो भी शेन वॉन के। और ये देखिए और गंदी ये लाइन। बहुत ही जबरदस्त शॉट, खराब गेंद ये, और उचित व्यवहार किया ऐसी गेंद के साथ जैसा होना चाहिए। डीप स्क्वायर लेग के क्षेत्र में 4 रन के लिए उसे फुल टॉस बनाकर भेज दिया। इसको बोलते हैं गेंदबाज दिशा भटके, बल्लेबाज ने 4 रन झटके। जी हाँ, आप रिप्ले देख सकते हैं, खराब गेंद, और विरल जैसे मचे हुए, और इस बार फिर से फुल टॉस, बढ़िया शॉट। यहां पर शायद 1 ही रन होगा इस बार, एक डीप मिड विकेट लगा रखा है। अब एक मिड विकेट शॉट मिड विकेट पे आए हैं, और डीप कवर को शॉर्ट कवर पे ले लिया है। ऐसी बढ़िया। गेंद वो खेल लेंगे, आप उनको फ्लाइट दे करके बाहर निमंत्रण दें, तभी आप विकेट ले पाएंगे। जी हाँ, और अब 4 विकेट गिर गए हैं तो थोड़ा अटैक करना चाहिए, आक्रामक रुख अपनाना चाहिए। जल्दी से जल्दी अगर आउट कर देंगे तो लक्ष्य तो कम पीछा करने को मिलेगा, और अगर नहीं जा रहा है 1-2 ओवर सही तो फिर वापस आप डिफेंसिव अप्रोच पे आ जाइए। ये देखिए, बहुत सही आप बोल रहे थे, और इस बार कैच होना चाहिए, और ये छोड़ दिया। बहुत ही खराब क्षेत्ररक्षण, और बिल्कुल आप सही कह रहे थे कुलराज जी, आगे की गेंद कराए, उन्हें फंसाया, लेकिन जब तक क्षेत्ररक्षक समर्थन नहीं देंगे आपकी अच्छी गेंदबाजी का, तब तक विकेट कहां से मिलेंगे। ये दूसरा कैच छोड़ा है इन्होंने, और दोनों बहुत आसान कैच है। और ये बढ़िया शॉट, क्या यहाँ पर कैच होंगे ये, और ये चौका हो गया है।
क्षेत्र रक्षण फिर से बहुत अच्छा नियम, रिप्ले दिखाएंगे। जी हाँ, ये देखिए और हवा 10 में ओवर की खेला हुआ समाप्ति, स्कोर। और ये देखिए रोक सकते थे, अरे वाह, और सही ये- कह रहे हैं आप, ये रोक सकते थे, मिसफील्ड किया उन्होंने। और ये ड्रिंक्स ब्रेक का निर्देश अंपायरों का। और Look, magic. Whimsical, quirky, and I wanted my walls to reflect all of that. Playful, subtle, artistic, world-class. So I think my walls are also my art now. Look, magic. Whimsical, quirky, and I wanted my walls to reflect all of that. Playful, subtle, artistic. So 10 overs have been bowled and the score is 78 for 4. On strike is Mihir Verma and Karthik Shah is the new bowler.
मध्यम तेज गति के गेंदबाज हैं. Absolutely, and he starts off with a wide, so not a good start by the bowler, but Mihir would be a bit relieved now. What do you say? Because he was getting trapped in the flight and he's very lucky to be there. Yes. और अभी एक ओवर और अभी मेरे ख्याल से ऑफ ब्रेक बॉलर को मिलना चाहिए था यहाँ पे उनका विकेट परचेज करने के लिए. Oh, and this time he bowls a good Yorker straight into the block hole. Mihir plays it well, digs it out, and takes a quick single. And they've got some really good variety in their bowling. They've got a left armer as well. They've got a genuine right arm fast bowler in Sachin. And then they have a couple of good spinners, the off spinner as well as the leg spinner. And then they have a medium pace bowler now. So a good variety, Kulraji. What do you say? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप. Oh, and that's a wonderful drive. What a shot that is. Will be a boundary. Oh, and that's a fielder who does well there. गैप में खेला, बिल्कुल स्वीपर कवर पर तैनात फील्डर को थोड़ा भागना पड़ा अपने दाईं ओर और जब तक वो थ्रो करते दौड़ के 2 रन. Yeah, and that was a quality shot. We thought it could be a boundary, but the fielder did well there. जी हाँ, बहुत बड़ा गैप है पॉइंट और एक्स्ट्रा कवर के बीच में और ये अच्छा शॉट. दैट इज द शॉट ऑफ द डे. Wonderful shot. That is the shot of the day. Absolutely brilliant flick there towards the fine leg. That was a poor delivery. Asking to be hit and he did not leave that. Straying down his pads. कलाइयों का भरपूर उपयोग किया उन्होंने और रिस्ट वर्क इससे बढ़िया अभी तक पूरे मैच में मैंने नहीं देखा जितना बढ़िया रिस्ट वर्क ये मारा उन्होंने. The best boundary. Right, Kulraji, and that was a special shot for sure. ये जो शॉट है ये इंडियन क्रिकेट में बहुधा पाया जाता है. इसकी शुरुआत मोहम्मद अजहरुद्दीन से हुई थी. Oh, and that's a wonderful comeback by the bowler. You'll have to give it to the bowler this time. You almost got him there. And you're absolutely right, Mohammad Azharuddin, the wonderfully talented player. And कलाइयों के जादूगर तो गुंडप्पा विश्वनाथ थे लेकिन ये लेग साइड पर फ्लिक करना ही स्टार्टेड मोहम्मद अजहरुद्दीन. That's a wide delivery again. So another extra and he'll have to bowl that again. So they'll have to be really careful on the wides. Not only they give the extra run, but they will have to bowl that delivery again. So शालीन इस तरह से प्रेशर जो बनाया हुआ था इन्होंने बॉलिंग टीम ने वो उनके हाथ से खिसकता जाएगा तो उनको प्रेशर अपना बना के रखना पड़ेगा. Absolutely, Kulraji. And this time he bowls a slower delivery. That was a good one and quick single taken by Mihir. This is good running between the wickets. And when you talk about Mohammad Azharuddin, he used to virtually rotate his wrist 180 degrees or maybe 360 degrees. Oh, and this time trying to hit that doesn't succeed and could be a leg by there. We'll have to see the umpire signal that, yeah, that's a leg by. मुझे कुछ याद आ गया शालीन जी आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ. मैंने कई बार देखा एक पार्टनरशिप इंडियन टीम में होते हुए अजहरुद्दीन और अजय जाडेजा. अजहर बहुत अच्छा फ्लिक खेलते थे और जाडेजा जब भी फ्लिक खेलते थे उनके पैरों में फंस जाता था बॉल तो वो हंसते हुए लेग बाय एक रन लेते थे. वही मंजर मुझे अभी देखने को मिला. एक बढ़िया फ्लिक शॉट उसके बाद दूसरे बैट्समैन के पैड में बॉल फंस गया. Yeah, and Jadeja was also one of those brilliant middle order batsmen, low middle order. He used to one of the finest runner between the wickets. Yeah, and one of the finest fielders as well. He only started diving on the field in the outfield. And that catch of Dean Jones, nobody could forget that in a 92 World Cup. So Ajay Jadeja, very, very special cricketer, and he saved so many matches for the country. And that innings against Waqar Younis in the 1996 World Cup. Oh, 25 balls, 45 runs. Some catches are history. In 1983, Kapil Dev took Vivian Richards' catch. Absolutely. That's a historic catch for sure. And he's turned to the deep mid wicket this time. And a couple of runs taken easily. So Mihir playing well this time against the leg spinner.
अब हाथ खोल रहे हैं बैट्समैन. Yeah, and Viral Amin coming into ball his third over. Oh, and this time he's been stumped, and this is wonderful bowling. And this मैंने is- आपसे पहले कहा था शालीन, अगर इनको आउट करना है आपको स्पिनर को ही लाना पड़ेगा. Yeah, and that's good captaincy as well, Kulraji. Absolutely, probably he listened to you in the break. And there's a fifth wicket down. So Ddpl strikers in a bit of trouble now. 5 wickets down already. Half of the team back into the pavilion. And Viral is bowling brilliantly. नए बैट्समैन जा रहे हैं, उनके शर्ट के पीछे मील का पत्थर लगा हुआ है. 1725, इतना बड़ा नंबर मैंने आज तक किसी क्रिकेटर के नहीं देखा. Yeah, and we'll have to really ask him probably after the match. What's the reason behind that? And Mihir played well, but then he was stumped of some wonderful leg spin bowling. 91 for 5. नए बल्लेबाज विशाल आए हैं. जर्सी नंबर 1725. Tornadoes now in the attacking mode. They've taken 5 wickets. They would want to wrap up the innings before the 20 overs for sure. We'll have to see how the new batsman अच्छा बॉल था ये. plays well, and yeah, that was a good delivery. He started off well, but that was a good leave as well. He did not want to play it just for the sake of playing it. He wants to settle down, and that should be the approach. They've already scored 91 runs, so probably they'll be looking at a 150 plus score. That's a good cut shot to the sweeper cover, and just a single this time. The sweeper cover does well. Throws it back to the keeper. A good throw, just a single given. यहाँ पर मैं आपसे एक बात बोलना चाहूँगा शालीन जी, कि जिस तरह से स्ट्रोक खेले थे, अगर इसको प्रेशर के साथ रखते तो यहाँ 2 रन आ सकते थे. आप 1 को 2 में और 2 को 4 में तब्दील करना ही पड़ेगा आपको. Absolutely, and it's a big ground as well. They'll have to keep that in mind, and this is a good delivery again. And a quick single taken, trying to run him out, but he's in easily. So a single there towards the cover point. अच्छा रन भागे. This is the 12th over. 1 delivery remaining. So the run rate is quite well maintained here, Kulraji. जी हाँ, They just need to save wickets and stay there till the end with the same run rate. They would definitely be able to score 160 plus if they. अगर 160 रन बनाते हैं तो ये मैच लड़ जाएगा. फाइट होएगा मैच. Short delivery. Well played, and a sweeper cover there to cut that shot. Just a single. That's the end of another good over. A successful one for Viral Amin. And 94 for 5 after 12 overs. Anish Vijayakar is playing a good innings. He's not out on 30 of 20 deliveries. कुछ अच्छे शॉट का मुजाहरा किया है उन्होंने, नमूना पेश किया अच्छे शॉट्स का. और उनको अब ये 18-19 ओवर तक खेलना पड़ेगा, अंत तक लेके जाना पड़ेगा टीम को एक एंड से. Absolutely, he'll have to stay till the end if he wants his team to score at least 150. Not और at all. दूसरे छोर पर बैट्समैन को सिंगल लेके उन्हें स्ट्राइक भी देनी चाहिए. Yeah, and that should be the approach. He's a set batsman. He's playing the sheet anchor's role here. Could play the long innings. He has that technique with him in his armor. उन्होंने अपने मुख्य गेंदबाज को फिर से एक बार बुलाया है गेंदबाजी करने के लिए, क्योंकि उनको ये विकेट चाहिए एक. अगर इनका विकेट मिल जाता है उन्हें तो मैच पूरी तरीके से गिरफ्त में आ जाएगा गेंदबाजों की तरफ. Yeah, पर Parv bowling is 4th over. Absolutely right, Kulraji. And he took 2 wickets in his last over, if you remember correctly. क्या उसको कंटिन्यू कर पाएंगे? कदम चूके, डेड बॉल का इशारा.
वाइड बॉल, ये कुछ टेंडेंसी सी हो गई, जो भी बॉलर आता है पहली वाइड ही फेंकता है. Yeah, and probably the gap between the overs is the reason behind that. But nevertheless, a extra run to the batting team, which is good for them. That's a good run taken again towards the cover point. यही चाहिए, एक रन लेकर के सेट बैट्समैन को आप स्ट्राइक दें. पार्थ लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट, शॉर्ट ऑफ लेंथ बॉल थी, उसको उठा दिया है. And will that be a catch? No, that was way short of the fielder. The fine leg fielder does well, though, just a single. And Parv is bowling really wet. नो मैंस लैंड. This is his last over and he's trying to make it count. 4 गेंदें शेष हैं मात्र उनकी. पहली वाइड हुई थी और 2 गेंदों में सिंगल आए हैं. अब बची हुई 4 गेंदों का किस तरीके से सामना करते हैं बल्लेबाज. Oh, and that was a good delivery, but played well. He stepped forward, and this could be a boundary here. We'll have to see that. And it is a boundary. So that's a good shot. It was not a bad delivery, Kulrajji, but he stepped forward. Just have a look at the replay. Yeah, and that's the 100 up with that shot as well. So 100 रन पूरे हो गए बैटिंग साइड के. absolutely, अच्छा and शॉट खेला था ये. Vishal's first boundary, जी हाँ. and immediately it has led to a change in field positions. They've taken a extra cover along with a cover point and a cover and a backward point as well, and a short third man as well. So लेग साइड पूरा खाली है शालीन. absolutely packed offside field, absolutely. Oh, and this time he still finds the gap. That's like threading a needle. That was a packed offside field. Still he takes a single towards the और शालीन covers. मैंने देखा है कि गेंद आपके हाथ के आसपास हो ना हो, लेकिन आप डाइव जरूर मारो. ये एक रूल है क्रिकेट का आजकल. Yeah, and you never know, that dive could probably create a chance of a run out as well. बहुत बाहर ऑफ स्टंप के, वाइड का इशारा. Oh, that's a poor delivery. Wade outside the off stump, probably on the 7th or 8th stump. Not at all. आपने एक चीज नोट की शालीन, इस पूरे ओवर में उन्होंने एक भी स्लोअर वन गेंद नहीं फेंकी है. वो जिस बेसिक्स पर उन्होंने विकेट्स लिए थे, वो बेसिक पर एक गेंद नहीं फेंकी उन्होंने. Yeah, and probably he's trying too hard in this over. Oh, and this time, what a shot that is swept for a huge six. What a shot, probably the shot of the evening. Better than the flick that he has played already for a boundary, but this shot is a special shot and drifting down the leg side, increasing his pace as well, and the pace picked up brilliantly by the batsman there. Just have a look at the replay. What a shot. पहला छक्का मैच का. Oh, and what a shot that is. Kulraj, just have a look at the replay. Just traveled, and that's not a short boundary. Played wonderfully well and showing shades of AB de Villiers there. Not an easy shot to play. इसको बोलते हैं घुटना तोड़ शॉट. Absolutely, and Anish Vijayakar is in terrific touch. Probably the shot of the evening by him. अनीस विजयकर ने घुटने पर बैठ करके गेंद को वापस बाहर फेंका. इसको इस तरह से बोला जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा. पार्थ अपने ओवर की अंतिम गेंद. That's a stunning shot, and let's see what Parv will do. This is the last delivery of his spell and the quota of 4 overs. And he plays it really well. So this is wonderful batting. Probably he'll come for the second as well, but the first run taken really slowly. Should have been a couple there. जी हाँ, लेकिन उन्होंने जानबूझ के दूसरा रन नहीं लिया होगा ताकि स्ट्राइक उनके पास में रहे. अंतिम गेंद थी. Probably the right reason, Kulraj ji, absolutely right. And that's the end of
the over and the spell from Parv Shah. 30 for 2 in his 4 overs. So not a bad performance at all, but could have been better as well. If he would have not bowled those extras and Whimsical, drifted down the leg quirky, side. and I wanted my walls to reflect all of that. Playful, subtle, artistic, world-class. So I think my walls are also my art now. 3 ओवर में मात्र 14 रन दिए थे और चौथे ओवर में 16 रन दे दिए. Rightly said, very expensive over, and probably the entire analysis goes for a toss when you give 16 runs in 3 overs and then you suddenly give 14 in 3 and then suddenly you give 16 in the 4th, and that's a short delivery by Viral. Played really well, probably in the gap, and would be a boundary. Yes, that is a boundary. That's a poor delivery and dealt with severely and given the treatment there by the batsman. Anish Vijayakar is in top form today. And it's wonderful to see a batsman who's actually playing some really good shots in the gap. And that too technically very sound, Anish Vijayakar. और एक खासियत उनमें देखिए, वो चौका मार के बिल्कुल कूल रहते हैं. इज अ वेरी कूल क्रिकेटर, शांत क्रिकेटर हैं. चौका मारा और आहिस्ता आहिस्ता अपनी क्रीज में लौटे और फिर तैयार हैं. And that's the hallmark of a very big cricketer. And this time it would be a no ball, and the umpire just declares that a no ball, and this is poor fielding. Why aren't they using their hands there? Trying to stop it with his leg this time, and a boundary again, and that was a no ball as well. So 5 runs scored and a free hit again. मैच का पलड़ा टोटल बैटिंग टीम की तरफ जाता हुआ. जो एक पकड़ बनाई थी बॉलिंग टीम ने, वो उनके हाथ से लगभग छूट सी गई है. क्रिकेट के मैदान में फुटबॉल देखने को मिल रहा है. लोग पैर से गेंद रोकने की कोशिश कर रहे हैं. Yeah, and probably missing the trick there, the bowling team. जी हाँ, फील्डर जो है वो रोनाल्डो बन गए हैं. Oh, and this time he comes down the track, just a single this time though. The long off does well. That was a good shot, but Viral Amin not bowling the leg spinners that he was bowling in his previous overs. He's not flighting the deliveries too much, going with a flattish trajectory, and probably that is the reason why a lot of runs are being scored. That was a free hit as well, so just a single. This is the flight that we are talking about. The first delivery in this over which has been actually flighted properly. और ये स्टंपिंग का भी चांस हो सकता था इसमें. पूरी तरीके से चूके विकेट कीपर कलेक्ट नहीं कर पाए. And Vishal had missed that. जी हाँ, बहुत नजदीकी मामला था ये. So the consistency is what is required in the bowlers here, and that's a good delivery, but a good shot cut towards the sweeper cover, just a single. Vishal plays it well, probably short of length, and rocks back on the back foot for a single there. अब आप देखिए फील्डर्स के थ्रो से आपको पता लगता है कि मोराल डाउन सा लग रहा है. अंडर आर्म थ्रो कर रहे हैं बाउंड्री से. जितनी देर में थ्रो आएगा उतनी देर में बैट्समैन दौड़ के 1 रन ले सकता है. Absolutely right, Kulraji. And oh, and this time he hits it towards the deep square leg. Could be a boundary there. Is a boundary. What a shot that is. And Anish Vijayakar is in the form of his life. And it is 50. पूरे. Wow. विजयकर के 50 रन पूरे. This is absolutely brilliant batting by Anish. And he is on 51 now. Brilliant 50 score. Just have a look at the replay there. 51 of just 37 deliveries. What an innings, Kulraji. 27 deliveries, I beg your pardon. 51 of 27. और उनके 50 रन के जश्न को मनाती हुई यहाँ की लाइट भी जल गई हैं ग्राउंड की. और ये फिर से मारा है स्वीपर कवर की तरफ. Absolutely, Kulraji. Wonderful batting this is. He is a genuine middle order batsman and doesn't wait for the loose deliveries. Just keeps on scoring with his absolutely brilliant technique. And a short break and we'll be back soon. Stay tuned, viewers. Look, magic. Whimsical, quirky, and I wanted my walls to reflect all of that. Playful, subtle, artistic, world-class. So I think my walls are also my art now.
after the short break. एक बार फिर से गैम्बल खेल रहे हैं. 126 for 5 after 14 overs. Kulraji, what do you think would be the final score? I think they could easily reach 170 now the way Anis is playing. जी हाँ, लेकिन ये ओवर बहुत मायने रखता है. अगर फील्डर ने साथ दिया तो इस ओवर में हम कुछ चेंज देख सकते हैं, क्योंकि अगर इन्होंने बाकायदा फ्लाइट की, बड़ा ग्राउंड है और फील्डर्स ने इनका साथ दिया, फील्डर का साथ बहुत ज़रूरी है. 3 से 4 कैचेस ड्रॉप हुए हैं अभी तक और आसान कैच, ये भी नहीं थे कि दूर हो, आपके हाथ में आके कैच गिर जाए तो absolutely that's a drop catch and a mistake of the fielder only, so rightly put there with Kulraji. Now Thakkar is on the bowling mark. He's going to bowl. This is a gamble, you can say. जिस तरीके से बैटिंग कर रहे हैं, अगर उनके बल्ले में गेंदें सही कनेक्ट हुई तो हम बड़े हिट देख सकेंगे इस ओवर में. Yeah, and we're enjoying his batting. The way he's playing, technically very sound, and हमारे दर्शक भी एंजॉय कर रहे होंगे इसको. absolutely, totally agree with you on that. Oh, and this time he flies the ball really well, and he's trying to give him the charge but not succeeding. This is wonderful bowling by Anand Thakkar. अपनी फ्लाइट पर कंट्रोल रखें. बैट्समैन 1-2 बार रोक के तीसरी बार अटेम्प्ट करेगा ही करेगा. Oh, and this time it's a short delivery straight to the fielder at mid-off. Just a single. Oh, and this time he comes down the track. Will that be a boundary? We'll have to see. No, there's a fielder there, just a single. So this is good bowling by Anand Thakkar. He's forcing the batsman to come down the track. Kulraji, and he's utilizing all his experience while bowling. So wonderful to see such a bowler. इस समय जरूरत है सख्त फील्डिंग टीम को एक विकेट की, और जो बैट्समैन स्ट्राइक पर है उन्हीं के विकेट की. And this is his third over, so he's got one more over left. And this time he comes down the track. Will that be a catch? Oh, and it drops just short of the fielder at long on. Just a single there. But this is wonderful bowling by Anand Thakkar. We'll have to give it to the bowler here, Kulraji. बिल्कुल, मैंने आपसे कहा था 1-2 बॉल रोकेंगे, लेकिन उसमें अटेम्प्ट जरूर करेंगे और वो किया उन्होंने. खुशकिस्मत रहे, बॉल ने पहले टप्पा खाया. Absolutely, and this time, oh, and this is a good delivery. This time the flattish trajectory and mixing it up really well. The spinner there, the offie. अब अगर फ्लाइट करेंगे देखिएगा, फिर लॉन्ग ऑन या मिड विकेट की तरफ उछाल के मारा जाएगा इसको. Oh, and this time it does the same. Kulraji probably is listening to you. I don't know how come your voice is reaching the ears of the bowler. Just a single this time towards the long off. And that's a wonderful over. End of the 15th over. And the score is 130 for 5. So that's a good over. Just ड्राई कर दी बाउंड्री उन्होंने इसमें. Just 4 runs given in that over. 2-dot delivery. So wonderful bowling. And no wide also. Absolutely. And that is the hallmark of a really good bowler. And Kulraji, I would now switch to the Hindi commentary along with you. जरूर आइए, आपका स्वागत है. पांच ओवरों का खेल शेष है. शालीन जी, क्या कहेंगे आप 5 ओवरों में कितने रन आने चाहिए? 130 का स्कोर बन चुका है और 5 ओवरों में जिस हिसाब से अनीस खेल रहे हैं, मुझे लगता है 40 रन तो आराम से आ जाने चाहिए, क्योंकि आनंद ठक्कर के भी ज़्यादा ओवर नहीं बचे हैं. तो अगर थोड़ा सूझबूझ से बल्लेबाजी करें तो 40 रन आ सकते हैं. और ये वाइड गेंद से शुरुआत, खराब गेंदबाजी, और देखिए 1 रन वाइड के साथ भी अतिरिक्त मिल गया, तो 2 रन हो गए यहाँ पर. और गेंद भी कोई नहीं हुई. तुषार शिंदे आए हैं गेंदबाजी डालने, नए गेंदबाज. और 16वें ओवर में नए गेंदबाज को लाना, क्या ये ऑप्शंस नहीं हैं. पार्थ के ओवर करवा चुके हैं वो. जी हाँ, पर्व के ओवर हो चुके हैं. विकल्प कम है शायद. और ये अच्छा शॉट, फुल टॉस गेंद हालांकि, लेकिन बुना नहीं पाए उसे. लेकिन अनीस को तो सिर्फ विकेट पर खड़ा ही रहना है. अगर वो 20 ओवर टिक गए तो स्कोर अपने आप 180 शायद बन जाएगा. और मेरे बचपन के कोच के बारे में आपको बताना चाहूंगा कुलराज जी. जरूर.
दिवंगत हो गए हैं वो अभी, सुरेश पांडे नाम था उनका, और हमें वो बचपन में कोचिंग देते थे, और हमें कोचिंग भी बहुत लेट मिली। 11वीं 12वीं कक्षा में जब हम आए तब हमें क्रिकेट की कोचिंग होती क्या है हमें पता चली। और वो कहते थे सिर्फ एक ही चीज़ बल्लेबाजों के लिए, स्टे एट द विकेट्स रन्स विल कम। सिर्फ एकमात्र ये वाक्य बोलते थे वो। और ये बड़ा शॉट हो सकता है, लेकिन देखना है कि क्या ये पार कर पाएंगे। जी नहीं, एक ही रन है, और बढ़िया क्षेत्र रक्षण, अच्छी गेंदबाजी है तुषार की। और ये एक वाक्य जो है हम बच्चों के दिमाग में ऐसा बस गया था, जो हम आज भी क्रिकेट खेलते हैं अगर, तो कोशिश करते हैं कि उसको हम क्रिकेट की फील्ड पर अप्लाई करें कि स्टे एट द विकेट रन्स विल कम। बिल्कुल सही कहा उन्होंने। और पुराने और सीनियर्स की बातें अगर आप फॉलो करते रहेंगे तो क्रिकेट में अपना नाम करते रहेंगे। आज भी देखिए गॉड ऑफ क्रिकेट सचिन तेंदुलकर आशेकर सर के कितना सम्मान करते थे। और यहाँ पर स्टंपिंग का चांस हो सकता है, हालांकि क्या ये वाइड गेंद है, देखना है। जी ने वाइड नहीं थी और स्टंपिंग भी नहीं हुई। वापस आ गए क्रीज में, और उनके बारे में भी मैं आपको बताना चाहूँगा। सुरेश पांडे जो कोच थे हमारे जी, उन्होंने डेरेक प्रिंगल वगैरह के अगेंस्ट, जब इंग्लैंड की टीम इंडिया आई थी, वो खेले थे। इंडिया की जो ए टीम होती है जो खेलती है शुरुआत में, बोर्ड प्रेसिडेंट 11 जो होती है, उसमें वो खेल चुके थे, और ओपनिंग बैट्समैन थे और ऑफ स्पिन बॉलर भी थे। और बहुत ही ज़बरदस्त खिलाड़ी, अभी वो इस दुनिया में नहीं है। हमारे गुरु थे, हमारे कोच थे, लेकिन उनके जो सिखाए हुए जो वाक्य हैं वो अभी तक हमारे साथ हैं और हमेशा रहेंगे। जी हाँ, बिल्कुल सही। और हम जब ये बात करते हैं तो हम उनके वाक्यों को स्प्रेड करते हैं, फैलाते हैं। अच्छा बॉल देखिए, फिर मिस किया। तब की बात है और आज की बात है, ये क्रिकेट का बेसिक रूल था, स्टे एट द विकेट रन्स विल कम। आज भी ऐसा ही है, आप विकेट पे खड़े रहोगे, रन अपने आप आते रहेंगे। और बढ़िया गेंदबाजी तुषार की, थोड़ी सी फ्लैटिश ट्रैजेक्टरी लेकर स्किड कराई गेंद। और इस बार आराम से ले लिया 1 रन। पॉइंट के क्षेत्ररक्षक ने अच्छा क्षेत्ररक्षण किया, लेकिन 1 रन नहीं रोक पाए। थोड़ी और ये ओवर की बॉल थी है, उनकी रीच में थी, तो उन्होंने उसको ड्राइव किया 1 रन के लिए। जी हाँ, और ये 16 ओवर की समाप्ति के बाद 135 रन, मात्र 5 रन आए इस ओवर में भी, ड्राई कर दिया है बॉलिंग। जी हाँ, हमें लग रहा था कि विकल्प नहीं है, लेकिन ये तो बहुत ही बढ़िया विकल्प निकाला कप्तान ने। तो तारीफ करनी होगी कप्तान की यहाँ पर। तुषार शिंदे ने जबरदस्त गेंदबाजी की और सिर्फ 5 ही रन दिए हैं 16वें ओवर में, और 135 का स्कोर हो गया। तो अभी भी 4 ओवर बचे हैं। ठक्कर अपना अंतिम ओवर लेकर के आ रहे हैं। जी हाँ, इनके तो क्या ही कहने हैं। आनंद ठक्कर जी, ऐसा लगता है कि किसी बिल्डिंग के चौथे माले से गेंद कर रहे हैं। इतनी ऊपर से गेंद डालते हैं, ऐसी फ्लाइट डालते हैं। आसान नहीं है ऐसी फ्लाइट। और बहुत अच्छा लूप देते हैं। जी हाँ, और आए लेवल के ऊपर तो क्रिकेट में वैसे भी रूल है, स्पिनर अगर डालता है बड़ा मुश्किल हो जाता है। क्रिकेट के एक बेसिक चीजों में से है, तो बहुत ही जबरदस्त। लेकिन इनको बेनिफिट है कि ये शालीन की हाइट कम है, इसलिए इनका लूप जो है वो गुडलैंड स्पॉट के आसपास पड़ता है। अगर थोड़े हाइटेड बॉलर होते तो ओवर पिच में पहुंचाने में उनका। जी हाँ, और इस बार कट किया और 1 ही रन होगा। बढ़िया क्षेत्ररक्षण पॉइंट के क्षेत्ररक्षक द्वारा। और आपने सही कहा ये, क्योंकि थोड़ा सा कद इनका उतना लंबा नहीं है, उससे इनको एडवांटेज ही मिलता है, फायदा मिलता है। ओहो, और ये यहाँ पर कैच हो सकते थे, लेकिन ऊपर से निकाला। बढ़िया शॉट, खराब गेंद थी ये, लेग साइड की तरफ ज्यादा फ्लाइट दे दी और 4 रन। और ये लगता है फिर से कमेंटेटर्स कर्स लगाए यहाँ पर। हमने जैसे आनंद जी की तारीफ की, उन्होंने खराब गेंद डाल दी। जी जी जी, लेकिन फ्लाइट करना चाहिए, लेकिन अब बैट के ऊपर अब पका हुआ शॉट दे रहे हैं कमर की हाइट का, तो पका हुआ बॉल है, मारेंगे ही मारेंगे। और हाइट के ऊपर याद आया मुझे, कर्टली एम्ब्रोस ने अपना डेब्यू किया था पाकिस्तान में, जब वो पहला ओवर फेंकने आ रहे थे, नहीं सॉरी, जोल गार्नर ने जब पहला ओवर फेंकने आ रहे थे तो बैट्समैन ने रोका उनको और ये उठा के मारा। बढ़िया प्रहार, ये कवर्स के ऊपर से खेला और 2 रन आराम से हो जाएंगे, और शायद चौका भी हो सकता है अगर नहीं रोक पाए तो। जी हाँ, ये 4 रन। ऐसा लग रहा था कि 2 ही रन होंगे, लेकिन गेंद की तेजी और आउटफील्ड भी जबरदस्त है यहाँ पर। 4 रन हो गए और 2 चौके लगे लगातार। और आनंद ठक्कर का ये ओवर खासा महंगा साबित होता हुआ कुलराज जी। पिछले ओवर की भरपाई। जी हाँ, और अच्छी गेंदबाजी नहीं कर रहे हैं इस बार हो गई कुटाई।
आपके जो वाक्य हैं बहुत ही जबरदस्त होते हैं, तारीफ करनी पड़ेगी। और हम युवा लोगों के लिए बहुत, और ये आउट भी कर दिया है, देखिए क्या बात है, बदला ले लिया अपना, 2 चौकों का यहाँ पर बदला पूरा किया। लास्ट लाफ ऑफ मिस्टर ठक्कर। जी हाँ, ये युद्ध फाइनली इन्होंने ही जीता है। बैटल हैज बीन वन बाय द बॉलर हियर। 1725 आउट होकर के आते हुए। अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे विशाल। और ये देखिए इस बार अपनी लय को वापस पाया। दिशाहीन गेंदबाजी कर रहे थे, लेकिन अंपायर को जरा सा भी यहाँ पर मुश्किल नहीं हुई होगी। पगबाधा आउट हुए। अच्छा निर्णय। जी हाँ, अच्छा मिडिल निर्णय। स्टंप पर बॉल था और उसको स्वीप करना चाहते थे। सीधे बल्ले से खेलना चाहिए था ये, वरना ये चूकते नहीं। और अच्छी पगबाधा बल्लेबाजी आउट की। करार दिए गए, LBW क्रिकेट की भाषा में, लेग बिफोर विकेट। यूजफुल इनिंग। जी हाँ, अच्छी साझेदारी निभाई इन्होंने अनीस के साथ। और स्कोर हो गया है 6 विकेट के नुकसान पर 144 रन। 17वां ओवर चल रहा है और आनंद ठक्कर का ये दूसरा विकेट। और DDPL ने बीच में अपनी राह थोड़ी सी खो दी थी, लेकिन वापस इन्होंने स्कोर तो अब अच्छा कर लिया। 144 रन हो गए और अभी भी 3 ओवर से ज्यादा का खेल बचा हुआ है। DDPL स्ट्राइकर्स। 2 गेंदें बाकी हैं इनके ओवर में। अभी देश पांडे का 1 ओवर बाकी है। स्पीड अच्छी है उनकी, अगर लय और ताल बराबर रखें तो गति उनकी उनको सार्थक हो सिद्ध कर देगी। और ये नए बल्लेबाज का आते ही धमाकेदार प्रदर्शन, 2 रन के लिए बढ़िया कट शॉट और तेजी से रन भी भाग लिए इन्होंने। और थ्रो भी आया तो 15-16 टिप्पों में आया था। ध्रुवित शाह हैं नए बल्लेबाज, बढ़िया शॉट मारा है। और फिर जी। से देखिए आनंद ठक्कर ने छोटी गेंद डाली नए बल्लेबाज को। अच्छी गेंदबाजी नहीं है ये। इस ओवर में लय से बहुत ज्यादा चूक गए, दिशाहीन गेंदबाजी कर रहे हैं। और ये देखिए ये इनकी गेंद है, हालांकि आखिरी गेंद इनके। और ये मिसफील्ड, और ये खराब दूसरे रन के लिए क्षेत्र दौड़ गए। जी हाँ कुलराज जी, फिर से 1 रन उपहार स्वरूप दे दिया है। तो त्योहारों का मौसम भी नहीं है, फिर भी उपहार यहाँ पर दिए जा रहे हैं। और ये बहुत नुकसानदायक दूसरा रन है, क्योंकि अब स्ट्राइक लेंगे जो मंझे हुए खिलाड़ी हैं, सेट बैट्समैन हैं, वो स्ट्राइक लेंगे। जी हाँ, अनीस तो वैसे ही ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर रहे हैं। लगभग 200 के स्ट्राइक रेट से खेल रहे हैं कुलराज जी अनीस। जी 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 जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। ओवर की समाप्ति हो चुकी है यहाँ पर। 17 ओवर के बाद स्कोर है 148 रन 6 विकेट के नुकसान पर। 36 गेंदों पर 57 रन की बेहतरीन पारी खेलकर नाबाद हैं अभी अनीस विजयकर और ध्रुवित शाह। दूसरे छोर पर 4 रन बनाकर सिर्फ 2 गेंदों पर नाबाद हैं। तुषार शिंदे आए अपना अगला ओवर लेके। पहला ओवर शानदार फेंका था, देखते हैं दूसरे ओवर में, क्योंकि अब गेंदें बची हैं मात्र 18 गेंदें बची हैं। 18 गेंदों में कम से कम 30 रन तो बनाने की कोशिश करेंगे। जी और 170-180 के आसपास का हम अनुमान भी लगा रहे थे। और ऐसा लग रहा है कि, और मुझे अब लग रहा है कि अनीस अगर पूरे 20 ओवर खड़े हो गए तो शायद 190 भी पहुंच जाएंगे, क्योंकि अब थोड़ी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी भी देखने को मिल सकती है, भले ही 6 विकेट गिर गए हैं। जी और इसी की मैं बात कर रहा था, क्या शॉट है, आगे बढ़कर खेला उसे, 4 रन लॉन्ग ऑफ से दूर, कवर्स के ऊपर से 4 रन, एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से खेला हुआ शॉट। और कुलराज जी जैसा कि मैंने कहा था कि अब शायद ताबड़तोड़ बल्लेबाजी देखने को मिलेगी, शुरू हो गया है सिलसिला। बिल्कुल सही, बिल्कुल इन आउट होकर के मारा है उन्होंने, इनसाइड आउट, बढ़िया शॉट। और ये शैली बहुत खूबसूरत लगती है इस तरह के शॉट की, क्योंकि एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से जाता है, स्वीपर और लॉन्ग ऑफ के बीच में निशाना लेके मारा है उन्होंने। बिल्कुल सही। और अगली गेंद लेकर आते हुए तुषार एक बार, और इस बार जबरदस्त वापसी, क्लीन बॉल कर दिया है। और 150 रन तो पूरे हो गए दल के, लेकिन ये 7वां विकेट बहुत ही महत्वपूर्ण विकेट अनीस विजयकर के रूप में पेविलियन की तरफ जाता हुआ। क्या जबरदस्त गेंदबाजी है यहाँ पर, और तुषार शिंदे की तारीफ करनी होगी। चौका खाया, लेकिन उसके बाद क्या बहुत बड़ा विकेट, बहुत बड़ा विकेट। और अब लग रहा था कि 30-35 रन आएंगे 18 गेंदों में, अब मुझे लग रहा है वो 35 का टारगेट 25 में तब्दील हो गया ये विकेट जाने के बाद। जी हाँ, बहुत ही महत्वपूर्ण विकेट, और सबसे सधे हुए और मजे हुए बल्लेबाज पेविलियन की तरफ वापस आते हुए अनीस विजयकर 61 रन की शानदार बेहतरीन पारी खेल कर आ रहे हैं। पूरा फोकस इन पे होना चाहिए इस समय। और ये गलत शॉट खेल गए,
ये गेंद अगर ये सीधा खेलते जैसे कि ये खेल रहे थे, लेकिन रनों की गति तेज करने के शायद प्रयास में ये चूक गए यहाँ पर अनीस विजयकर। बहुत ही जबरदस्त बल्लेबाजी, अपनी टीम की विजय कर बल्लेबाजी करके आए हैं। जी हाँ, लगभग विजय इन्होंने शायद तय भी कर दी है। अभी दूसरी पारी हालांकि बची है, क्रिकेट में कुछ भी हो सकता है, लेकिन बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन है ये। इस और समय 100 ग्राउंड बिल्कुल दूधिया प्रकाश से नहाया हुआ। 152 रन 7 विकेट पर हो गए हैं कुलराज जी। 18वां ओवर चल रहा है, आखिरी 16 गेंदें बची हैं इस पारी की। 16 गेंदों में अगर 30 रन भी आ जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। नए बल्लेबाज लग रहा है मुझे ये। नए बल्लेबाज प्रज्ञेश आए हैं, प्रज्ञेश वारके। अब अगर गेंदबाज खुद से रन देवें तो एक अलग बात है, नहीं तो बढ़िया गेंदबाजी और अच्छा शॉट खेला, आगे बढ़कर आराम से लॉन्ग ऑन की तरफ फ्लाइट को कवर किया लॉन्ग ऑन की दिशा में। जी हाँ, 1 रन। और ये भाग लिए दूसरे रन के लिए, क्या रन आउट होंगे? बच गए ये। थोड़ा एडवेंचरस हो गए थे यहाँ पर ये। जी एडवेंचरस था, लेकिन थ्रो की आप स्टाइल देखिए, ऐसे समय पर ऐसा लाउजी थ्रो, ऐसे लग रहा था जैसे कि पता नहीं क्या थके हुए इंसान थ्रो कर रहे हैं। आपको ताबड़तोड़ थ्रो करना चाहिए उस पर। यहाँ पर चूक हो गई क्षेत्र रक्षक से। रनआउट का बहुत बेहतरीन मौका था। आपकी फुर्ती आपको विकेट दिलाती है सर, मौका नहीं चूकना चाहिए। जी हाँ, कुलराज जी और तुषार की तारीफ करनी होगी यहाँ पर। बहुत ही बढ़िया विकल्प देकर आए हैं कप्तान के लिए। आगे के मैचेस में भी कप्तान की नजर होगी इन पे। और ये क्या यहाँ पर कैच हो गए हैं? जी नहीं, हवा में खिला हुआ शॉट। और देखिए यही होता है जब नए बल्लेबाज आते हैं, तो अगर सधे हुए बल्लेबाज पेविलियन चले जाएं, आखिरी ओवरों में डॉट जो जाती हैं वो अच्छी खासी चोट पहुंचा सकती हैं किसी भी दल को। और अच्छा बॉल नीचा रह गया, थोड़ा सा अनुमानित उछाल नहीं मिली। कट करना चाहते थे, बहुत ज्यादा जगह नहीं थी। गेंद ने जाकर विकेट कीपर के दस्तानों में विश्राम किया। और इस बार हवा में खेला हुआ शॉट, 1 ही रन होगा। लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र रक्षक की तरफ गेंद और बढ़िया क्षेत्र, दूसरे रन के लिए आ रहे हैं। क्या ये रन आउट होंगे? जी नहीं, आराम से आ गए। बढ़िया यहाँ पर रनिंग बिटवीन द विकेट्स है। मैंने आपसे पहले जिक्र किया था शाइन थ्रो के ऊपर 1 रन होता है। तो देखिए अब दोनों खिलाड़ी भागने वाले हैं और आराम से दूसरा 1 रन को 2 रन में तब्दील किया उन्होंने। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट। हाँ, और ये 18वें ओवर की समाप्ति हो गई कुलराज जी। 155 रन स्कोर है 7 विकेट के नुकसान पर। आखिरी 12 गेंदें बची हैं।
And we welcome you back to these last 2 overs after a short break. And Sachin bowling his last over. He's a wonderful bowler. He started off really well in his first spell. However, he's gone for some runs, but he has a lot of potential and starts off with a yorker. Wonderful delivery again by him, Sachin Deshpande. A genuine quick bowler. Pradnesh Warke on strike. That's a short delivery. पहला रन तेजी भागा देखिए इन्होंने और दूसरे रन के लिए भी दौड़ गए जब तक थ्रो आएगा. Right, Kulraji, this is a wonderful piece of running, and this is a big ground as well, so they need to take the advantage, which they've taken this time. अगली गेंद राइट आर्म ओवर द विकेट. अच्छा बॉल था, खेलना चाहते थे लेग साइड पर, ऑफ साइड पर, लेकिन बल्ले ने भीतरी किनारा देते हुए गेंद को भेजा लेग साइड की तरफ. शॉर्ट स्क्वायर लेग पर 1 रन. And probably the pace there made him uncomfortable. रनों पर अंकुश लगता हुआ 19वां ओवर. ये बड़ा इंपॉर्टेंट ओवर होता है किसी भी 2020 गेम के लिए. और उसको बल्ले को दिशा दी पॉइंट की तरफ, दौड़कर 1 रन. Yeah, that was a good single taken, and this is good bowling as well. He's not allowing them to free their arms. These are last 2 overs, so he needs to be careful there, and he's bang on target. The paceman there. शालीन एटलीस्ट 1 या 2 बड़े हिट आने ही चाहिए आखिरी के 2 ओवरों में. थोड़ा नीचा रहता हुआ बॉल जिसको खेला एक्स्ट्रा कवर की तरफ, दौड़कर 1 रन पूरा किया. सिंगल से सिर्फ आप 10 या 12 रन जोड़ सकते हैं अंतिम ओवरों में. Absolutely right, and this is good bowling. Credit should be given to the bowler there. अंकुश लग गया है थोड़ा बल्लेबाजी पर. अगली गेंद राइट आर्म ओवर द विकेट, विकेटों को पार किया और ये गेंद स्लाइटली ओवर पे जिसको लेग साइड पर खेला है लॉन्ग ऑन की तरफ. देखते हैं कि दूसरा रन हो पाता है कि नहीं. मिस फील्ड हुआ हल्का सा, लेकिन नहीं होने दिया. अच्छा थ्रो सीधा बॉलर के पास. ओवर की समाप्ति. And the 19th over has been bowled really well by Sachin Deshpande. The score is 161 for 7, so probably a good comeback by the bowling team. However, they've scored 161 for 7 and still 6 deliveries remaining in this first innings. हमारे कहे टारगेट 170 से सिर्फ 9 रन दूर हैं. And this time, he takes a quick single. Tushar Shinde bowling really well. Starting off with the block hole delivery again. Last 5 deliveries in this innings left. And Kulraji, they've come back really well. 162 is the score right now. Oh, and that's a poor delivery. And another commentator curse there. ये गलती आपको भारी पड़ती है. And we were praising Tushar Shinde for his wonderful bowling, and immediately he bowls not only a wide delivery but a wild delivery as well. बिल्कुल सही कहा आपने. 5 रन आए इस गेंद पर और गेंद भी नहीं काउंट की जाएगी. लगता है कमेंटेटर ने जो 170 रन का टारगेट बोला है वो शायद पूरा हो ही जाएगा. Absolutely, and they're already
on 167 now after these 5 runs have been gifted by the bowler. Probably 180 now. You never know. हल्की सी शॉर्ट ऑफ लेंथ बॉल ऑफ स्टंप के बाहर, रन बनाने को बहुत तकलीफ हो जाएगी। मैं आपको निश्चित तौर पे ये बात कह रहा हूँ, लेकिन अगर आप फुल टॉस और एक्सपेरिमेंट्स करेंगे आखिरी ओवर में तो भारी पड़ेगा आपको। हाइट शॉट है इनकी, इसलिए आर्म भी इनका क्रॉस आता है, सीधा आर्म नहीं आ रहा है, तो इसलिए छोटा बॉल। Probably he was trying to get him out stumped. That is why he chose to bowl on the leg stump, but that was not the right thinking. And this time a short delivery, punched hard, cut really well. And 2 runs taken easily. It's a big round, so the sweeper covered as well, but could not stop a couple there. तीसरे रन के लिए भी तैयार थे नॉन स्ट्राइकिंग एंड पे बैट्समैन। ये जोश ज्यादा था, रन कम था वहां पे। Tushar with his next delivery. Over pitch ball. That's a wonderful piece of batting there. 170 for 7 now. And they've come back really strongly. They were 5 wickets down halfway through this innings, and Kulraji, this is a wonderful comeback. धन्यवाद देना चाहिए बैट्समैन को जिन्होंने 50 रन के ऊपर बनाया स्कोर। Yeah, Anish Vijayakar. जी, He is the hero of the innings for sure. Protagonist. Just a single this time. Tushar bowling well apart from that 5 runs that he's given on a wide. Last 2 deliveries left. Oh, and this time this could be a simple catch. And it's taken nicely by Anand Thakkar there at the point. So finally Tushar gets his reward again, his second wicket. कभी कभी कोई बॉलर आखिरी में रखा जाता है कि 16, 18 और 20, ये 3 ओवर आप लास्ट में हमारे लिए कीजिएगा। Absolutely, and Tushar has done the trick for his captain. Apart from that one poor delivery which is bowled as a wide, his overall spell has been absolutely brilliant. He's taken 2 wickets also, Kulraj. बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। Not much the captain could have asked for. He's probably delivered more than that. Wonderful piece of bowling, and the 8th wicket falling for the Ddpl strikers. And the score is 171 for 8. Just one final delivery left in the first innings. And as we had discussed earlier, 170 has been achieved by this team. अंतिम गेंद 175 करने की पूरी कोशिश करेंगे। Absolutely, and if he is able to hit a big 6, Kamal Panwani, the new batsman, this will be the icing on the cake. Oh, and that's a wide delivery. So Tushar still gifting away runs there. Poor delivery. Just one ball to be bowled. Shouldn't be experimenting much. 172 now the last ball once again, मेरे ख्याल से लास्ट ही होनी चाहिए ये, और उसको मारा है। That's a wonderful 2 cut रन shot. होंगे इसमें, 2 रन जरूर लेंगे वो लोग। Absolutely, and Kulraji, you were mentioning 175, and they are coming back for the third. Could be a run out chance here, and he is run out. The umpire raises the finger, so 174 scored, and as you had mentioned, 175 is the target for the Tornadoes team. So the first innings. एक बार लग नहीं रहा था कि इतना स्कोर बन जाएगा 5 विकेट जाने के बाद, लेकिन बेहतरीन विजयकर की बल्लेबाजी और टीम को एक मजबूत स्तंभ की तरह संभाला है उन्होंने, और एक अच्छा टारगेट दिया है। शालिन, Absolutely, Kulraji, and credit goes to the middle order batsman. He played some wonderful technically sound shots as well. जी हाँ, 5 विकेट गिरने के बाद 172 रन बनना, अभी देखिए रात का वक्त है, अब लाइट्स के अंडर में गेम होगा, और अब थोड़ा रन बनाना उतना आसान नहीं होगा। Yeah, but you never know. Tornadoes also have a very good batting lineup, and
This is the scorecard. You can have a look there, viewers, and we'll be back after a short break with the second innings. So stay tuned. The Ddpl strikers have scored 174 for 9 in their allotted 20 overs, and Tornadoes will have to chase down the score. We'll have to make 175 to win this match, and we'll be back in some time for the second innings. Stay tuned, viewers. Thank you. बैटिंग समरी बता। अरे नहीं आते बोल रहा तो मेरे को सिखा रहा है अभी। हाँ बता। क्या रे नाविद शरीफ और चेतन का बॉलिंग समरी 0-0। अच्छा हाँ बोलना बोल रहा तेरा वेवलेंथ आजकल मेरा वो टॉकी टॉकी नहीं पकड़ने मिले। यार रुक जा यार मिक्स मत करना बहुत छोटे बॉल्स है तेरे पास। magic. Whimsical, quirky, and I wanted my walls to reflect all of that. Playful, subtle, artistic, world-class. So I think my walls are also
my art now. Magic. Whimsical, quirky, and I wanted my walls to reflect all of that. Playful, subtle, artistic, world-class. So I think my walls are also my art now.
magic. Whimsical, quirky, and I wanted my walls to reflect all of that. Playful, subtle, artistic, world-class. So I think my walls are also my art now. Magic. Whimsical, quirky, and I wanted my walls to reflect all of that. Playful, subtle, artistic, world-class. So I think my walls are also my art now.
magic. Whimsical, quirky, and I wanted my walls to reflect all of that. Playful, subtle. दोनों टीमें मैदान में। सलामी बल्लेबाज अंडर फ्लड लाइट्स, ये दूसरा जवाब शुरू हो रहा है। Yes, Kulraji, and we welcome our viewers back to the second innings of this really exciting match happening at the Somaya cricket ground. शालीन लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन है। प्रीत और विवेक उतरे हैं, प्रीत स्ट्राइक पर है इस समय। Yeah, and that would be good for the batting team, Kulraji. जी जी 175 is the score they have to chase, so of course they would get few extras as well if the bowlers don't bowl the line and length with a lot of discipline because of the left hand right hand combination which you just mentioned. जी हाँ, और उनको भी अपना डिसिप्लिन देखना पड़ेगा और बैट्समैन को भी अननेसेसरी विकेट थ्रो नहीं करने हैं यहाँ पर, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण रन है 175। कम छोटा स्कोर, छोटा टारगेट नहीं है। And the first delivery being bowled, what a shot that is! Wonderful start and will be a boundary. And that is what we were mentioning, Kulraji. बिल्कुल दिशा से भटके लेग स्टंप पर दिया। अगर आप देखिए यहाँ राइट हैंड बैट्समैन खेल रहा होता है तो बेहतरीन गेंद होती है आउटसाइड द ऑफ स्टंप, लेकिन अब चूंकि लेफ्ट हैंड बैट्समैन है इसलिए आपको अपनी दिशा के ऊपर नियंत्रण रखना पड़ेगा। Yeah, and he flicks it so well. Just have a look at the replay there. A boundary towards the deep square leg region. And what a start to the innings. First ball and a boundary. जी हाँ, और अपनी गलती सुधारने की बजाय उन्होंने स्क्वायर लेग पर एक फील्डर ले लिया। इसका मतलब यह है वे फिर अपनी गलती करेंगे। This is a bit harsh, Kulraji. And see, he bowls the right line this time. And this time a quick single taken. A sloppy bit of work. At covers could have been a chance of a run out, but he misses that. And probably he listened to you, Kulraji. Bowled the right line this time. With the square leg on. So let's give it back. Let's give it to the bowler here. Trade goes to him. A good comeback. And now the right-hander on strike. And this will be a test for the opening bowler. Both the bowlers, especially who are bowling with the new ball. जी हाँ, और अब रेगुलर उनको ऑफ स्टंप पर ही गेंद करनी है। और देखिए आपकी लेग स्टंप के बाहर हो गई। मैंने जो बताया था आपसे वही हुआ, लेकिन विकेट कीपर ने अच्छी गैदरिंग की है पीछे। एक्स्ट्रा रन देना यहाँ पर नुकसानदायक हो सकता है, और आप अगर लेग स्टंप ही पकड़ कर चल रहे हैं तो फिर तो और नुकसानदायक है। Exactly, and that is what we were mentioning. It's a test for the opening bowler, especially when they're bowling with a new ball. And probably till now he has not passed the test. Oh, and what a shot that is! Absolutely brilliant cut shot for a boundary. The fielders unmoved. Everybody was still in a boundary there in the sweeper cover region. What a shot, Kulraji. What a start to the innings. बिल्कुल बहुत छोटा गेंद, शॉर्ट ऑफ लेंथ बॉल था और बिल्कुल बैट के एरिया के अंदर था, और उसका बखूबी फायदा उठाया और पॉइंट रीजन पे बाउंड्री मार करके टीम के खाते में 4 रन और जोड़े, अपने खाते में 4 रन जोड़े। So both the batsmen now have
hit a boundary. Wonderful start by both of them. प्रेशर हट जाता है ऐसे में, जो 175 का टारगेट का प्रेशर स्कोर बोर्ड पे टंगा हुआ है वो कम हो जाता है. That was a delightful shot by the batsman, the right-hander. That was a short delivery, no doubt about it. And this time he bowls a good delivery, a good comeback by the opening bowler. Finally he's realized that the right line and length has to be bowled, else the first over would be very expensive, which already has been till now. राइट आर्म ओवर द विकेट, ओवर पिच बॉल थी, उसको ड्राइव करना चाहते थे, चूके बुरी तरीके से. And he did not move his feet this time. Probably that was the reason he was not able to connect. What do you think, Kulraj ji? बिल्कुल सही बात है, कदमों का इस्तेमाल करना चाहिए आपको, गेंद की लाइन में आए. और वैसे भी ज्यादा डर के आप इस शॉट को मत खेले क्योंकि स्लिप कॉर्डन पूरा खाली है. अगर आपका गलती से एज भी लग जाता है तो आपको पूरे चांस मिलते हैं बाउंड्री के, थर्ड मैन बाउंड्री पर. इसलिए प्ले और फुल शॉट. Very well explained, Kulraj. And oh, this time, probably he listens to you. And he's played it deliberately in the air above the, over and above the point region for a couple. And he's trying to come back for the third as well. And they are just, and the fielder's caught there napping. This is absolutely brilliant cricket by the batsman and very sloppy fielding by the fielding team. कुछ समय पूर्व मैं आपको कह रहा था कि अंडर आर्म थ्रो पर एक रन बन जाता है, और वो देखिए पूरा एग्जाम्पल यहाँ पर सेट हो गया. आप अंडर आर्म बाउंड्री से थ्रो कर रहे हैं, इतनी देर में तो पैदल चल करके एक रन ले हो जाएगा. Absolutely, Kulraj, and probably the batting team was listening to you when they were fielding, and that's the reason why they have. And this was a very sloppy work. What was he waiting for? आपके हाथ में बॉल आया, आप उसे तुरंत रिलीज कर दें और पावर से रिलीज करें ताकि वो थ्रो आता हुआ देखकर बल्लेबाज के कदम अपने आप रुक जाए. लेकिन अगर आप सोचेंगे, विचारेंगे और फिर नीचे लुढ़का के फेंकेंगे तो बैट्समैन के पास पूरा टाइम होगा एक रन लेने का. Yeah, and the basics not being followed here. And that was the reason why he had to pay with another run. लेफ्ट आर्म, मैंने इनको नेट्स पे देखा था अभी गेंदबाजी करते हुए. इनका एक्शन बिल्कुल सुहेल तनवीर जैसा है. Piyush Patel, yeah, he's the captain as well. The left arm spinner. We'll have to स्पिनर see. नहीं है ये, फास्टर फेंकेंगे, लेकिन देखिएगा सुहेल तनवीर जैसा एक्शन है इनका. Okay. Yeah, you're right. And that's a poor delivery. Oh. वेरी पुअर डिलीवरी. Starts off way down the leg side for a wide and another extra given. And the score has already reached 10 runs. Oh, and this time he's bowled him. This time it was a spin that he utilized, and probably that's the reason why he's called Akshar Patel amongst his near and dear ones. और And the देखिए trick उनका there. उनका आर्म भी बिल्कुल कान के पास से हाथ आता है उनका. Yeah, and that was a wonderful delivery, and the captain's bowling, that is, he's setting an example for the entire team. Just the second delivery, the legitimate first delivery, as the first one was a wide one, and he strikes immediately and gives the breakthrough to his team. This is absolutely leading from the front. The first wicket for Tornadoes has fallen. So early shock for the team there. Courtesy some wonderful bowling by the captain of the Ddpl strikers, and this is what happens when you have a good score on the board. जी हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप. एक प्रेशर बना रहता है रन चेस का, मेंटेन करने का रन रेट. लेकिन इस शॉट में ना प्रेशर वाली कोई बात थी, वो क्या करना चाहते थे उनको आखिरी तक समझ नहीं आया. Yeah, probably he missed everything, right from the run up of the bowler to the flight and the landing as well. गेंद को ढूंढ रहे थे वो मेरे ख्याल से बल्ले. Absolutely, he got confused. Kulraji very well pointed there. And that was the reason he did not even could play the shot properly with a straight bat. His bat was not tilted, it was straight only, but still, because he was searching for the ball. And the credit goes to bowler here. 100%, 100%. नए बल्लेबाज क्रीज पर आए हैं.
So 14 for 1. Tornado. And a low full toss there. नीलेश आए हैं बैटिंग करने के लिए शालीन. Nilesh Samant, yes. And he plays the low full toss back to the bowler. And Piyush Patel, the captain of the Ddpl strikers, has already got a wicket in this over. That's a good shot, but straight to the fielder at mid-off, and he fumbles it. A single taken easily. A low full toss again. Probably he's not getting the landing right there. प्लेसमेंट भी ठीक नहीं था शॉट का. अगर इसको एक्स्ट्रा कवर और मिड ऑफ के बीच में से मारते तो रन ज्यादा मिलते हैं इनको. Yeah, probably missed the trick there. That was a full toss. Should have scored more runs, but nevertheless a single. And Preet back on strike. Now, dear, you just check the battle between left arm bowler and a left hand batsman. ये बड़ी मजेदार एक बैटल होती है हमेशा. मैंने देखा है लेफ्ट आर्म बॉलर लेफ्ट हैंड बैट्समैन को जब गेंद फेंकता है तो विद द आर्म अंदर आता है बॉल और बैट्समैन विद द स्पिन खेलता है उसको. यहाँ पर देखना है and उन्होंने. this will be an interesting battle, Kulraji, as you mentioned. We'll have to see that. The first delivery to Preet, and he plays it really well. A single towards the backward square leg. हल्के हाथ से खेला था शॉट. समझदारी भरा हुआ शॉट. कोई रिस्क नहीं ले रहे हैं अननेसेसरी. अगर 40 और 45 रन के अंदर पावर प्ले में बने एक विकेट पर तो 175 की चेज आराम से हो जाती है. इजी हो जाती है. आराम से तो नहीं कहूंगा लेकिन आसान हो जाती है. And that's a good shot played on the back foot. Just a single towards the sweeper cover. Probably they'll come for the second as well, and they're coming. This is good running and a good throw as well, but this time they were really quick, the batsman, and this is such a long boundary out there. A two could always be taken, and this time they've realized it. From the word go, a couple taken again, and Nilesh Samant. जहाँ पैरों में जान चाहिए इतने बड़े ग्राउंड में खेलने के लिए, क्योंकि आपको रन्स बनाने पड़ते हैं. बाउंड्री ना भी आए तो 2 को 3 में तब्दील कीजिए. और ये अच्छा शॉट. And that's a good ball as well. He played well, but straight to the fielder. And the best example for running between the wickets is none other than the ex-captain of India, Virat Kohli. The way he is inspired millions of youngsters. शालीन जी, मेरा विचार है, मेरी समझ में जो इतनी क्रिकेट की नॉलेज मेरी है, मैंने 2 बल्लेबाजों के बीच में तालमेल सबसे ज्यादा देखा है MS धोनी और सुरेश रैना के बीच में. Yeah, and I would like to quote another example, very similar to what you said. Robin Singh and Ajay Jadeja. Yeah. Those two Yes, players yes. also used to Yes. run really well between the wickets, and we've Very seen well, so many very innings well. between them when they have actually stolen singles out of the hands of the fielders and converted ones to 2. So absolutely right, Kulraj. MS Dhoni and Raina definitely were really good. Even runners between the- Jadeja is electrifying. Absolutely. Ravindra Jadeja is something He's very brilliant. electrifying. He is an asset to the Indian cricket for sure. 100%. Sir Jadeja. He saves around almost 20 runs in every match. Whether he gets to bat or not, he does his job with the ball and the field, even if he doesn't get the ball in his hand. That is the surplus. Absolute utility cricketer. And 2 overs have been bowled. The score is 14 for 1. Piyush Patel bowling a wonderful first over and a successful one as well. And we're here with the 3rd over. Manvendra Mishra, the tall, fast bowler. Let me inform the viewers, he has a lot of bouncers in his armour. Oh, and he's quick. Probably appealing for an LBW too high for the comfort of the umpire. अच्छी गति है उनके पास. Absolutely, and he bounces the ball as well. He uses the one bouncer for the over, almost in every over. In a lot of tournaments and matches we have seen him bowl. Manvendra Mishra is an asset to this team, the Ddpl strikers. Oh, and that's a peach. He almost got him there, Kulraji. बहुत खूबसूरत गेंद. छकाती हुई बल्लेबाज को कुछ खास समझ नहीं आया उनको. बल्ला मिला रहे थे गेंद से. भाग्यशाली रहे बल्ले ने बाहरी किनारा नहीं लिया, नहीं तो विकेट कीपर हर कैच लेने के लिए तैयार. और अच्छे विकेट कीपर है ये.
अभी तक फिलहाल बहुत अच्छी कीपिंग का. You can have a replay there. Absolutely brilliant. And this time, bringing the ball back in sharply, but missing the leg stump for sure. So, a leg by signal by the umpire, but no chance of an LBW. So, he is bowling really quick. Manvendra Mishra. He's a quick right arm paceman. Would definitely be called a fast bowler, Manvendra. बिल्कुल सही कह रहे हैं आप. और थोड़ी अटैकिंग फील्डिंग जिसकी ज़रूरत है. जब आपके पास इतनी अच्छी गति का गेंदबाज है तो आप कम से कम एक स्लिप तो लेकर के खेलें. I was about to say that, Kulraji, you just took the words out of my mind there. Why haven't they taken a slip to such a wonderful bowler? Oh, and this time in the air. What in the gap? Will that be a boundary? We'll have to see that. And an easy 2 there. That's a good chase by the fielder. The captain there doing the job, but that was... गति ने बहुत सहायता की गेंद को बाउंड्री लाइन की तरफ भेजने में, लेकिन अच्छी फील्डिंग, बाउंड्री लाइन पर चेस करके रोका गया. And he's bowling really well. He did not want to hit that in air, probably because of the pace. It went into the air, Kulraji, as you mentioned. This is good bowling by Manvendra Mishra. आप देखिए एक दीवार बनाई हुई इन्होंने बैकवर्ड पॉइंट और कवर पॉइंट के बीच में. एक पूरी फील्डर्स की दीवार बनी हुई है. Oh, and this time in the air again, and same shot. This would be a boundary for sure. It's running towards the boundary, and the fielder gives up this time. And probably he stopped it. Oh, yes. It seems he stopped it. The umpire waiting for the signal from the fielder, probably. Was that a 4, or they've taken 3 though? We'll have a look at the replay there. देखिए भागते हुए उन्होंने किस तरह रोका है गेंद को. Oh, and this time, oh, and it seems it has touched her. It seems to be a boundary. We'll have to just have a look at. थर्ड अंपायर चेक कर रहे हैं कि बाउंड्री है या नहीं. देखते हैं क्या इशारा आता है. Yeah, and that has been signaled a boundary, and the strike will change. The replay showing there as a boundary. अंपायर समीर ने इशारा किया 4 रन का. Probably he had a discussion with the leg umpire Prakash Virbhute and the third umpire as well. Ajit Gopalakrishnan, the third umpire, coming into the act there, and that's a wonderful decision. That was a sure shot boundary. We saw that in the replay, and this is good sportsmanship spirit as well by the players. एक एक रन कभी कभी महत्वपूर्ण होता है. कभी आप देखिए कई मैचेस इतने क्लोज हो जाते हैं, तो इसलिए किसी भी रन को महत्व हमको कम नहीं समझना चाहिए. और यही आज आपने देखा इस मैच के अंदर भी कि बाकायदा टीवी अंपायर ने ये कहा कि 4 रन हैं और उसे 4 रनों में तब्दील भी किया गया. Absolutely, Kulraji, and that was a good shot and deserved a boundary as well. जी बिल्कुल बिल्कुल. You are surprised why this is not being called a boundary. Probably the umpire did not get the view there. Oh, another good shot, slapped this time. Will be a boundary again. What a shot that is, Kulraji. Wide of the mid-off fielder. He tried his best, but that was a slap by the batsman. This is wonderful batting, and पावर प्ले है. फील्डर 20 गज के घेरे के अंदर हैं और आप एक्स्ट्रा कवर और मिड ऑफ के बीच में से अगर गैप कर लेते हैं तो निश्चित रूप से 4 have a look मिलते at that हैं. replay. He did not move his feet much, but a brilliant connection between the bat and the ball. शालीन गेंद की गति इतनी है इन बॉलर की कि वो बहुत हेल्प करती है. Absolutely, and I was surprised. I'm surprised till now why hasn't he used the short delivery, the bouncer which he is known for. He's a very quick bowler that we've seen. But what about the bouncers? The one bouncer per over, Kulraji. That's one of the major weapons that he utilizes while bowling. लेकिन आपने फील्ड प्लेसिंग देखी, उन्होंने ऑफ साइड पर शील्ड लगाई हुई है. अगर वो बाउंसर वाला कुछ इफेक्ट होता तो शॉर्ट स्क्वायर लेग पर एक फील्डर लेकर के तब शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद करनी चाहिए.
खैर अब उनकी प्लानिंग है, क्या प्लानिंग है वो नेक्स्ट ओवर में देखेंगे. Yeah, and that's the end of the third over. The score is 29 for 1. That was an expensive over. So that's a wonderful start by the batting team. और ये गेंद कमेंटेटर का फिर हुआ, विकेट कीपर से भी मिस हुई और ये बाई के 4 रन. Yeah, and all these count and very important runs again. 4 runs this time through buys though. And that was a good delivery. Just have a look at the replay there. A wonderful delivery. ये रन बहुत सहायक सिद्ध होते हैं. एक तो स्कोर बोर्ड पर दिखते हैं ये रन, आपका आत्मविश्वास बढ़ाते हैं ये रन. And this is Kamal Panwani, his first delivery. He's been brought into the attack and he bowled a good delivery. यहाँ जिस गेंद को विकेट कीपर भी ना समझ पाए वो बॉडी डिलीवरी बोली जाएगी. And for a moment he resembled Ajanta Mendis, the spinner from Sri Lanka. Just have a look there. Oh, and what a delivery again. This is absolutely brilliant bowling. No wonder why the keeper missed the first delivery, Kulrajji. And Preet trying to drive it. Just have a look at the replay there. Wonderful delivery that by the एक्शन bowler. देखिए इनका, एक्शन देखिए. Yeah, and it's a very peculiar action. And this time he plays it in the air, but straight to the point fielder, but a single taken nicely there by both these batsmen. But this is wonderful bowling. Not at all an easy bowler to play. That was a wonderful delivery. We just saw in the replay there. क्षेत्र रक्षण में थोड़ी सी तब्दीली फील्ड प्लेसिंग में. अब एक शॉर्ट एक्स्ट्रा कवर. And that's good thinking on the part of the captain there. He's trying to attack. He wants a wicket, and that is the need of the hour as well. They've started off really well, Kulrajji. Oh, and that's a wonderful delivery again. And the keeper standing up to the stumps. Not easy for him also to. Probably has hurt himself this time. टप्पा पड़ने के बाद तेज बॉल निकल रही है, स्किट कर रही है विकेट से. और विकेट कीपर भी चूके इसलिए क्योंकि थोड़ी हाइट भी उनके एक्सपेक्टेशन से ऊपर हुई और गति भी थोड़ी तेज थी. उनको थोड़ी चोट भी लगी है, लेकिन परवाह किए बगैर चोट की विकेट के पीछे खड़े. Yeah, he's a very good wicket keeper that we've seen already in the first 3 overs. Oh, and this time he almost has got him. And is that an out? That is a wicket there. That's an edge. छेड़खानी की कहते हैं ना, सावधानी हटी दुर्घटना घटी. Absolutely, and the umpire slowly raises his finger. So that was a genuine edge, and the second wicket is down, and that is what we were talking about. They've finally broken through again, and that was the need of the hour. इंटरवल्स में विकेट गिरते रहने से टीम की जो दृढ़ स्थिति होती है वो कमजोर होती जा रही है. Yeah, and Panwani takes a very important wicket for his team. So 2 wickets down now. Kamal Panwani has his tail up. This is just his first over, and he's taken a very good and a very important wicket. Oh, and that was LBW, not the edge. We'll have to just check with the umpire what decision it was. And confirmed by the umpire there, this is LBW.
2 wickets down on the score of 34 in just 3.5 overs. So a good start by both the teams. The run rate is very good. And Chetan Kapoor, the prolific batsman, is at the crease. Oh, and this time, drifting down the leg side, played well by Chetan, will be a boundary on his first delivery. That's a wonderful shot and a poor delivery to start to the new batsman. Not at all a good delivery. And the treatment given by Chetan. You cannot ball loose deliveries to this guy. We know what kind of batting he does. He could be a destructor right from the word go. And this time he starts off with a boundary. And that's the end of the 4th over. The score is 38 for 2 after 4 overs. And Preet Singh on strike. And Captain Piyush Patel coming into bowl his next over. The 5th of this innings. And every time we see him, he reminds us of the Indian cricketer Akshar Patel. Almost everything similar, and the surname as well, just the name different. And he starts off well. That's a good cut shot straight to the backward point region, just a single. मैच का पलड़ा फील्डिंग टीम की तरफ थोड़ा सा झुकता हुआ. They've maintained a very good run rate, Kulraj here. It's just the wickets that they'll have to take care of. It's not easy when you lose the first 2 wickets in the power play. That's a good delivery. Came back nicely. शालिन जी अभी पावर प्ले चल रहा है. आप ये 2 विकेट नहीं बोल सकते. गेंदबाज 3 या 4 की टैली जरूर चाहेंगे. Absolutely, and that is the reason why Piyush has come back with his second over. He was the one who gave the breakthrough to his team, the captain of the Ddpl strikers. Chetan Kapoor on strike now. Piyush Patel to Chetan. Oh, and that's a wonderful delivery. Chetan trying to cut it, his favorite shot, but the ball not there. स्पिन पे रन बनाने मुश्किल हो रहे हैं क्योंकि विकेट कीपर बिल्कुल क्लोज खड़ा है और आजादी मिल नहीं रही है आपको. And trying to hit it hard but straight to the fielder there, extra covers. No run taken, another dot. They have a lot of time. Their run rate is really good. They should not be in a hurry to score and lose any wickets. लॉन्ग ऑफ से फील्डर को आगे बुलाया गया है और मिड विकेट की तरफ फील्डर को डीप भेजा गया है. देखिए उन्होंने उसको खींचना चाहा आउटसाइड द ऑफ स्टंप की बॉल को. Absolutely, and this is a good delivery. He's forcing the batsman to make the mistake there. Pulling a mix of the flight and the flattest trajectory, and that is what is making him more difficult to play. Just have a look there. This time it's a flattest trajectory and short delivery, but straight to the fielder at the sweeper cover. Only a single this time. He does well. बहुत बढ़िया ओवर चल रहा है ये. रन बनाने की कोई आजादी नहीं दे रहे हैं. बहुत शांत. And that's the end of his second over, Kulraji. Just 7 runs he's given, as mentioned by you, in his 2 overs, and he's taken a wicket as well. So इस ओवर में मात्र 2 रन आए हैं. 40 for 2 after 5 overs, and I'll now switch to the Hindi commentary, Kulraji. स्वागत है आपका सर. 5 ओवर समाप्त हो गए हैं.
magic. Whimsical, quirky, and I wanted my walls to reflect all of that. Playful, subtle, artistic, world-class. So I think my walls are also my art now. और ये बढ़िया शुरुआत ओवर की, और ये तेजी से रन लेने की कोशिश, रन आउट हो सकते हैं यहाँ पर, और ये थ्रो लग जाता तो आउट हो जाते, बच गए कुलराज जी, यहाँ पर बच गए चेतन कपूर, बहुत ही आराम से रन ले रहे थे और महंगा पड़ जाता है इन्हें। जी हाँ, आलस भरा हुआ रन था, उनके इस इनिंग के जीवन को समाप्त कर सकता था, लेकिन अंत में पुरजोर कोशिश की उन्होंने, पैरों में की गति ये देखिए, अगर ये लग जाता, बल्ला भी इनका हवा में ही था। बहुत ही बढ़िया रिप्ले टेक्नोलॉजी दिखाती हुई। ये बेसाइड स्पोर्ट्स के चैनल आपको दिखा रहा है, बेहतरीन रिप्लेज और बेहतरीन जानकारियां आपको मिल रही हैं, ओनली ऑन बेसाइड स्पोर्ट्स। और ये छोटी गेंद थी, उसे स्क्वायर लेग की दिशा में खेला, शॉर्ट आर्म जैब मारा उन्होंने उसको। जी हाँ कुलराज जी, बिल्कुल सही कहा आपने, और इस बार ड्राइव किया, बढ़िया शॉट, और कवर से दूर और लॉन्ग ऑफ की दिशा में एक रन। लॉन्ग ऑफ थोड़ा सा वाइड है, इसलिए एक ही रन हुआ, हालांकि शॉट बहुत बढ़िया था। ये आज टूर्नामेंट के लिए जो उन्होंने चीयर बॉयज एंड गर्ल्स रखे हैं, वो पंजाब का माहौल बनाया है, ढोल बजता है चौके या छक्के आने पर, लेकिन इनकी पारी में ढोल की आवाज आ ही नहीं रही, ना कोई चौका ना कोई छक्का। जी हाँ, और एक चौका लगा था, लेकिन अंपायर जी वो 100 साल पहले लगा था, उस समय उन्हें लगा कि चौका नहीं है, वो बाद में थर्ड अंपायर ने, तीसरे अंपायर का निर्णय हुआ कि वो चौका ही है। शॉट ऑफ लेंथ बॉल उसको खेला है, और अगर चेतन कपूर खड़े रहे कुलराज जी, तो ढोल नगाड़े उनके बल्ले से ही आपको सुनने को मिलेंगे, इस तरह के बल्लेबाज हैं वो। उम्मीद करता हूं मैं ऐसा हो, क्योंकि मैच में थोड़ा रस आए, हमारे दर्शकों को भी थोड़ा सा फाइटिंग मैच दिखे, वन साइडेड मैच में मजा नहीं आता है। जी हाँ, और अच्छा अभी तक मुकाबला हो रहा है, 5.3 ओवरों में 43 रन 2 विकेट पर टॉर्नेडो के बल्लेबाजों ने बनाए हैं। बढ़िया गेंद, ये बढ़िया गेंद, अंत में अपने हाथ को रोक लिया इसे, और खेलने के बाद गेंद को रोक लिया। जी हाँ, मुश्किल हो गई थी रन रेट को भी रोक लिया, हर चीज रुकी हुई है, चल क्या रहा है। जी हाँ कुलराज जी, अब बल्ला चलने वाला है ऐसा लग रहा है, प्रीत का देखते हैं। बढ़िया शॉट, इस बार कवर्स की दिशा में खेला हुआ शॉट, मिड ऑफ को पार करता हुआ लॉन्ग ऑफ की दिशा में एक रन। अच्छी ड्राइव फिर से, लेकिन करारे प्रहार नहीं आ रहे हैं। जी नहीं, और पावर प्ले का आखिरी ओवर है ये, बिल्कुल प्लानिंग के हिसाब से गेंदबाजी हो रही है, डीप एक्स्ट्रा कवर में फील्डर लगा करके 2 शॉट रोके गए हैं। जी हाँ, चेतन स्ट्राइक पर, अब देखना है कि क्या कुछ धमाका करते हैं इस गेंद पर। बढ़िया शॉट, छोटी गेंद, और ये 4 रन होना चाहिए। चेतन की यही खास बात है, आप उन्हें खराब गेंद देंगे अगर, और ये देखिए ढोल नगाड़े भी बजते हुए। जी हाँ, मेरी आवाज वहां तक भी लगता है चली गई। आपकी आवाज लोगों के मन में घर करती है। और ये छोटी गेंद देखिए, इसको उचित व्यवहार के साथ चौके की तरफ भेजा। आगे वाला पैर उठा के हवा में मारने की तरीका कपिल देव साहब से स्टार्ट हुआ था। जी हाँ, और ये बहुत ही बढ़िया और बहुत ही मुश्किल शॉट है, क्योंकि आपको अपना संतुलन भी बनाए रखना पड़ता है इसमें। अगर आपने थोड़ा सा भी संतुलन खोया तो बल्ले से गेंद चूक सकती है, आप LBW, पगबादा या फिर बोल्ड भी हो सकते हैं। शालीन जी, मैं तो इस मामले में थोड़ा दूर ही रहूंगा, क्योंकि मुझे अपना संतुलन संभालने में बहुत वक्त लगता है। 6 ओवर के बाद 48 रन 2 विकेट के नुकसान पर टॉर्नेडो की अच्छी बल्लेबाजी हो रही है। 8 रन प्रति ओवर के हिसाब से खेल रहे हैं, हालांकि रन गति जो है वो करीबन 9 रन प्रति ओवर की चाहिए। 84 गेंदों पर 127 रन चाहिए, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर यहाँ पर। और शालीन जी, आज ये पहला मैच है और इसके बाद दूसरा मैच भी होना है, बहुत इंटरेस्टिंग मैच है वो। हमारे दर्शकों को बता दें, इस मैच के खत्म होने के आधे घंटे बाद हम दूसरा मैच का लाइव टेलीकास्ट आपके लिए पेश करेंगे, जो आपको बेसाइड स्पोर्ट्स पे मिलेगा।
सो बी विद अस। आज की शाम आप कर दीजिए बेसाइड स्पोर्ट्स के नाम। अगला ओवर लेकर आते हुए ओजस मेहता, जबरदस्त गेंदबाज, बढ़िया अरफन मौला खिलाड़ी, बल्लेबाजी में तो सलामी बल्लेबाज हैं ही। कट शॉट के लिए 2 फील्डर लगाए हुए, एक डीप गली है और एक शॉर्ट पॉइंट है, स्क्वायर, थोड़ा सा बैकवर्ड स्क्वायर। लेफ्ट हैंड बैट्समैन है और कट करना चाहते थे, पूरी तरीके से चूके। देखिए जी हाँ, ओजस की आप गेंदों की लंबाई देखिएगा, लेंथ के लिए जाने जाते हैं ये। और प्रीत अच्छे बल्लेबाज हैं, लंबा खेलने के लिए जाने जाते हैं। उनको आज भी एक लंबी इनिंग्स, बड़ी पारी खेलनी पड़ेगी। अरे बढ़िया शॉट, देखिए क्या जबरदस्त शॉट है, और लॉन्ग लेग की तरफ खेल दिया इसे 4 रन के लिए। थोड़ी सी गर्मी पकड़ी है इनिंग ने। पिछले ओवर की अंतिम गेंद पे भी चौका आया और इस ओवर की दूसरी गेंद पे चौका। और ये 50 रन भी पूरे होते हुए इस चौके के साथ 52 का स्कोर हो गया है। एक चीज और देखने वाली है शालीन जी कि आपने ऑफ साइड पैक करी हुई है और गेंदबाजी आप लेग साइड पर कर रहे हैं। ये और ये गलती पहली पारी में भी हमने देखा था, बहुत गेंदबाजों ने की थी। फील्डर्स और क्षेत्ररक्षकों के हिसाब से, क्षेत्ररक्षकों के हिसाब से गेंदबाजी ना कराना एक बहुत पुरानी बीमारी है। और ये क्या वाइड है? जी हाँ, बहुत ज्यादा ये स्पिन करी गेंद, मिडिल लेग से स्टार्ट हुई, लेग स्टंप के बाहर निकल गई। इतना घुमाव है इनकी गेंदों में जी, लेकिन विकेट कीपर ने अच्छा एंटिसिपेट करके उसको रोका। जी हाँ बिल्कुल, विकेट कीपर की तारीफ करनी होगी यहाँ पर। बढ़िया शॉट, ये चौका होना चाहिए अगर तेज हुआ तो। जी नहीं, लॉन्ग ऑफ पर 1 ही रन। शॉट में बहुत तेजी नहीं थी, प्रहार तो अच्छा था लेकिन करारा नहीं था। हवा में बस खेल दिया था 1 रन के लिए। हमारे स्कोरर भी बहुत मजेदार बातें करते हैं, बोलते हैं करारे तो कुरकुरे होते हैं। जी हाँ, लगता है इन्हें कुरकुरे कंपनी से विज्ञापन आया हुआ है जो वो यहाँ पर कर रहे हैं। लेकिन ये बातें हम सिर्फ यहाँ बॉक्स में बैठ के करते हैं, जब विकेट पे जाते हैं तो सारे कुरकुरे समझ में आ जाते हैं। जी हाँ, एक और बढ़िया जवाब दिया स्कोरर ने, तब टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं। जबरदस्त है इनका प्रेजेंस ऑफ माइंड, तारीफ करना चाहूंगा। जी जी जी, टेढ़ा है पर मेरा है। बहुत ही मजाकिया किस्म के इंसान हमारे स्कोरर। और अगली गेंद ओजस की, और ये हवा में खेला हुआ शॉट, लेकिन 1 रन मिल जाएगा। और एक खराब क्षेत्ररक्षण, लचर, 2 रन मिल जाएंगे। जी हाँ, 1 होना चाहिए था लेकिन 2 हो गया। और तीसरे के लिए भी आना चाहेंगे यार? नहीं, 2 से ही संतुष्टि करेंगे। और मिहिर की यहाँ पर मिहिर को चीरती हुई गेंद निकल गई। जी हाँ, चूक हो गई इनसे। अभी 1 का 2 हो गया यहाँ पर। कभी कभी गेंद टिप्पा पड़ने के बाद घूम जाती है फील्डिंग टाइम पे, वही हुआ इनके सामने। ये दाएं गए और गेंद बाएं गई। जी हाँ, और इस दाएं बाएं में 1 रन अतिरिक्त ले लिया चेतन कपूर ने। बढ़िया शॉट, पीछे आकर खेला, कट किया, लेकिन वहां पर स्वीपर कवर है, 1 ही रन होगा। चेतन के लिए तो स्वीपर कवर हर कप्तान रखेगा, इतना जबरदस्त कट शॉट लगाते हैं। चहलकदमी करते हुए रन लिया, बिल्कुल मॉर्निंग वॉक सिंगल जिसको बोलते हैं। जी हाँ, अपनी ऊर्जा को बचाकर भी रख रहे हैं अगर बड़ी और लंबी पारी खेलनी है, क्योंकि सही रणनीति, जहां पर 1 ही रन है वहां पर ऊर्जा का प्रयोग कम होना चाहिए। ओजस मेहता 8 रन दे चुके हैं इस ओवर में, पहला ओवर इनका। बढ़िया गेंदबाजी है, 1 ही रन मिलेगा, लेकिन लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में मानवेंद्र मिश्रा ने उसे रोका और 1 ही रन हो पाया। और ये ओवर की समाप्ति 7 ओवर के बाद 56 रन 2 विकेट के नुकसान पर टॉर्नेडो के। 8 रन के औसत से खेल रहे हैं। 8 रन के औसत से समझ लीजिए 15 रन शॉट हैं ये, लेकिन वो 15 रन आखिरी के ओवरों में आ जाते हैं। माफी चाहते हैं, 58 रन स्कोर है 2 विकेट के नुकसान पर। जी, वही लगभग 8 रन का औसत हुआ। जी हाँ कुलराज जी। Look, magic. Whimsical, quirky, and I wanted my walls to reflect all of that.
playful, subtle, artistic, world class. So I think मानवेंद्र वैसे ही अच्छे खासे लंबे कद के हैं और उनकी गेंदबाजी का कद तो उनसे भी ऊंचा है। जी जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। बढ़िया क्रिकेट ग्राउंड इस समय दूधिया प्रकाश में नहाया हुआ। दर्शकों की संख्या भी बढ़ती हुई। बढ़िया गेंदबाजी है, पहली गेंद ऑफ स्टंप के बाहर और प्रीत पूरी तरह चकमा खा गए और भाग्यशाली रहे कि बाहरी किनारा नहीं लगा। जी हाँ, बाहरी किनारे का पूरे चांसेस है, लेकिन अब ये मोड़ ऐसा है 7 से 15 ओवर का जिसमें आपकी डॉट बॉल्स आपको बहुत डैमेज कर देती हैं। आप चाहे सिंगल रोटेट करते रहिए लेकिन रन रोटेशन में रहने चाहिए। और ये एक और अच्छी गेंद, पुल करने का प्रयास, लेकिन इतनी तेजी से गेंद आई कि सीधे खेलना पड़ा प्रीत को और सीधे मानवेंद्र के पास वापस गई ये गेंद और डॉट गेंद, 2 डॉट गेंद से शुरुआत। बढ़िया गेंदबाजी। उसको प्लेस करना चाहिए था बॉल को थोड़ा। जैसा मैं बोल रहा हूँ आपसे कि सिंगल नहीं निकालते, कि सिंगल आप कहीं पर भी नज करके या हल्के से खेल के बना सकते हैं अगर आप। और ये देखिए, इसी उछाल की मैं इनकी बात कर रहा था कुलराज जी, ये बहुत ज्यादा अपने कंधे का इस्तेमाल करते हैं और बहुत ही बढ़िया प्रयोग करते हैं। इस बार भी इन्होंने कोशिश की एक बाउंसर डालने की और 3 गेंदें लगातार डॉट हो गई हैं, तो अब प्रीत पर भी दबाव आएगा कि एक रन तो बनाना ही है कम से कम। 3 डॉट गेंदें लगातार आ जाएं किसी ओवर में तो ये देखिए। और इसी दबाव की मैं बात कर रहा था और तेजी से भागने की कोशिश, लेकिन वापस भेजा वहां पर चेतन कपूर ने और एक और डॉट गेंद, 4 लगातार डॉट गेंदें। और अब देखिए, यही होता है जैसा आप कह रहे थे कि अगर आप 1 रन 2 रन नहीं लेके रोटेट नहीं करेंगे स्ट्राइक को। अब ये प्रेशर जब बन जाता है तो बैट्समैन अपना विकेट खो देता है बड़ी हिट मारने के चक्कर में। और इनके साथ जो चेतन जी हैं वो थोड़ा रनिंग में, ये देखिए, ये जबरदस्त गेंदबाजी, वाह। ये जेन्युइन बाउंसर कुलराज जी, पुल करने का प्रयास, लेकिन बैट का फेस खुला हुआ है, आप पुल कैसे कर सकते हैं जब तक क्लोज नहीं करेंगे बैट का फेस। सही कहा आपने कुलराज जी, ये और बहुत तेज गेंद थी, थोड़ा सा वहां पर अचरज में भी आ गए बल्लेबाज। और ये देखिए एक और अच्छी गेंद और ये मेडन ओवर डाल दिया है, वाह। बातों बातों में मेडन करा दिया कुलराज जी इन्होंने तो। बिल्कुल बिल्कुल, पहला मेडन ओवर आज के इस मैच का। जबरदस्त गेंदबाजी है और 6 की 6 गेंदें बड़ी ही मुश्किल में डालती हुई प्रीत को पुल करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन चूके और ये 8 ओवर के बाद 58 रन, और ये मेडन ओवर था तो स्कोर में कुछ इजाफा ही नहीं हुआ। ये 6 गेंदें बहुत डैमेज कर देंगी, देखिएगा, क्योंकि ये समझ लीजिए आपको 8 रन पीछे कर देती हैं 6 गेंदें जो आपने डॉट खेली हैं। जी हाँ, 8 रन प्रति ओवर के हिसाब से खेल रहे थे, बिल्कुल सही कैलकुलेशन आपका कुलराज जी। 7.25 का है करंट रन रेट। 7 ओवर में 58 रन थे, अब 8 ओवर में 58 रन है और हमें लगभग 9 रन से ऊपर का एवरेज चाहिए। ओजस का अगला ओवर है और चेतन कपूर ने सीधा शॉट खेला, क्या ये आउट होंगे? एक ही रन होगा ये। अच्छा शॉट खेला था, लेकिन थोड़ा सा ताकत और होती तो ये डेफिनेट जी हाँ, लेकिन बड़ा ये हिट हो बहुत जाता। बड़ा ग्राउंड है, ये मैदान बड़ा है कुलराज जी, आसान नहीं है इसको क्लियर करना छक्के के लिए। जी जी, इसलिए जो एक छक्का लगा है वो भी अभी तक देखिए आप, जो उन्होंने स्लॉग स्वीप मारा था पिछले इनिंग में अनीस ने, उस पे मारा था। एक भी छक्का अभी तक सीधा नहीं लगा है और ये आसान भी नहीं है। ओवर पिच गेंद और सीधा मिड ऑफ, और ये छोड़ दिया, इतना आसान कैच छोड़ दिया इन्होंने। ये तो बहुत ही आसान कैच था और ये शायद कप्तान ने छोड़ा है, पीयूष पटेल ने कैच छोड़ा है। देखिए बिल्कुल ओवर पिच बॉल को ड्राइव किया, सर ऊंचा हो गया और गेंद हवा में गई।
और ये देखिए कप्तान की तारीफ करनी होगी, खुद को उन्होंने पिच के थोड़ा ही पीछे लगाया था सीधे शॉट के लिए और खुद ही को लगाया था, ये तारीफ के काबिल बात, लेकिन कैच छोड़ दिया और ये महंगा साबित हो सकता है। बढ़िया गेंदबाजी और एक बार फिर से कैच छोड़ा, शायद ये बाहरी किनारा था। और ये क्या कर रहे हैं, बॉलर का जो एक्सप्रेशन है उससे ही लग रहा है कि बाहरी किनारा था। जी हाँ, ये हाँ ये जेन्युइन एज, बल्लेबाज का तुरंत सर भी पीछे की तरफ गया शॉट खेलने के बाद और ये अच्छी गेंद, एक ही रन होगा फाइन लेग पर। अच्छा क्षेत्र रक्षण, लेकिन ये 2 कैच छोड़ दिए यहाँ पर कुलराज जी, और दोनों अलग अलग बल्लेबाज और बैक टू बैक, और बॉलर आपको क्या दे सकता है। जी हाँ, ओजस बहुत निराश होंगे, 2 गेंदों पर 2 कैच छोड़ देना कोई मजाक की बात नहीं है। रनों का चेज थोड़ा धीमा पड़ता हुआ, लगभग आधे पर आ गए हैं हम लोग, और ये सीधा खेला है और विकेट पर मारने की कोशिश की, फॉलो थ्रू में उन्होंने हाथ से डिफ्लेक्ट करके विकेट पर देने की कोशिश की थी। जी हाँ, ये अच्छा प्रयास भी था ओजस का, खुद ही रोक लिया उन्होंने, एक ही रन हुआ, लेकिन इस ओवर में कहानी बदल सकती थी कुलराज जी। 2 कैच अगर नहीं छूटते, ये कैच का समीकरण बदल जाता। कैचेस मेक मैचेस सर, अगर आप कैच छोड़ देंगे तो आप। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने कुलराज जी, और खासे खुश होंगे दोनों बल्लेबाज कि एक एक जीवनदान मिला है। जी बिल्कुल, खास करके प्रीत का कैच तो बहुत ही, जिसे सिटर कहते हैं क्रिकेट की भाषा में, कप्तान पीयूष पटेल ने छोड़ दिया। सबसे बड़ा हैरत करने वाली बात यह है कि कप्तान पीयूष पटेल ने वो कैच छोड़ा, बहुत ही जबरदस्त खिलाड़ी हैं। अगली गेंद, छोटी गेंद, और ये बहुत ही अंतिम समय पर अपना मन बदल लिया, यहाँ पर शॉट खेलने जा रहे थे चेतन कपूर। ओवर की समाप्ति हो गई है, 9 ओवरों के बाद स्कोर है 62 रन 2 विकेट के नुकसान पर। बहुत ही गेंद का घुमाव उन्हें छका गया। जी हाँ, और आखिरी समय में अपने हाथ को रोक लिया, ये भी अच्छी बल्लेबाजी है। अगर फंस जाते गलत शॉट मार के तो शायद अपने आप को ही जिम्मेदार ठहराते, लेकिन ओवर की समाप्ति कोई खतरा नहीं। 9 ओवर 62 रन, पिछले 2 ओवर में सिर्फ 4 रन बने हैं। कुलराज जी यहाँ दबाव बढ़ता हुआ, गाड़ी ट्रैक से उतरती हुई लग रही है। जी हाँ, बहुत जल्दी ये बल्लेबाजी की रन गति को तेज करना पड़ेगा इन्हें। दसवां ओवर स्टार्ट हो रहा है और 10वें ओवर के बाद ड्रिंक्स होता है, और तब कोई मैसेज जरूर जाता है टीम का, क्योंकि आजकल के मॉडर्न क्रिकेट में अंपायर अलाउ नहीं करते बीच में, नहीं तो पहले ग्लव्स लेकर के या पानी लेकर के फील्डर आ जाते थे, लेकिन आजकल अंपायर थोड़े स्ट्रिक्ट हो गए हैं। हाँ, ड्रिंक्स के अंदर ज़रूर क्लब का अपना टीम का मैसेज आता है, वो बैट्समैन को थोड़ा सा अपनी टेक्निक चेंज करने के लिए बोलेगा, अपनी टैक्टिक्स, अपना खेल का समीकरण। जी हाँ कुलराज जी, बिल्कुल आपने सही कहा। और अब अगला ओवर लेकर आ रहे हैं कप्तान पीयूष पटेल, फिर से माफ कीजिएगा, कप्तान पीयूष पटेल नहीं है ये हैं। खराब गेंद और बढ़िया शॉट, 4 रन के लिए प्रीत के द्वारा। अनीश विद्याकर है नए गेंदबाज, हम माफी चाहेंगे। और चौके से स्वागत किया है उनका पीयूष पटेल ने, हालांकि गेंद भी ऐसी थी कि उन्होंने खुद ही आमंत्रित किया था कि इस गेंद उन्होंने बहुत रन बनाए थे, तो कुछ रन क्या देने आए हैं क्या वो? अनीश विजयकर हैं ये, 8 शतक मार चुके हैं। जी हाँ, तो क्या कुछ और ये बढ़िया शॉट, इस बार फिर से चौका होगा और गैप में खेला हुआ कट शॉट। और तारीफ करनी होगी बल्लेबाज की, यहाँ पर खराब गेंदों को बाउंड्री के पार भेज रहे हैं। दोनों गेंदें सीमा रेखा के बाहर भेजी हैं 4 रन के लिए, और गैप में खेल रहे हैं। देखिए एक और छोटी गेंद, और प्रीत को ऐसी गेंदबाजी नहीं कर सकते कुलराज जी। मैंने आपसे पहले ही कहा उन्होंने काफी रन बनाए, तो कुछ रन बांटने आए हैं लगता है। बैक टू बैक बाउंड्री, और एक और फील्डर बीच में पोस्ट किया है उन्होंने।
अब जरा कट खेलेंगे तो जरा देखें, हवा में ना खेलें, जी हाँ, लेकिन क्योंकि गेंदबाजी भी वैसी होनी चाहिए अब। जी जी वो फिर से ललचाएंगे उनको, कट खेलने में मजबूर करेंगे। ये देखिए ये फंस गए यहाँ पर, लेकिन ये शॉट अच्छा है मैं कहूंगा। इन्हें पता था कि वहां पर क्षेत्र रक्षक नहीं है, एक रन आराम से हो गया, लेकिन अच्छी गेंदबाजी। 2 चौके खाने के बाद बढ़िया वापसी है। हवा में बॉल था और दोनों खिलाड़ियों के बीच में गिरा, इसलिए कोई खतरे की गुंजाइश नहीं। 1 रन मिला, 9 रन आ चुके हैं 3 गेंदों पे। अब इनको लेग साइड जरा संभालनी होगी, क्योंकि चेतन लेग साइड पे बहुत अच्छा खेलते हैं, स्पेशली स्वीप शॉट उनके बहुत अच्छे लगते हैं। जी हाँ, स्वीप और कट दोनों के धनी है, बॉटम हैंड के भी धनी है, जबरदस्त प्रहार करते हैं। अब देखना है कि अगली गेंद पर क्या व्यवहार करते हैं। और ये अच्छी गेंद, बच गए यहां पर चेतन कपूर। शायद उनके पैड को लगी है क्या, या वाइड है, देखना पड़ेगा। वाइड का इशारा अंपायर के द्वारा, लेकिन 1 रन था, दौड़े नहीं वो। जी हाँ, ये रन ले सकते थे क्योंकि डेंजर एंड पे तो थे भी नहीं वो। प्रीत जी हाँ। आराम से आधी पिच पर आ गए थे, उन्हें वापस भेज दिया। उनको पता ही नहीं था गेंद विकेट कीपर से छूट गई है। अभी और लेग इस बाय बार मिलेगा। लेंगे 1 रन। जी हाँ, लेग बाय होगा ये, और यही रन पिछली गेंद पर भी हो सकता था, जैसा कि आपने पहले ही इस बात का जिक्र किया है कुलराज जी। अंपायर का इशारा लेग बाय का। हल्के हाथ से स्मॉदर किया उसको स्वीपर कवर की तरफ, और 1 रन दौड़ करके पूरा किया। अच्छा ओवर बल्लेबाजी टीम के लिए, ये थोड़े महंगे साबित होते हुए विजेकर। अपने ओवर की अंतिम गेंद। राइट आर्म ओवर द विकेट फेंक रहे हैं दूर वाले छोर से। और ये अच्छी गेंद, इस बार हवा में गेंद, क्या ये आउट होंगे? जी हाँ, ये कैच ले लिया है, कॉटन बॉल कर दिया है और अपना काम कर दिया है इन्होंने। और बहुत ही महत्वपूर्ण विकेट चेतन कपूर का विकेट लिया है, और तीसरा विकेट गिरता हुआ और स्तब्ध हो गए हैं चेतन कपूर यहां पर। बढ़िया गेंदबाजी। जी हाँ, वापस आते हुए चेतन कपूर 10वें ओवर की अंतिम गेंद पर विकेट लिया। और ये रिप्ले देखिए, ये देखिए, हालांकि बीच में बैट्समैन आ गए थे, लेकिन उनसे उन्होंने बचते हुए और जमीन पर डाइव करते हुए कभी-कभी ये कैच उठाया। मुश्किल हो सकते हैं। और देखिए, शिकायत भरे लहजे से बैट्समैन को देख रहे हैं, तुम बीच में आ गए थे, लेकिन अंत भला सब भला, और बहुत ही बल्लेबाज महत्वपूर्ण वापस चला। जी हाँ जी हाँ कुलराज जी, आपके ये और यहाँ पर ड्रिंक्स ब्रेक का निर्देश है।
और ये नए बल्लेबाज नॉन स्ट्राइकर एंड पे 10 ओवर के बाद स्कोर है 74 रन 3 विकेट के नुकसान पर। और ये बढ़िया गेंदबाजी, चूक गए यहाँ पर, एक ही रन मिलेगा, हालांकि दूसरे रन के लिए भी आ रहे हैं। क्या रनिंग है ये, जबरदस्त यहाँ पर रनिंग बिटवीन द विकेट्स। विरल अमीन आए हैं और क्या भागते हैं, तारीफ करनी होगी आपको, रिप्ले देखिए। ओजस बढ़िया गेंदबाजी कर रहे हैं और ये अच्छा शॉट इस बार, 4 रन मिलना चाहिए। जी हाँ, बाउंड्री, खराब गेंद लेग स्टंप के बाहर और वो भी लेग स्पिन कर रहे हैं, इसे चौके के पार पहुंचा दिया टी बैकआउट स्क्वायर लेग के क्षेत्र में। कुलराज जी, अब मैं स्विच करूंगा अंग्रेजी कमेंट्री की तरफ। शुरुआत से ही समझ में आ गया क्या मैसेज आया है, और चौका इस बात को बता रहा है कि रन चेज चालू हो गई। Absolutely, and this was not a good delivery as well, so treated nicely. And this time another poor delivery, a full toss. Probably is it straight to the fielder. There is coming back for the second. Viral Amin, he's a wonderful runner between the wickets. 2 runs taken easily there, and that is the way यही मिस कर रहे थे it आप should be चेतन done. के And साथ। absolutely, Kulraj ji, this is the same thing that you were mentioning. I was about to come to that as well, but you pointed out really correctly. And what a shot that is! That's a wonderful piece of batting, and this will be a bound. Oh no, there's a fielder there, and another couple. That was a wonderful shot, but deserved the boundary. Got only a couple there though. लेकिन आप ये देखिए, ये 2 बॉल पे 2 रन आते अगर चेतन जी होते, अभी 4 आए हैं, तो यू आर ऑन डबल। Oh, and this time he plays it in the air again. और But in दोनों the gap, फील्डर and के Viral बीच में Amin खेला है। waits for such shots, just coming for the second easily, and another 2. This is wonderful running, and Preet being pushed by Viral Amin. Kulraji. दोनों फील्डर्स के बीच में प्लेस किया हुआ था। आप ये देखिए कि 4 गेंदों में 10 रन आ चुके हैं। That is what good running between the wickets makes the difference. Another good shot this time. Could be a boundary. Will be a boundary. What a gap he's chosen this time. Perfectly executed shot that. Threading a needle there. Virtually. Just have a look. What a shot. Fished it up. And hitting it. और बिल्कुल गैप में खेला, सदे हुए हाथों से। Absolutely, between the sweeper cover and the deep cover. What a shot that was. Shows the kind of confidence this batsman has and the kind of form he is in. That's the end of a very expensive over. 11 overs gone. The score is 92 for 3. And a wonderful run rate being maintained by. जी हाँ, 11वें ओवर में बहुत शानदार आगाज किया है दूसरे हाफ का। Absolutely, 92 for 3 means they need another 83 runs to win in 9 overs, which is definitely possible. Just over 9 runs they need, and
90 रन 3 खिलाड़ियों के नुकसान पर 12वां ओवर शुरू होता हुआ। विजयकर फिर से एक बार गेंदबाजी कर रहे हैं। छोटी गेंद लेग साइड पर उसे मोड़ दिया है मिड विकेट की तरफ। 1 रन पूरा किया और 1 रन से संतुष्ट दोनों बल्लेबाज। Yeah, Kamal Panwani coming in to bowl his next over. He's taken a wicket, Kamal Panwani. थैंक यू। मुझे लगा कि विजयकर गेंद कर रहे हैं, लेकिन ये कमल हैं। ये विकेट ले चुके हैं पहले ओवर में शायद। Yeah, he's taken a wicket and he's bowled really well. 53 balls and 84 runs. So, not at all out of reach of the batting team, but a couple of wickets there and the match could go the other way anytime. इस समय बराबरी की स्थिति में मैच है, क्योंकि 7 विकेट हाथ में हैं और 84 रन शेष हैं 9 ओवर में। 9 रन से थोड़ा सा ऊपर एवरेज, और उसको खेल दिया है हल्के हाथ से कवर की तरफ 1 रन के लिए। That's a good single taken, a single there. That was a good throw as well, but Piyush Patel would be ruining that chance which he missed. Preet still at the crease and on 45 now. And if Piyush had taken that catch, this match would have been in a totally different situation. Oh, and that's a wonderful shot. This time flicked towards the deep square leg, but there's a fielder, but a couple taken easily. So Viral Amin, a wonderful player he is. Not only a wonderful runner between the wickets, but what a shot he played. That was a good piece of fielding and a good throw as well, but 2 runs easily taken by Viral. It's a long boundary there. आपको बाउंड्री पर वो फील्डर पोस्ट करने चाहिए जिनकी आर्म में दम हो, थ्रोइंग आर्म जिनकी मजबूत हो। अगर आप ऐसे सॉफ्ट थ्रोज करेंगे तो उस पर 1 रन आराम से आएगा। This time in the air. And it seems he's taken it, yes. And Viral Amin this time is the 2nd wicket for Kamal Panwani. And what a spell he's having, Kamal. Just have a look at the replay there. Not playing the right line there. ड्राइव किया था लेकिन बल्ले का बाहरी किनारा लेकर के वो गेंद हवा में हो। And the short third man. So that's a very important wicket gone. The 4th wicket down on the score of 94. And Kamal Panwani doing the trick again. This is his 3rd over. He's taken 2 wickets for just 17 runs. So a wonderful spell by Panwani there. And the short third man catching that. Abhay there at short third man taking a simple catch, but sometimes these simple catches have been dropped as well in this match. So good thing that he did not drop this. क्योंकि शालीन जब बैट का एज लेकर के गेंद हवा में जाती है तो गेंद घूम रही होती है, नाच रही होती है, और उसको हाथ में पकड़ना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, लेकिन बखूबी पकड़ा उसको। Absolutely Kulraji, and credit goes to the fielder there, and some really good bowling by Kamal Panwani. नए बल्लेबाज क्रीज पर। विकेट कीपर बैट्समैन कुणाल भाटिया ऑन द क्रीज। Kunal Bhatia will be on strike. हल्के हाथ से खेला पॉइंट की तरफ और 1 रन दौड़ के पूरा किया, Easy खाता single. खोला।
And he's off the mark. So that's a good start by Kunal. बैटिंग का सारा दारोमदार इस समय जो स्ट्राइक पर हैं बैट्समैन उनके ऊपर है. क्या बोलेंगे चालीन? Absolutely, and Preet has been the mainstay till now. He will have to play the long innings till the end, and if he stays till the end, probably they would be able to chase this in the score. And another good shot played by him towards the cover point, a easy single. That's the end of another good over by Kamal Panwani, and the score after 12 overs is 96 for 4. So exactly 8 runs per over, Kulraj ji. हाँ, लेकिन आगे 9 रन दिख रहे हैं सर. 9 रन से भी ऊपर इनको प्रति ओवर बनाने हैं, क्योंकि 8 रन के औसत से 15 रन ज्यादा हैं वो. दे आर प्लस 15 आफ्टर 160. तो आपको वो 15 रन का ज़रा ख्याल रखना पड़ेगा. हर ओवर में एक दो रन ज्यादा बनाने पड़ेंगे आपको 8 रन से. And probably those extras that they had given at the fag end of the innings, that could hurt them. बिल्कुल आप ये काउंट करें इनकी वाइड बॉल्स और इनके बाय रन्स और इनके वाइड 5 और इनके कैच ड्रॉप्स, तो आप समझ लेंगे मैच का क्यों आप हार रहे हैं. आप अपनी फील्डिंग से हार रहे हैं. कट किया बैकवर्ड पॉइंट की तरफ 1 रन के लिए. चहलकदमी करते हुए रन पूरा किया. कप्तान पीयूष पटेल फिर से गेंदबाजी बनाए हैं, लेफ्ट आर्मर हैं, और जैसे मेरे फेलो कमेंटेटर उनको अक्षर पटेल बुला रहे हैं, वाकई उनका आयाम एक्शन है बिल्कुल वैसा ही. फील्ड प्लेसिंग सेट करते हुए नए बल्लेबाज के लिए पीयूष. लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट. अच्छा बॉल था और उसको कट करना चाहते थे, पूरी तरीके से चूके. भाग्यशाली रहे, बल्ले का बाहरी किनारा नहीं लिया गेंद ने. डॉट बॉल. इस समय डॉट बॉल एक बहुत बड़ा पहाड़ है बैटिंग टीम के लिए, और इसको पुल कर दिया है मिड विकेट की तरफ. वहां फील्डर तैनात हैं. 1 रन पूरा किया. दूसरे रन के लिए आना चाहते थे, लेकिन फील्डर ने बहुत बेहतरीन थ्रो किया और वापस कदम खींचे अपनी क्रीज में. दोनों बल्लेबाजों ने कोई रन नहीं, माफ कीजिएगा 1 रन, और उसी से संतुष्ट. लेफ्ट आर्म गेंदबाज के सामने बाएं हाथ के बल्लेबाज. And that's a wonderful combination and a great contest in the offing. 98 for 4. Piyush Patel, the captain, bowling his 3rd over. गेंदबाजी के कई ऑप्शन हैं इनके पास. What a shot that is. Would be a single innings coming for the second. This is good running between the wickets. Easy 2 taken. अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट. तेजी के साथ दूसरा रन पूरा किया. और इसी के साथ 100 रन 4 विकेट के नुकसान पर. Yeah, and that's a 12.4 ओवर में. That's a good reply to the chase there. Still they are in the game completely. Just 75 needed now in 7.2 overs. 2 overs, and Piyush to Preet again. What a shot that is. He's playing some brilliant shots, and this time another 2, and this will be his 50 as well. Oh, and this time he's out. He's run out. That was a poor call maybe. We thought it would be an easy 2 there, but Kulraji has got run out. And a very important wicket at a very important juncture as well.
अच्छा, लेकिन 50 रन पूरे किए हैं उधर But he दूसरी would not be तरफ. able to celebrate that because that has बिल्कुल resulted वही into मैं a कहने wicket, जा a रहा run था. out. दूसरा रन बहुत हताश रूप से दौड़े थे. और अभी आप थोड़ी देर पहले मैं जिक्र कर रहा था, एक स्ट्रॉन्ग आर्म वाला आदमी आपको चाहिए स्वीपर कवर पर. Probably they listen to you. हाँ, तो वही उन्होंने चेंज किया फील्डर को और वो स्ट्रॉन्ग आर्म आती हुई. This is the 5th wicket down. And the score is 101 now. And Preet has reached his 50, but he would not be able to celebrate that. 44 balls remaining in this match and 74 to win. बल्लेबाजी के लिए नए बल्लेबाज. सचिन देशपांडे नॉन स्ट्राइकिंग एंड पे, क्योंकि रन आउट होकर के गए अभी खिलाड़ी. सचिन देशपांडे जो तेज गेंदबाज हैं, ऑलराउंडर हैं टीम के, वो बैटिंग करने आए 7वें नंबर पर एट 5th डाउन. And Sachin will have to stay there with Preet. Oh, and this time he's clean bowled him. And probably curtains have been raised. This is the most important wicket in this innings, and Captain Piyush Patel striking at the right time. Preet has been clean bowled. And what a ball that was. और एक रास्ता खोल दिया कप्तान ने विजय की तरफ. Just have a look at the replay. विजय मार्ग की तरफ. Kulraji, what a ball that was. Spun really sharply. And look at the happiness and the celebration there. आमर बॉल था, आम के साथ अंदर आया. कट करने गए, जगह नहीं थी कट करने की, और गेंद उनके विकेट को चूमती हुई विकेट कीपर के पास. गुल्लियां उड़ गई उनकी. और अब जीत का रास्ता कप्तान ने खोल दिया है. Absolutely, and this is a 6th wicket down. So they have only 4 wickets remaining and a lot of runs to be scored. And the set batsman and the mainstay of this innings, Preet Singh, has been clean bowled by the opposition captain. और हताश होकर के वापस जाते हुए बहुत अफसोस भरे कदमों के साथ, और नए बल्लेबाज ठक्कर क्रीज पर आते हुए. Yeah, Anand Thakkar this time will have to do the job with the bat as well. He's bowled really well today. We'll have to see how they would now be able to achieve this score. This is a really tough ask. Just 4 wickets remaining. Kulraji, you think still they have a chance, or do you think the curtains have been raised? 20-80, 80% मैच फील्डिंग साइड के हाथ में है. कोई अप्रत्याशित चीज ही उनको हरा सकती है, या तो उनकी खराब गेंदबाजी या कोई चमत्कारी बल्लेबाजी. Absolutely, some miracle would be needed from the batsman now. Not at all easy. और उसको कवर के पास से हल्के हाथ से खेला है. 1 रन दौड़ के पूरा किया और दूसरे रन के लिए जा रहे हैं. खतरनाक हो सकता है. And he has missed it. और Could have been a run out again. बॉल छूट गई हाथ से उनके. कलेक्ट नहीं कर Absolutely, पाए. this could have been the 7th wicket here. That was a missed chance. I don't know why they were taking that risk, Kulraji. That was not needed at all. They've already lost 2 wickets very quickly. Almost the 3rd wicket going down there.
in quick succession. Very lucky to not have lost that wicket. अब करो या मरो वाली स्थिति है इनके लिए. अब ये देखिए 2 रन चाहिए यहाँ पर, लेकिन नहीं ले पाए. That was a good throw as well from the deep. So probably they have listened to your advice of keeping the men with a stronger arm in the deep, and that's what is helping them as well. Almost a second run out there. Fielder missed it. Another good delivery, and this time a dot. रन बनाने बड़ा मुश्किल लग रहे हैं. 175 रन का स्कोर अब एक पहाड़ जैसा लग रहा है. जो थोड़ी देर पहले हो रहा था कि 9 रन पर ही ओवर बनेंगे तो हम टास्क तक पहुंच जाएंगे, अब असंभव सा दिखने वाला टोटल लग रहा है. अगली गेंद और इसको उठा के मारा है स्वीपर की तरफ. 2 रन लेंगे. जी नहीं, एक ही में. अब लगता है मुझे हथियार डल गए हैं. Absolutely, and this time they did not even attempt for the second. जी हाँ, अब इन्होंने लगता है ये सोचा है कि चलो 20 ओवर तक बैटिंग करते हैं और घर चलते हैं. Oh, and this time this will be a boundary. A much needed boundary. Although through an edge this time, but runs are welcome no matter how they come. मैं आपसे शुरू से ही बोल रहा हूँ क्योंकि उन्होंने स्लिप कॉर्डन नहीं लगाया हुआ है. इस तरह के शॉट्स आप ऑन हैं आप इन शॉट्स के लिए. अगर मोटा किनारा लगा तो सीधा 4 ही मिलेगा आपको. लेकिन आप खेले पूरा हाथ. आप अधूरे मन से कोई शॉट ना खेलें. Absolutely right, and चौदह ओवर की समाप्ति के बाद 109 रन. पीयूष पटेल अपने ओवर चौथे ओवर को the captain is leading from the front. This is not Piyush Patel. This is Piyush Patel. I beg your pardon. This is his 4th over, Kulraji, and he starts off with the boundary there. And a good shot played by the batsman. So in a short succession, they have got 2 boundaries, and Anand this time doing the trick. A good shot played in the gap. The point fielder चौके के साथ शुरुआत इस ओवर had की. no chance there. So 14.1 overs, 113 for 6. 62 रनों की गरज है अभी भी. 62 needed. And they have 35 balls to achieve that. So still possible. They shouldn't be losing any wicket now. Oh, and that's a good shot again this time. But just a single. There's a sweeper cover, does well there. A good throw from the deep.
फिर से बैट्समैन तैयार, कप्तान, और ये गेंद थोड़ी सी हवा में उछली और बाहर ऑफ स्टंप के। वाइड का इशारा अंपायर का, 1 रन और अतिरिक्त। और मेरे ख्याल से बॉलिंग टीम ने बहुत कम वाइड गेंदें फेंकी हैं। Absolutely, and the captain guilty this time of bowling the wide. One this time he plays it in the air, could be a catch there. And he's dropped it. Oh, this is really sloppy. This is poor cricket. Should have been an easy wicket for the bowler, but he drops a sitter there. दोनों तरफ से बहुत पुअर क्रिकेट। इस ड्रॉप के बाद दूसरा रन जरूर होना चाहिए था, लेकिन सिर्फ एक ही रन हो पाया। कैच तो छोड़ा है वो फील्डिंग टीम की, और ये स्टंपिंग चांस छूटा। देखिए Absolutely, Kulraj, and what is he trying to do there? So there's a comedy of errors happening there. जी हाँ, ये थोड़ा सा From both the मजाकिया teams. क्रिकेट है। And from both the teams, Kulraj. ये बॉल थोड़ी सी किक कर गई थी, ज्यादा उठी Just have a बॉल। look at the replay. What was he trying to do? And oh, credit goes to the keeper there. The batsman at the non-strikers end didn't realize that he was about to get out there. Caught napping. फुल टॉस। When this time he plays it in the gap, would be just a single. So they're not able to hit boundaries, which is the need of the hour right now. और ठक्कर की रनिंग बिटवीन द विकेट भी इतनी फास्ट नहीं है जैसे वो पहले बैट्समैन दौड़ रहे थे, तो इसलिए ठक्कर थोड़े थक कर के रन ले रहे हैं। Oh, and that's a good shot played this time towards the onside, coming down the track, but just a single. Singles won't help Kulraji. They will have to score boundaries now. देखिए अभी तक गेंद थ्रो नहीं की गई, अब थ्रो की गई है। इतनी देर तक पकड़े रही, आप थोड़ा स्टार्ट रखते दूसरा रन हो सकता है, बट यू नेवर ट्राइड फॉर दैट। आपको बड़ा रन चेस करना है, आपको 1 रन्स को 2 रन्स में तब्दील करना ही पड़ेगा। Absolutely, and not at all a walk in the park. This target was from the ball 1. We all know that. 118 runs after 15 overs for the loss of 6 wickets, and I'll be now switching back to the Hindi commentary, Kulraj ji. स्वागत है आपका हिंदी क्षेत्र में। सोलहवां ओवर शुरू होने जा रहा है और गेंदबाजी के लिए कमल एक बार फिर से। जी हाँ, कमल पनवानी आए हैं अपना अगला ओवर लेकर। और ये इसको उठा के मारा है, अच्छी बिल्डिंग, बहुत अच्छी बिल्डिंग। और ये दूसरे रन के लिए आना चाह रहे थे, लेकिन मिहिर की जबरदस्त यहाँ पर क्षेत्र रक्षण, थोड़ा सा खिंच गया है शायद उनका मसल वहां पर, मांसपेशी। ये दिलशान स्कूप खेलना चाहते थे क्या? जी हाँ, दिल स्कूप की कोशिश कर रहे थे, हालांकि जॉस बटलर का शॉट खेल बैठे। और ये बढ़िया शॉट, इस बार चौका होना चाहिए, गैप में खेला, बढ़िया शॉट, 4 रन। और आनंद ठक्कर की तारीफ करनी होगी, हर ओवर में एक चौका ढूंढ ले रहे हैं कुलराज जी। जी हाँ, पूरा हाथ खेल रहे हैं। देखिए आप ये नहीं कहेंगे कि मिडिल ऑफ द बैट से मारा गया शॉट है, लेकिन इसको पूरा हाथ खेला है उन्होंने। जी हाँ, और अच्छी बात है कि डाउन द ट्रैक आ रहे हैं, आगे बढ़कर खेल रहे हैं, इंतजार नहीं कर रहे हैं गेंद का, कोशिश पूरी कर रहे हैं। पिछले ओवर में स्टंप होने से भी बचे हैं वो। जी हाँ, और उसके बावजूद जो है हौसले में कोई कमी नहीं आई है, ये सबसे अच्छी बात है। किस्मत भी बहादुरों का मदद करती है। ये बढ़िया शॉट, बढ़िया शॉट, आगे बढ़कर खेला, इस बार 2 रन होने चाहिए। खराब क्षेत्र रक्षण, एक बार में रोक सकते थे, देखिए 2 रन हो गए आराम से। बढ़िया बल्लेबाजी है ये, आनंद ठक्कर की तारीफ करनी होगी इनकी।
देखते हैं इस गेंद को किस तरह से फिर निकल के और इस मारा बार ये है। हाथ में कैच हो सकता है, और क्या कैच लिया है, वाह! ये देखिए खुशी जाहिर करते हुए, और क्यों ना जाहिर करें कुलराज जी, क्या कैच लिया इन्होंने कवर्स पर। कैच ऑफ द मैच। जी हाँ, कैच ऑफ द मैच, सही कहा आपने, और बहुत ही मुश्किल कैच था, और जिस तरह से पिछली गेंद उन्होंने पैर से रोकी थी, लग नहीं रहा था ये कैच ले पाएंगे। देखिए आगे बढ़कर खेला शॉट, हवा में खेला, और ये कैच देखिए, वाह! तारीफ करनी होगी। अपनी रीच का पूरा इस्तेमाल किया उन्होंने, जी हाँ, हाथों को आगे की तरफ फैलाया और गेंद हाथों में आके चिपक सी गई। आनंद ठक्कर की अच्छी बल्लेबाजी का अंत बहुत ही अच्छे कैच के जरिए हुआ है। और एक समय जब लग रहा था शालीन कि अब रन बनने की गति थोड़ी तेज हो रही है, वैसे ही विकेट चला जाता है। जी हाँ, और आज की पारी की इनकी कहानी यही रही है, जब जी भी हाँ। कोई बल्लेबाज ने टिक कर खेलने की कोशिश की और रनों की गति को तेज किया, उसी समय एक विकेट इन्होंने खो दिया, और इसीलिए वो रन रेट जो है वो बढ़ता ही आ रहा है रिक्वायर्ड। 7वां विकेट भी गिरता हुआ, 125 के स्कोर पर 7 विकेट। आखिरी 3 विकेट बचे हुए हैं इस पारी में, और अब ये मैच ऐसा लगता हुआ कि इनकी पकड़ से लगभग निकल चुका है। क्रिकेट के खेल में कुछ भी हो सकता है, हम सबको पता है, लेकिन अगर यहाँ तकनीकी सही कह तौर रहे पर हैं बात आप करें। शालीन, अगर आप मेरा भी मत चाहेंगे तो मैं आपके साथ ही हूँ। नए बल्लेबाज राहुल अरोड़ा। अभी 2 गेंदें शेष हैं 16वें ओवर की। और ये बोल्ड। क्या गेंदबाजी है, मानना पड़ेगा, कमल पनवारी छा गए हैं आज। ये इनका 4था विकेट है। बहुत ही जबरदस्त गेंदबाजी, मौका ही नहीं दे रहे हैं। अभी पिक्चर बाकी है मेरे दोस्त, एक गेंद बाकी है, 5वां विकेट शायद मिल जाए। जी हाँ, ये इनका आखिरी ओवर है और स्पेल का आखिरी गेंद। और मेरे बाजू में बचा हुआ बैठे है। स्कोरर्स ने बहुत बहुत धन्यवाद बोला है राहुल अरोड़ा जी को कि उन्होंने उनको जरा सा भी तंग नहीं किया, शांति के साथ चले आए। जी हाँ, लेकिन ये थोड़ा सा बल्लेबाज के लिए अच्छा नहीं। कोई भी बल्लेबाज नहीं चाहेगा पहली गेंद पर ऐसे वापस आना। और तुषार देखिए सिंधिया हैं। मैं आप बल्लेबाज का पॉइंट ऑफ व्यू बता रहे हैं, मैं स्कोरर्स का पॉइंट ऑफ व्यू बता रहा हूँ। वो लोग मेहनत करते हैं, किस एरिया में कितने रन बनाए, कितनी डॉट खेली, कितने मिनट खेला। अभी मेरे स्कोरर बता रहे थे 1 घंटा 25 मिनट हो गए, तो ये सारा जिक्र चलता रहता है और हम सुनते रहते हैं इनकी बातें। जी हाँ, और तारीफ करनी होगी स्कोरर्स की भी, बहुत ही जबरदस्त स्कोरिंग हो रही है। हम आपको उनके नाम भी बताना चाहेंगे। चंदन कोरी हैं जो डिजिटल स्कोरिंग कर रहे हैं। जी हाँ, चंदन कोरी। सतीश सिंह हमारे मैनुअल स्कोरिंग मैनुअल सतीश सिंह कर स्कोरिंग रहे हैं। शटर फॉर स्पोर्ट्स स्ट्रीमर, बेसाइड स्पोर्ट्स हमारा चैनल। मैच अब अपने अंतिम दौर पे जाता हुआ, अब फील्डिंग पोजीशन से लग रहा है कि अंतिम गेंद पर 5वां विकेट दिला के ही मानेंगे कमल को। एक स्लिप आ गई है, लेग स्लिप आ गई है, और ये हैट्रिक चांस है पूरा। फील्डिंग चारों तरफ से घेर दी गई है। जी आप देखना है कि क्या ये अपनी आखिरी गेंद पर, इस पारी की जो इनके स्पेल की आखिरी गेंद है, उस पर क्या हैट्रिक ले पाएंगे। बॉलिंग तो इन्होंने बहुत अच्छी की है और ये बच गए। हालांकि गेंदबाजी बहुत ही जबरदस्त की है। 4 विकेट फिर भी लिए इन्होंने। 4 ओवर का इनका स्पेल समाप्त। 26 पर 4 इनके आंकड़े। क्या गेंदबाजी की कुलराज जी इन्होंने, जबरदस्त गेंदबाजी, और आखिरी बॉल में भी बैट्समैन ने बिल्कुल सीधे बैट रख दिया। जी हाँ, और विकल्प था नहीं बल्लेबाज के पास भी।
और ये बढ़िया यहाँ पर कोशिश विकेट कीपर की, तेज गेंद थी और मानवेंद्र मिश्रा जबरदस्त गेंदबाजी के लिए जाने तो जाते ही हैं और एक विकेट उनको मिल सकता था, हालांकि विकेट कीपर से चूक हो गई। लेकिन मेरे हिसाब से विकेट कीपर का आप रिप्ले देखेंगे तो आगे खड़े हुए थे, थोड़ा पीछे खड़ा होना चाहिए इन्हें मानवेंद्र की गेंदों पर खास करके। लेकिन फिर भी बहुत अच्छी कोशिश। हाँ कोशिश बहुत, ये ये देखिए देखिए। हेलमेट और उनके बीच में कितना बड़ा गैप है और अब देखिए कहाँ खड़े हैं, अब ये हेलमेट के पास खड़े हैं। यही फर्क होता है गति समझने का। बिल्कुल, और देखिए अब हेलमेट के कितना पास खड़े हैं। और ये तो मानवेंद्र का पहला ओवर नहीं, इन्हें समझ आना चाहिए था, ये गलती विकेट कीपर की है, त्रुटि हो गई उनसे। ये देखिए कितना तेजी से आ रहे हैं, हालांकि वाइड हो गई इस बार। 1 रन का और इजाफा। जी हाँ, लेकिन अब लगता है कि कहानी जो है वो लिख दी गई। बिल्कुल, और पूरी तरह से मैच जो है वो डीडीपीएल स्ट्राइकर्स के पक्ष में है और इस बार फिर से वाइड। हालांकि कमेंटेटर्स कर्स कभी भी लग सकता है, देखिए 2 वाइड हो गई, जैसे हमने बोला पक्ष में है मैच डीडीपीएल स्ट्राइकर्स के। लेकिन एक चीज कहनी पड़ेगी कि ये विकेट कीपर बहुत अच्छे हैं, हालांकि ये कैच जो उनसे छूटा है बहुत डिफिकल्ट था और उन्होंने ट्राई बहुत जबरदस्त किया था। जी हाँ, दूसरी बार पूरी तरह अगर देखी जाए पारी में कीपिंग तो बहुत ही बढ़िया है और जी तारीफ के पात्र हैं, सराहना के पात्र हैं और अच्छे खिलाड़ियों की सराहना होनी भी चाहिए। बेशक बेशक। किसी भी सर्किट में, किसी भी लेवल पे, किसी भी स्तर के खिलाड़ी हो। और ये बढ़िया गेंद और अच्छे तरीके से खेला, लेकिन एक ही रन से कुछ होना नहीं है कुलराज जी। इन्हें बड़े शॉट्स खेलने पड़ेंगे और मुझे लगता नहीं कि अब इन्हें विकेट बचाने के लिए मैच खेलना चाहिए। मुझे लगता है इन्हें मैच जीतने और रन बनाने के लिए मैच खेलना चाहिए। ये आवाज आप तक, काश आपकी वहां तक चली जाए और कुछ चमत्कार हो जाए, जिसकी मुझे उम्मीद नहीं है। बढ़िया शॉट, लेकिन सीधे क्षेत्र रक्षक के पास। कप्तान पीयूष पटेल है वहां पर, 1 रन मिल गया आराम से, लेकिन फिर वही 1 रन से ज्यादा कुछ नहीं होगा। मात्र औपचारिकताएं शेष रह गई हैं। ऐसा प्रतीत होता हुआ। लॉन्ग ऑन की तरफ खेला हुआ बढ़िया शॉट और इस बार दूसरे रन के लिए आना चाह रहे हैं, लेकिन बढ़िया क्षेत्र रक्षण, 1 ही रन होगा और मानवेंद्र के पास वापस फेंकी गेंद वहां पर सीमा रेखा के पास से लॉन्ग ऑन के क्षेत्र रक्षक ने। और ये वाइड गेंद, एक और वाइड, तो इस ओवर में खासे उपहार दे दिए यहाँ पर मानवेंद्र ने। तीसरी वाइड गेंद है कुलराज जी। गिफ्ट पैक है ये 3 का। देखते हैं 4 का चौका तो नहीं देंगे क्या। बढ़िया शॉट, चौका होना चाहिए। जी हाँ, इसी बात की बात कर रहे थे हम। इसी तरह के खेल को बार बार करना पड़ेगा अगले 3 ओवरों में भी। और खराब गेंदबाजी मानवेंद्र की, जितनी प्रतिष्ठा के साथ इस मैच में आए हैं उस तरह की गेंदबाजी डाल नहीं रहे हैं। हालांकि गेंदबाज बहुत ही जबरदस्त हैं, लेकिन लय से चूकते हुए दिशाहीन गेंदबाजी इस बार पैड्स पर दी और 4 रन के लिए। लॉन्ग लेग क्षेत्र पूरा खाली है आपका और आपकी स्पीड इतनी अच्छी है, आप अगर लेग स्टंप पे देंगे तो आप शर्तिया चौके के खाने के हकदार हैं। और एक बार और अच्छा शॉट, बढ़िया बल्लेबाजी कर रहे हैं बल्लेबाज। और इस बार भी 1 ही रन। तारीफ करनी होगी सचिन देशपांडे की, 17 पर आ गए 10 गेंदों के बाद। तुषार शिंदे उनका साथ देते हुए। सत्रह ओवर की समाप्ति, स्कोर हो गया 137 रन 8 विकेट के नुकसान पर। 3 ओवर 38 रन।
ना ना मुमकिन नहीं कह सकते, मुश्किल जरूर है लेकिन नामुमकिन नहीं। जी हाँ, बहुत मुश्किल, हालांकि विकेट बहुत कम बचे हैं, शायद इसलिए ज़्यादा मुश्किल। विकेट होते अगर 2 और अभी तो ये मैच निकालने की कोशिश कर सकते थे, हालांकि 2 ही विकेट बचे हैं। और यहाँ पर मैं सचिन देशपांडे की तारीफ करूंगा, 9वें नंबर पर बल्लेबाजी करने आए और क्या शॉट्स खेल रहे हैं। जी हाँ, फास्ट बॉलर हैं, हाथों में दम है, भुजाओं में ताकत है। लेकिन टेक्निक भी बुरी नहीं है, तकनीकी तौर पर भी अच्छे हैं। आगे इनको बल्लेबाजी कराई जा सकती थी, ऐसा मुझे लगता है। जी, थोड़ा पहले भेजा जा सकता था इनको। एक टाइम था जब पिंच हिटर्स बीच में आते थे, चेतन शर्मा भी आए थे पिंच हिटर बनकर, और कानपुर के एक वनडे मैच में उन्होंने 100 रन भी बनाए थे वर्ल्ड कप के। जी हाँ कुलराज जी, और आपके अनुभव के क्या ही कहने, और हमें आपकी तरफ से ये जो कहानियां सुनने को मिलती है ना, मजा आ जाता है। और ये 2 रन आराम से हुए और रनआउट की कोशिश, लेकिन तुषार ने अच्छा शॉट खेला था, माफ कीजिएगा, सचिन का शॉट था ये, सचिन देशपांडे। जी, सचिन देशपांडे खेल रहे लॉन्ग हैं ऑफ पर 2 रन ले लिए और बहुत तेजी के साथ दौड़े। ओजस आए हैं गेंदबाजी डालने। बढ़िया शॉट, करारा प्रहार, ये चौका होना चाहिए अगर वहां कोई क्षेत्र रक्षक नहीं हुआ है। वहां पर क्षेत्र रक्षक, लेकिन 2 रन पूरे कर लिए क्षेत्र रक्षक के होने के बाद भी, और थोड़ी सी चूक भी हुई वहां पर। जी हाँ, फंबल किया उन्होंने, गेंद को ढंग से पकड़ नहीं पाए। डीप कवर पर 2 रन लिए, ओजस की अगली गेंद, और आराम से 1 रन ले लिया इस बार। लेकिन कुलराज जी आगे बढ़कर नहीं मार रहे हैं लेग स्पिनर को, कोशिश करनी चाहिए। लिमिटेशंस हैं, विकेट कम है, ये भी विकेट चला गया तो फिर। जी हाँ, दबाव बहुत ज्यादा है, लेकिन ऐसे मैच नहीं जीत पाएंगे ये, कुछ तो बड़ा करना पड़ेगा इन्हें। ये देखिए, बड़ा करने गए और 1 रन से भी चूक गए। इनको कायदे से बैट और बॉल का मिलन तो जरूर करवाना चाहिए। जी हाँ, डॉट गेंद यहाँ पर ज्यादा कुछ फायदा नहीं देने वाली। जी हाँ, यही आप जो कह रहे थे इन्होंने किया इस बार, लेकिन क्षेत्र रक्षक है वहां पर। दूसरे रन के लिए दूसरे रन के दौड़े, लिए तेजी से आ रहे हैं और आना चाह रहे हैं, लेकिन नहीं यहाँ मना दौड़े। कर दिया है सचिन ने। ये खराब मैं कहूंगा निर्णय था तुषार का, और सचिन का सही निर्णय वापस भेजा, वरना रन आउट हो जाते। डीप से थ्रो अच्छा आया था। स्ट्रॉन्ग आर्म फील्डर और रिवर्स स्वीप। बढ़िया शॉट, यहाँ पर स्विच हिट खेलने की कोशिश, और 2 रन हो जाएंगे आराम से। जी हाँ, और ये ओवर की समाप्ति हो गई है 2 रन के साथ। आखिरी गेंद थी इस ओवर की है, और एक शॉर्ट रन यहाँ पर, 1 शॉट। तो जो मुश्किलें थी वो और बढ़ती हुई। 1 रन कम यहाँ पर दिया अंपायर ने, क्योंकि 1 रन शॉट लिया सचिन ने जल्दी भागने के चक्कर में। वो सोच रहे थे शायद ना पहुंच लिए, आधे दूर से ही दौड़ गए। जी हाँ, और शॉट ही लेना था तो 1 रन लेते हैं, उनके पास स्ट्राइक भी रहता। 18 ओवर के बाद स्कोर है 144 रन 8 विकेट के नुकसान पर। और कुलराज जी, अब मैं अंग्रेजी कमेंट्री की तरफ स्विच करता हूँ जी, 2 ओवरों के क्योंकि लिए। ये एक खतरनाक फिगर है, धारा 144, इसलिए आप अंग्रेजी पे आ जाए। 144। Kulraj ji, and your funny comments always make the atmosphere brilliant here in the commentary box. Thank you so much for being so funny and always motivating the youngsters like us. Thank you, dear. God bless you. So last 12 deliveries in this match remaining. 144 for 8 is the score. 31 needed of the last 12 deliveries. Not an easy task by any means. We'll have to see how they approach the last 2 overs. They don't have many wickets, just 2 left in the kitty there. Not much cover they have. हम अपने दर्शकों को याद दिला दें, इस मैच के बाद एक और बड़ा कांटे की टक्कर का मैच आने वाला है, तो आप स्टे ट्यून रहिएगा हमारे साथ और हमें आपका इंतजार रहेगा। फिलहाल ये मैच के 2 ओवर शेष, 2 ओवर आप हमारे साथ बने रहिए। Manvendra coming with his next over.
He starts off well, a single there. Coming back for the second, Tushar Shinde. Not, oh, and he's... And third umpire. on-field umpire has referred for the third umpire there. We'll have to see. And Tushar was trying for a second, but he slipped there, unfortunately. Not easy for anybody to come back after that. Oh, and he's in the crease, it seems. देखते हैं क्या निर्णय आता है. And it seems he's reached the crease well within थर्ड अंपायर का right निर्णय आ time. चुका है. नॉट आउट. और वो गिरते पड़ते अपनी क्रीज में आखिर पहुंच ही गए. Absolutely, and it was unfortunate that he slipped there, Kulraji. He was trying for a second, fighting for his team there, Tushar Shinde. लेकिन मेरे ख्याल से उनका स्लिप होना ज्यादा अच्छा था, क्योंकि अगर वो दूसरे रन के लिए दौड़ते तो निश्चित शर्तिया वो रन आउट हो जाते. Absolutely, probably a blessing in disguise for him there. 100%. And Sachin back on strike. Can he score the remaining 30 runs and 11 deliveries? We'll have to see that. He has that caliber. Oh, and what a shot that is! Could be a big one as well. And that's a boundary towards... Oh, no. Could have been a 6 as well. That's a boundary. What a shot that was. And that is what we were trying to mention. He has that caliber. Absolutely brilliant shot. And reminding us of Josh Butler there. बिल्कुल सही बात है. और इस तरह के शॉट्स ही रन आपको बटोर के देते हैं. अगर आप सीधे बैट से खेलेंगे तो इस समय रन नहीं बनेंगे आपके. And Manvendra immediately having a discussion with the captain there. मैं पहले भी आपको बोल रहा था, लॉन्ग लेग इज कंपलसरी फॉर these type of shots. आप शॉर्ट फाइन लेग लेकर के ऐसे शॉट को रोक नहीं सकते. Absolutely right, Kulraji. Last 10 deliveries remaining. 26 is the ask. Is possible, especially with Sachin in such form. Oh, and that's a wonderful bouncer. He plays it well, but just a single there. The mid-wicket does well. And he's coming back for the second. This is wonderful running. Could be a chance of a run out, but he completes it brilliantly. What a piece of running that is. Both these batsmen deserve an applause here. They're fighting it out till the last delivery. 9 balls still remaining. 24 to win there. And Kulraji, this was a brilliant piece of running between the wickets. What do you think? बिल्कुल सही. वो तेज गति के गेंदबाज हैं, बहुत स्टेमिना है उनमें, और वो दिखा उनके इस रन से. जो सेकंड रन कंप्लीट किया है, बिल्कुल बेसिक्स को फॉलो करते हुए, बैट को जमीन पर घिसते हुए वो अंदर आए. उनकी रीच से आगे बैट उनको फॉलो कर रहा था. And that was a wonderful bouncer. Still he could play it and take 2 runs from the inner circle. So that is a achievement, I guess. But still 24 needed of 9 deliveries. Manvendra, the next delivery. And this time it seems this will be a dot delivery. It is a dot delivery, not signaled a wide. Sachin probably expecting a wide there from the umpire. यहाँ पर क्या होता है शालीन, अगर वाइड ना मिले तो बैट्समैन नाराज हो जाता है, और अगर वाइड दे दी जाए तो बॉलर नाराज हो जाता है. इस समय एम्पायर की पोजीशन बड़ी ऑकवर्ड सी रहती है. Very well said, and the 150 is up. The score is 151 now. What a shot that is, but I think it's straight to the fielder. Just a single, the long on, trying to throw it back, and Tushar back for the second. This is absolutely wonderful cricket going on. He's run out. That was a very good throw, straight into the hands of the bowler. And he's out there, so 9th wicket going down. And a lot of action being seen here, Kulraji. बिल्कुल सही. आपको मैंने थोड़ी देर पहले बोला था कि जो एक ओवर मेडन गया है वो आखिरी में कॉस्ट करेगा, और आप देख लीजिए वो 8 रन ज्यादा होते तो अभी आप जीत के दरवाजे पे खड़े होते. Absolutely, and that is why the experience which Kulrajji brings in his commentary in the commentary box is invaluable. And a wonderful fight by Tushar Shinde, but finally he had to give up because of the run out there. It was a good effort and a lot of action in this over. That was a good shot and a good piece of fielding by the long on fielders, throwing it back straight to the bowler there. अब मसला सिर्फ एक गेंद का है, क्योंकि विकेट एक बॉल में आता है
और वो बॉल अगर इन बीच में गिर गई तो सारी चेज खत्म हो जाती है. Absolutely right, and credit to Sachin also here. He's fighting it out there, the lone warrior in the last few overs. But Manvendra finally, He is the last Mughal on the field for his team. And just check it out कि क्या करते हैं वो. अब आखिरी विकेट है, उनके साथ बल्लेबाजी करने के लिए उतर रहे हैं. Karthik Shah is the Karthik new Shah. batsman. The last wicket at the crease now, and a lot of runs to be scored. Sachin Deshpande is in terrific touch, but will he be able to take his team over the final line? And 29 of 17 he is not out on. What a wonderful piece of batting by him, but just one wicket remaining. Only one delivery would be required to get the batsman out. We'll have to see whether he would be able to bowl that delivery or not. Manvendra to Sachin, and that's a wonderful delivery. He's trying for a single there. Could be a run out. Is a run out, and they've won the match. Absolutely brilliant piece of bowling and fielding on his own bowling by Manvendra Mishra, and Sachin disappointed here. He was trying to take the strike, and Karthik also wanted to give him the strike, and the match has finally got over now with a run out. Just have a look at Manvendra keeping his cool, taking his time, and running the last batsman out. So 152 all out. The Tornadoes, and this match has been won by them by a margin of 22 runs. Kulraj. बिल्कुल एक ओवर अभी शेष था. एक ओवर मेडन और एक ओवर शेष मैच का कहानी बताता है, सारे बयां करता है किस्सा. Absolutely, and a good win by the Ddpl strikers. At a point of time, it was seemingly visible that they were on the back foot in this match in the first innings, but then they bounced back brilliantly and they won this match finally. So we thank all the viewers for watching this first match. We'll be back with the second match very soon. Just stay tuned for a few minutes and we'll be back with the second match of this tournament. Thank you so much for joining us, and stay tuned. We'll be back very soon. Thank you.